jacket to the next event that we're both at because I'm going to burn it. You can probably check out that video over on social media, over on our PUBG Mobile Esports channel. Maybe I can actually get that posted somehow. I would love to do that. I think it could be fun. You might not like it, but that jacket does mean serious business. It does mean things are being taken to the extreme, as Max would say. And we are running out of time for all the teams. But speaking of extreme, big shout out here to Sony, the Xperia 1.4 and the Xperia Stream, providing you guys, or main collaboration actually, with professional esports players. You can get 90 Hz in PUBG Mobile with its total cooling system. And of course, it's multiple ports for intensive gaming and streaming. And also the sweet hotel that the players get to sit at, that we want to be at, getting our spa days on. The Pullman Kuala Lumpur Bangsar Hotel, where our world is your playground. I'm a little bit jealous, I'm not gonna lie, gentlemen. I mean, we got to see, was it last year or the year before? We had, I think it was 2 years ago, we had footballists in the Maldives. Really working hard, you know, it was tough for them to be there, but I would love to be over at the sweet hotel, just relaxing with you guys. I know, they said like, we had bad connection, we have to go somewhere else, and they went to the Maldives. I'm like, I have bad connection all the time. I'm not sent to a great hotel. I would love to, but no, not unfortunately. Who would have thought, Max, sunburn would affect your PUBG Mobile skills? But either way, let's take a look at our schedule format. If you guys just joined us and missed out on the prior days, it is a little bit complex, but what you need to know is we have 3 different groups, red, green, and yellow, and it's all about your placings within each group. Top 3 straight to the grand finals, kicking off January 6th through 8th. However, if you're in 4th through 11th, you'll be going to a survival stage, which will be happening with teams from other groups. And then from that, it'll determine where our final teams will get through. And of course, Sandstorm, $4 million on the line. A lot of money here for these teams to win up. But I'm still waiting for prior winners to send me my cut for supporting them. But I'll keep waiting. Yeah, $4 million, $2.5 million going to be distributed over the league stage. We have $90,000, which is the first place prize for every single group. So not only do you get yourself a spot in the grand finals, but you also get yourself around $100,000 just from getting that first place. And looking at group bread, this is our group, these are our teams. I don't want to look at our esports right now. That just makes me sad. Okay. Well, hopefully you're not sad at the end of the day, but you might be sad because only a certain amount of teams can qualify, and a certain amount of teams will not be making it through any further on into this event. As we take a look here at the event so far here, our top 4 when it comes to solo points, and we can see Delta, I mean, yesterday had a huge step up here. We were talking about DRS. I gave the DRS blessing to them, and they were able to do exceptionally well in the last 2 matches. But to see Delta be able to step up for his team when day 1 wasn't looking fantastic for them is a great sign and a great testament to how strong this team from Nepal can be. Just to explain how this graphic works, by the way, these are the number of points that have been won by a player when all of his teammates are down, where he's the only player currently still alive for the team. And we said Delta for DRS has been able to really put a great step forward for the entirety of his team. Sure, it would be great to see them survive a little bit longer as a 3-4-man crew. That would be fantastic, but DRS really did do a big step up right when you called them out, Jason, so I'll have to say you maybe did bless them a little bit there. But yeah, DRS, I'm happy with what they can do yesterday. I want to see more in these next 2 days to see if they can potentially go the entire way right into the grand finals. Well, you always want to see more, Max, but we are running out of time for the teams. So as you take a look at our top 4 teams when it comes to elimination, Sandstorm, gotta throw it to you here, man. Influence Shemin, 74 limbs. They are 11 limbs ahead of anyone else, and that's S2G. A fantastic showing for the team from Brazil. Yeah, absolutely. I mean, just remind everyone, this is a team that has managed to secure top 4 in 9 out of their 12 games. 75% of them were always in the top 4, and the other 3 were 15, 14, but they still managed to get 4 eliminations every single time. So they're still getting themselves an insane amount of points, an insane amount of eliminations. And we saw before as well, when it came to top solo points, Law was there. He's been able to get himself a top 4 place, I think twice yesterday alone in the games. One's on Erangel when Buriram took the win, and of course one on the last game as well. So incredible performance from the entire team. Every single one of those players is showing up, whether it's Federal with the eliminations, whether it's Law with the placement points as well. Everyone is performing, and it's just great to see from this team. And it's also fantastic that it's happening across both days so far. And we still have 2 more days to go. So is the consistency going to remain over the entire first week? That's what I'm excited to see for this American representative. Yeah, I mean, I would be saying no, but then again, I said that about Mad Bulls when we got to the European regionals off the back of Western European PL, and they continue to do so then. However, they're not looking too hot right now. Yeah, I mean, honestly, I didn't expect them to come out this strong. They weren't really on my radar when it came to that's a team I expect to be top 3, but you know what? I'm pleasantly surprised. However, their job isn't done just yet, Max. They still have 2 days left to play.
They still need to hold on to their position, though they have been able to build up a nice little lead for themselves. But teams like Barium, they're knocking on that door, and if they continue performance like this today, they might catch them. Exactly. I mean, I did say Influence Chairman, chances are they're not going to move from that top 3 position, so don't focus on that spot anymore. Focus on Buridam or S2G's spot if you want to make it straight into the Grand Finals, because those are 2 spots you can reach. Influence Chairman, they require a really bad day for other teams to be able to actually catch up to their position, but we saw that meme from PMPL updates, respect to them. Good. So Enigma good. Galaxy, I think they don't know which way they need to go. You know, don't go down, okay? You need to go up, okay? The higher you are, the better you are. Enigma Galaxy yesterday got pretty much nothing done. They even got a great circle on Sanok, and no points really came their way, so Enigma Galaxy need to catch things up, because slowly they're slipping down the rankings, and it's not good to see. Yeah, I mean, when you compare Enigma Galaxy to the performance of all the other teams, for example, on day 1, they had 83 points. Day 2, only 13. The likes of DRS managed to get 67 points on day 2 compared to the 48 points on day 1. A lot of teams are improving. Meanwhile, Enigma Galaxy is just going in the complete opposite direction, which is definitely not what you want to see, but we can see it here. Yeah, I mean, unfortunately, they're going to have to see it as S2G. I mean, they didn't look too hot day 1, but they had the step up they were looking for, and pretty much the opposite in the Galaxy when it came to day 1 and day 2. But again, like this average damage, that's kind of what we've known about S2G, Maximan, and what we saw in the European regionals. Like, they are an extremely strong fragging team, and you can never really count them out. Yeah, I mean, we saw them yesterday. They just woke up and chose violence, S2G. But also, Influence woke up twice, 2 days in a row, and chose violence both days in a row. And really, the thing is, you're looking at the average survival time, right? Every single time, they're making it close to the 27-minute mark. Of course, the games take a little bit longer because of the new circle settings we have specifically for this PMGC. But making it to the 27-minute mark every single Erangel is nuts here, Jason. And I mean, that's why we said they're so consistent, and they should not be going anywhere anytime soon, because it's 3 Erangels every day, as you can see here. You can't beat that. You have to get so far in the games to get a 27-minute average, and that's just mental from Influence. And the thing is, Sandstorm, we look at them, right, and we could just say, oh, I mean, normally people could just say, oh, they had zone, or oh, they were center circle, but honestly, they've been playing with, I feel like, so many different kind of strategies. Yeah, they're playing like edge as well. Like, they're showing that they can do it from a very difficult position. Now, in your opinion, though, is this just the normal playstyle they like to go for, or have they adapted their strategy a bit because of the change to the zone settings we've had here in PMGC? No, they've definitely changed it up a little bit, because from what we've seen in PMPL Americas and the way that they were playing around it, the start was very similar. That yes, they would still play kind of edge of zone, but when it came to the later stages of the game, they changed it up. Now they're being a little bit more cautious. They're choosing their time a little bit better when it came to when they're supposed to be going into the zone, so I have to give it to them. And we've seen on Erangel, not once have they been eliminated, I guess, lower than 4th. It's always been a top 4, so what's going to happen? Okay. Well, we'll see if they can maintain that stat here, Sandstorm. No pressure. So we're going to head into our first match of the day with John Allen and Blink to kick it off. Absolutely, we're going to be getting into game number 1 to kick off the second half of Group Red. Blank, we're ready and ready to go. We're wide-eyed and bright and bushy-tailed. We're going into Erangel. Why have you stolen my haircut? What's going on? It's gone well, hasn't it? What is that? That is unacceptable behaviour. You It's put just your how it hair to felt. its normal setting immediately. Look, Go I back to swivel default. I swivel the Lego piece. It doesn't work like that. This You can't is- just do it. Oh, This is dear. ridiculous. But yeah, heading into the second half of the Group Red stage. Obviously, very excited to see how this one does end up. We have a fair amount of things, a fair amount of moving pieces. Obviously, like Max was saying, Influence came in at the moment. Very difficult to catch up to 174 points. S2G maybe could have done it yesterday. I did want to talk more about this though, John, because I feel like S2G had such a good day towards the beginning and then fell into some bad old habits towards the end in that 5th game, which is just some too aggressive nature, some overconfidence, pushing in, versus MTech Storm as well, which, by the way, is not a team that's towards the top of the standings either. It's just a case of lack of scouting, looking for that greedy first elimination and getting massively punished for it. So I think S2G maybe has to reconsider a couple of things that they were pulling out from yesterday, go back to what they started with, which was much better, which is bringing out a lot of that capability in those team fights towards the end of the game. That player is not allowed to hold that phone anymore. Give me that. I can play this better. Yeah, let me have a go. It's good.
Here, guess go. You got games on your phone. You got games on that. You got games on that. You got PUBG Mobile on that one. Oh, You got very PUBG nice. Mobile. Oh, you're playing PMGC. Oh, let me play. Let me have a go. Anyway, straight into our game at the beginning. We already have our playing path on our screens right now, heading from the western side of the map over towards the northeast in Kameshki, and we'll be dropping our players off very shortly as they head into this one. Kameshki, the destination on the western side. Teams that generally like to drop towards Novo or towards Milton might be a little bit slower on this one, but they should be fine. The circle yet to pop though. We've seen some fairly dramatic shifts over the last couple of days. Blank, maybe we'll see a return to normalcy here for the team's sake, if nothing else. You're realizing who has the better gun skill, who has that better team fight capability, which is really cool in my opinion. I feel like those are the teams that deserve to get the big points. Like Influence came in, their rotations are pretty damn good, but on top of that, they're not afraid to shunt you out of a position that they think is a winning formula for themselves. IQ gets away from the buggy rundown. Box didn't want to invest the time there. Tizzy's actually not too far away, so 3 teams in fairly close proximity at this stage coming through. MTech Storm spread out over Gatka, Aegon XIA and Box, who are grabbing a couple of vehicles and seemingly looking to head south. The circle popped down towards the south, and it does cover quite a bit of military island, but likely that we won't be ending there. It's more likely we'll be heading up. Wait. They're different teams. Those are bumper cars right there. I like that. Okay, fair enough. Well, still in the vehicle. Not too sure what Gotani was trying to go for there, but I guess it worked. Yeah, I mean, that's what you take. I think he flipped Axa over like a full barrel roll on that side. But if that's what it takes, you know, delay an enemy team with the distraction tactics, that's what's required. You know, Axa didn't seem too phased by that. Probably one of our most smiley players here in Group Red at the moment. He was unfazed by that whole shenanigans going down and just decided he'll take that one, get on his merry way as he was barrel roll flipped back onto the road, which is great news for them. BTR, on the other hand, having a really good return to form at the moment. DRS ahead of them with 115 points. BTR tied behind in 5th with 115 themselves. But again, very, very well done to BTR and super happy days to DRS, considering this is a real good improvement from this team, from PMGC to PMGC. Seeing them here in the very first group versus some very difficult teams, being in 4th place is nothing to scoff at. Certainly not. I mean, it's not quite that top 3 spot, but it certainly set you in good stead moving into the survival stage. Have that confidence that you would be one of the top teams going in there. And someone will have to be. R8 looting up in North George. They've been curtailed once or twice by LGD on this leave, but I think LGD have sort of moved into this idea more of moving south and away from this engagement on circles like this. They just don't want to get embroiled in it, even though they could edgeguard R8 out. I think LGD is starting to see more and more that there is a lot of space down towards this western side, and some other teams have also noticed that on this side of the map. I mean, you look at I8, for instance, now they're holding down towards the south of Gatka. MTech is up towards that north side. So a lot more of this space has been taking up within the map. Before, it was a little bit easier for LGD and maybe Mad Bulls to make this rotation with
only one team being in the area, and that being MTech Storm, and a lot of times them looting up towards the underneath of Everest. So you are just seeing that clear hole in the map on that western side being available. That has been filled up now, concreted in, so LGD is going to have a little bit more of a difficult rotation. I still would assume that they'd head through Hospital, because S2G, maybe not the easiest team to face early on. Certainly not. I mean, we've seen them be that punchy team that did feel a little bit more reserved in a couple of the previous days' games, which obviously earned them quite a bit of points, and their viability in that top 3 certainly earned from that. Question, though, is can that be maintained? As you said, maybe a little bit of a dip. We'll have to wait and see if they can stand it back. Budaram over towards Lipovka, taking that classic 2-1-1 split over towards Prison, Mansion. These guys get looted up very quickly and then head out over towards Shelter area. Titans also like to hit up that position. The Infinity have backfilled before, as have DRS, so Shelter does become quite the hotspot. But with this circle being so far down towards the south, it does give DRS a lot more time to figure out what they would like to do next. They don't necessarily have to be on a timer right now. And with Nova Repnoia, as well as Military Base itself offering such good loot, I think it would make sense for these guys to stick around in this area for a little bit longer. And DRS should be coming to the circle with absolutely tons of gear to be working with, level 3s across the board, and with some very, very well stocked backpacks. And I'm talking smokes, I'm talking grenades. That's really going to support DRS in that late game, especially when we're seeing so far, you know, a lot of these teams now picking up individual spots within the circle and just taking those solo positions. It does make a lot more sense to be able to get a lot of that utility on board in the early game and work with that in towards the late. Ghost staying alive. Not being spotted right now by MTech Storm. I think Ghost has a little bit of gear on board. Yeah, has got that Mini 14. Only the level 1 backpack and no helmet. So it would be pretty difficult to take a fight with that level 1 vest as well. So Ghost a little bit loot starved here for Aegon XI8. A lot of teams on that western side spread out and taking the loot up for themselves. Yeah, LGD barreling through. And I think this is the issue you'd find if you were looting down towards the south side of Gatka in the fielded area, is that it is kind of trash loot. Like, you're not going to find too much, and you're just looking for scraps here and there. You're also starved of vehicles, which is another big thing. LGD able to instantly move down from crates area, rotate through the fields instantly towards some buildings that they can now set up as home base. S2G make a different approach on this circle than what we've seen so far. I think that now they just barreled down from ruins, found a very good rotational path here, which is 100% a beeline, essentially, to one of the more prominent compounds to the south side of Potato Hill. So central as well. So it looks like they're going to be setting up for that late game. They've got a lot of looting done over towards Atlantis as well as ruins. They should be happy for the remainder of the game. Titan and Farm on the south coast. On the west peak of it. No one really too close by. S2G a little bit further northwest. Influence Kemen just coming into the east side of Potato Hill now. And Buriram coming in through Shelter into that eastern side of the circle. DRS still the only team on Military Island. Aegon XI8 holding around that mouth and maybe looking to cross just a little bit over that bridge. And I said Blanket was likely to end on the mainland. It seems like I'm going to have to eat my words. That is a massive south shift as Influence Kevin crash into 4 rivals. Both of them swinging past on those hillsides. 4 rivals managing to get a lot done. Little boy seemingly unable to hop out there. Will get felled, and Influence Kemen losing 2 very, very quickly. A 3rd soon to fall. Law eliminated out of the fight. Kayovsky running for the hills from Influence Kemen. Yeah, I think for a little boy there, that was a case of having to switch the back seat and jump out from that side, considering, you know, I would say his exit from the passenger seat was blocked by this white car. You struggling there a little bit. Might have been something on his end, but we can't say for sure. In the meantime, Influence Kevin take a massive hit from 4 rivals as they try and make their way down. IA, it looked like they might have a good position within this circle, but with a couple of players left behind out in the fields, they're a little bit split off. So only 3 players of their team ready to cross. And Mad Bulls already in a fairly decent position. They have to cross over towards Sosnovka. But for the time being, looks like they're just going to try and take down the gatekeepers.
the moment, Aggro and XA, that 3-player squad, MTech Storm on the bridge, sandwiched between, and in a really open and barren position for MTech Storm. They can't move forwards into Aggro and XA. They can't move backwards now with the Mad Bulls coming on through and pushing in. Tarman needs to find a pick. That's all they can do, really. Look for a pick, try and exploit that, because it is not going to get any easier right now. Tarman misses his nade on that side. In the meantime, Mad Bull's bringing one of their players back into the fold. I8, IQ will find Tarman, in which case Blade is going to try and finish this player off. Remember, the more players that I8 can remove from MTech's side, the quicker that they'll be able to start dealing with Mad Bulls. And this is a dangerous push here coming through from Skills, as maybe not aware that there is another team on the other side of the bridge. Ghost also still remaining over towards those fields. And Skills gets found by a very nice little angle from MTech Storm. These bridges are so dangerous. Those little catwalks at the side, when you drop down low, your feet are so exposed to someone on the other side, and you have to be worried about a player on the same line as you. It's another piece of cover to aid in crossing these bridges, but it is very, very dangerous if you don't have full control, which Skills has found out here. Able to drop a smoke away from a teammate and maybe looking for that res for the Mad Bulls to keep them up at 3, which would be almost vital for their future movements. R8 are going to be starting to come through as well from this north side, potentially proving to be tricky on the push. Skills is spotted, but they do not want to let this one go for him. MTech Storm, a lovely nade over the top, and Monkey is going to fall. Zerich dropped down all the way to the ground, and this is the other way that you can try and cross here, is try and go for the swim. Spray over towards the player up on the catwalk, does not go well, does not connect, and the Mad Bulls are swept aside. Mad Bulls, I think there's an incredible amount of nerves and pressure coming onto this team. It is very unlike them to be playing in this kind of way. They feel all over the place at the moment, and to be honest with you, at the current trajectory, I don't see them climbing out from that bottom 5, which is a massive shame, honestly, with the way that they played in Western Europe. It really does not translate very well into PMGC at the moment. Like, you look at the 2 performances they had in their individual PMPLs and the championship, I don't think that this lobby in particular is that much of a step up for them. So the fact that they're playing like this, I think there's huge amount of pressure on them right now coming towards a LAN format. Ooh. That one looked devastating. But he somehow gets away with that. I thought that might have been a headshot from Godtani there. I think it was. Might have been Maybe level 3. Yeah, I think it's a level 3 helmet in play to be able to save you from that one. It's the only way that happens. Yeah, Box holding with 2 in the building. Titan looking to take them away from it. Box do have the position on the outside, but the burn is good. Teak lights it up, shreds them down, forces the backup from Soaz. Trismay on the side swipe, though, opens up, and Titan lose 1, 2, and 3 very, very quickly. I think that's the Infinity coming in to be a third party on this engagement, and now they can start to push on in. Godtani, of course, taking those shots in earlier, will be continuing to put that pressure onto Titans. Box capitalized, 3 players up and into the building. I mean, Trismay has been significantly important for Box to be able to remain up in a lot of these extended fights. The fact that he's able to find some of these really cheeky and quick picks during these engagements is what makes him such a clutch player and important player for the team. They don't have him. I think that the other players in the team are very good at supporting and getting some of these knocks. Break, in particular, is great at delaying a lot of these engagements, but Trismay is really the one that finds those big hitters. The bridge on the west, a battlefield strewn with boxes. Everybody looking to cross. It was unlikely that they'd have to make this decision, but they're looking to try and make good on it now. That western bridge, Aegon XIA actually looking to regroup on the south side. They're falling away a little bit. R8 and MTech Storm embroiled on the northern side of the bridge. S2G as well, but only the 1 player left. That's Ray Z on that west bridge as well. I mean, a lot of these players fell into the pit trap of not going to Military Island early on. When you get a circle that crosses so much like we did on Zone 2, I think you have to send down towards Sosnovka Military Base one way or the other if it's not crossing through the water or just sending it across the bridge. If you don't do it early enough like BTR did, where, you know, they're coming down from Yaz and they took their time about it and they took a little bit too long as well, you just have this instance where you are just caught out in the cold and you're not getting in. No one brought their
jackets to a wrangler in this case. So freezing to death on that side, it is just painful, really. So a lot of these teams that got a quick movement over towards this side of the map, very happy. I think LGD have really played their cards right, heading towards Ferry Pier, weighing out some of those engagements on the western side, taking that boat, and then heading in underneath on the south. They could set themselves up for a very big win here. It seems like too many teams went for the call of going over those bridges and have been caught up in it, and not too many have gone for those boat rotations or trying to go for the swim. Titan still under pressure in this fight against Box. Two of them were alive, but one of them quickly dispatched. Six holding out on the inside, gets one knock, but traded off nicely by Bensu. Enigma Galaxy, Bigatron, this is on the north side of Military Island right now. There are players out in the water from Team Queso just to the north side of it. Bigatron still handling them. They're pinging them away. Freak falls as well. These days are pretty good for a Bigatron. They're working out. Hamodi down to the shots from Luxy up the top of the hill. Zuxi and Jen Foster trading off one of those positions. Ralph falls. Lord over in the Team building. Queso? Last player standing. Team Queso trying to rise from the depths. But there's only Papi Potro close enough in the fight. Reyes at the back looking for a heal. Dispatched one. Papi Potro good for one frag. Can he find the next? It's an even fight right now on the hillside. Jen Foster is able to win that one out though. A heavy hitter for the Bigatron roster. And really bolstering them here. Reyes, for the Team Queso, though, has been equally strong. Despite their position at the bottom of the tables, this is a man you cannot count out just yet. Luxy moves in for the regroup, and they want the 2v1. Oh, this is greedy from Luxy, but I like it. Comes in, picks up the double, now looks for one more. Reyes, though, massively clutch player here for Team Queso. Pulled them out from a lot of situations where things looked extremely dire. But Luxy moves up with the grenade, spots Reyes as he retreats away. He looks to just pick up some more loot, but this circle will start to hurt just a little bit in zone 4, but gets as much loot on as possible, knowing that he'll need these nades later on. At this point, I think for them, it's just a case of leaving, but Luxy sticks around for too long here, and only Jen Foster and Zuxi makes it away. Either way, though, for BTR, this is a good result, considering where they were in the circle for a long time. I feel like there was a little bit of a misstep from Luxy. They knew exactly where Reyes was. They knew he was going to have to move with the blue zone. You're waiting for that peak. You know it has to happen. And Luxy felt just completely open on the broadside, stood up on the headland. There was no refrag potential. I don't think that was the smartest of decisions. But they get away with 2 and leave Reyes as 1 for Team Queso on the north side. Maybe in the heat of the moment, you've eliminated 4 players, and then you go for the 5th, and you're like, surely there can't be any more players alive here, or at least they've retreated. But yeah, Luxy goes for a little bit of a looting session and forgets there's no vehicle available to him. Again, BTR have been struggling through on that north side, so you can kind of understand where some of those small mistakes might bleed into the gameplay. Either way, 6 eliminations and living through that, again, whilst being trapped on that northern coastal side for a while. Quite impressive. They are taking shots now from over 4 rivals. Jen Foster will drop out the vehicle and get knocked. Better than being blown up. But again, Reyes is still in the wings, and it looks like 4 rivals are going to send in to finish the job. In the meantime, over on the southwest side of the military base, Aegon XA8 finally finished the job against MTech Storm. A fight that's been going on since about zone 2 on that western bridge. Will have moved over to the control tower. The circle centers LGD's way. I mean, LGD have been holding some incredible positions throughout this game. DRS obviously starting on Sosnovka. I said they didn't have to move until later with it being so much towards that side of the map, and they haven't, which affords them some good position in the circle. Again, though, LGD, with this 2-2 split that we've been seeing quite frequently from them, are able to claim a lot of landmass for their own, and DRS do have a little bit of a difficult push towards that western side, considering it's uphill just a little bit, and YZZ as well as CCC will be able to watch down towards them. Buradam aren't comfortably in yet either, having to cross some open ground. So I'd say for LGD, their main problems are 4 rivals on their northern side, and maybe some cheeky pickoffs onto maybe YZZ or CCC, because they don't have a huge amount of cover. Reyes managed to get past 4 rivals there. Find some cover, but LGD have spotted out the position. Will take the shots over that way. You can't hold near the buggy, it will go up in flames exactly like that, and you can't crawl away from it up the hill. Your legs will show and you'll go down to the gunfire. Damned if you do, damned if you don't there, but that will draw Team Queso's run to an end for this game. And LGD still hold in that central area.
Yeah, I think this could be a really good opportunity for LGD to actually bump up their point scoring to the next level, really. And again, I was saying yesterday, a lot of these Chinese teams take a couple of days to adapt to our meta, to be honest with you. They're playing on almost their circle settings, but not quite. Either way, they're just getting back into the action of it. You can see now they're feeling a bit more comfortable, being a little bit more like they can start to frag out, strike out. And I do like this positioning, this aggressive amount of control they're taking over the map. And again, this is not from an easy position. They came from crates in South George, John, down towards Ferry Pier, avoided a lot of that engagement, bolted it round, got onto the island, moved towards this position and took a 2-2. So this is a lot of things having to come to pass for LGE to get into this position. And it certainly wasn't easy, but they took the test with flying colours. Well, have made it happen. This is a lot of sequential smart decisions coming through from LGD, I think, is the direction this is going. So happy to see that start to stand up, as you say, into this differing meta they've ventured in towards. DRS from the eastern side still playing right on the edge. They don't want to give up that high ground just yet. Kengzo with the SKS. Shots over towards Killer. Smoke blooms on it. But the tires have already gone, so it's going to be difficult to move away in that. That should be okay, though, as the Dacia rolls downhill fairly well. Actually, sends it up to the top side as well, regrouping with the rest of the team. You've got that valley down towards that western side, and I think Killer was a really important anchor for them on that side of the map. But with Buradam spotting that one out, even 4 rivals looking down towards that position, it's difficult for Killer to stick around there for too long. You saw he was having to invest smokes, and he doesn't really want to do that early on here. You know, there's still around 8 minutes more of the match to go at this point in time, in which case they'll need those smokes later. Circle heads over towards the west here, all encompassing of LGD at the moment. You question how long they're going to go for this 2-2 split, and realistically, I think they have to continue to pull it out. So this will require them to hit some really nice shots on any players coming in towards the circle, because CCC and YZZ are important to spot the players on the eastern side, and MVM and Suki have to remain in this position because it's a strong compounded area for the rest of the team to regroup on. 4 rivals looking to start to move in on that northern side, and as you said, they are currently LGD's main threat. That hill just to the east of LGD, they have looked for that regroup, so they are not going to go for the 2-2 split anymore. They just want to hold out in a little bit of a central area, so they've left that hill. I think that's actually kind of a smart move, because yes, they could hold out towards YZZ and MVM and maybe take shots down towards DRS or the players that are down on the airstrip, but heading towards this compounded area, yes, it's not directly in the central of the map, but it still is probably the best position that they can hold from and have influence on the rest of the lobby. So I like this play from LGD. They didn't get too greedy with their 2-2 with their 2-2 split, but they were able to at least get some information gathered. DRS, though, still would really love to get a big game here, considering they're 115. They're actually in a position to break into the top 3 if they have a massive match here on game 1. Was Kengzo there the whole time? Underneath Buradam? Yeah, he's chilling. I think it might have been, but finally they spot him out. Take him down in the hangar. God, Tunny has been surviving for quite a while for the Infinity. Made it up to 6th place now. DRS crunching in from that east side. 4 rivals on the open hills as well. LGD not there to slow things down, but they are going to take those sightlines over towards that old position. Voki, was he not spotted there? I don't think he was. My name from Buradam taking a shot over towards DRS. This is open ground, a lot of sightlines from the south side. That's Jason's boy right there, my name P. I look to take it to the masses inside the lobby at the moment. Voki looks to finish off the players from DRS. Again, an unfortunate result for DRS if they go down early here. I know there's only 6 teams remaining, but considering they started over on Sosnovka military base and had a lot of time to pick up positions within the circle, more central, it is an unfortunate ending for them. And right now they're getting picked apart from Buradam as well as 4 rivals. And we'll go out with a big goose egg of elimination. 0 there. That is terrible news for them from what was kind of a game that should have gone in their favor. They had a lot of opportunity to rack up a lot more points, but they will fall on that hurdle. Buradam, though, looking to
close the gap between them and top spot Influence Kemen. Influence Kemen going down fairly early as well to a pretty comprehensive engagement. They have got that opening. Tiger down on the close fight between them and 4 rivals. Oh, that is unfortunate for Buradam. Goes short of the tree. Rez can go through. Should be able to get Tiger back up. Nappy wants to push out wide with Pemburu. Kengzo in for the backup. They want to hold off the remainder of 4 rivals. Only 2 players there, so they have 3 barrels against the 2. Pemburu spotted on the side swipe, but Kengzo falls to Pemburu. Nappy pushes forwards, wants another. Will be able to find it, but it's cut down finally by Tiger after that res. Crucial. Pemburu is still in the action, and in comes the final player from Buradam to try and keep them in this one. Tiger knows he's there, and Tiger does the job with the nade. They can get these reses. Can they stay up as 4? And do they have the time? Yeah, I mean, they have to stay up as 4 if they want to challenge out versus LGD. The circle is a little bit slow at this point in time. Again, LGD has played a really phenomenal game here. Yes, it hasn't been a high elim game. We don't see a lot of high elim games coming through from LGD recently, but they've made the right macro decisions to get to this point and have set themselves up fantastically to win this game out. Again, like you said, and I really like the way you put it, John, it is a sequential sequence of just having like a lot of well-informed decisions throughout the entire game, and that has led to this point where they're set up for a chicken dinner. However, John, Buradam so far have shown themselves to be a fantastic teams when it comes to controlling area, controlling space, and not from ideal positions either. So this is a really good opportunity for Buradam to show us what they've got and explain to us exactly why they deserve to be in that top 3. Currently sat at 1 chicken dinner for Buradam. LGD similarly on that first as well, so we'll be able to double up on that one. Aegon XIA not been so lucky. They've had a 2nd place and 2 thirds, but this could be their first chicken dinner if they make it away from the wall, but you don't think that's going to be very likely. With a little bit of a light up on the nade, that is good news for Buradam to take the thorn out of the side, and the last elim goes through. Now it's a 4v4. How does he nade himself and a teammate at this point in the game? It's so crucial. I was going to congratulate I8 on getting this far, but I feel like that does sort of come away from it. Head-to-head win rate, 20% for Buradam. Okay. I mean, respect it. I feel like Buradam's done more incredible things in the past, though. I think this is more 60-40, in my opinion, towards LGD. Buradam is definitely nothing to scoff at, and LGD feeling a little bit cold coming into this game after not having a lot of action their way. It's been a lot of rotates for them, looking for those placements, and for me personally, Buradam is very good at setting up a massive line and being able to pick off targets individually. For Buradam, they have been suffering. They've been in these fights a lot more. They'll have more utility, but their armor, their helmets, their meds will have been drained a little bit. LGD, though, you can see very, very healthy on those armor and meds, but no helmet for some of the players on Buradam. It's not ideal. Means you can't really peek up too far. Tiger gets the angle on the wall, but LGD still in the circle. 3 of the players there. Tiger denied that sightline. I mean, it's so cool watching Buradam play, though, because they're constantly shifting positions. You can see LGD being caught out by this a lot of times, switching positions onto the wall side. Buradam's there to take the shots. They move away from the wall. Immediately, Tiger's already repositioning, never allowing LGD to get a certain bead on where they're playing, not allowing these grenades to be perfectly placed. That one's quite far on target. Tiger does take a lot of damage, but you imagine they're going to start moving again. You're right, though. The medical supplies are what's really becoming rough now for Buradam, but 3 smokes, 4 nades, that's good enough. And for Buradam, they know the direction that LGD is playing, and so if they can wait out the game a little bit longer and allow this circle to push in, they might be able to get some really big nades over towards LGD, who've been holding in this compound. It's the only area they can come from, John. The big issue is CCC are behind this tree. He's stopping any sort of aggression coming through on split angles, and is a linchpin of the defense right now for LGD. Almost solo suppressing and actually giving them a foothold to move out, because this circle will fully close now. Kengzo
My name as well, spraying over towards the rotate. Will not find it, but Sky only gets one for Wand. YZ down and flushed. As you say, a good start coming through from Buradam. They might be able to look for this res, but the swing out comes from the buggy, and the arm lobs the nade over the top. Will not find the flush. The Molotov might do, though, but that's an excellent cut down on the back for Kengzo, striking from the off angle for Buradam. They lose one player, but they bring LGD down to 2. CCC spraying through the smoke. Suki is there. 1, 2 fall for Buradam. It's now a 1 versus 1 as we're trading off on the hillside. Suki against Kengzo. Kengzo up and on the ridgeline. A nade in hand, wants to put that back. Only Molotovs available for Suki, and I think he knows where he is. The nade is there. Will it be on target? Takes a lot out of the health bar of CCC, but will not put Suki back. 3 nades there for Suki. 1 nade for Kengzo left after he loses that. But they both avoid, and they both want to get a teammate back if they can. Kengzo faster on it. I mean, this is why those grenades were so important for Kengzo, and he held on to so many of them. He's had 4 to basically push Suki off this position. Now, they should have a good idea of where he's playing down the hill and sending that into a 2v1 off the back of some well-placed grenades to deny the res. Really, really well done to Buradam. Now, 1v2, definitely not unwinnable for LGD at this stage, but it will be a real crushing defeat for LGD to go down after what has been such a smart game from them. Oh, Kengzo out into the blue, knocked to the zone. Oh, that's so unfortunate. Yes, coming through from Suki. LGD want to put the final bullet in. There it is. The slug rings across the hills. I just don't know what to say about that one, gentlemen. LGD clutching it out somehow. 1v2. Well, technically it wasn't 1v2, right? It was 2v2 because he had the help from the blue zone. Somehow Kengzo goes down from that one, and it costs Burium United Esports a chicken dinner. However, they still get 23 points nonetheless here, Max. The DBS, man. It's the DBS. It's great to have in the late game position, Jason, and when you have that clutch scenario, you just hit one of those shots and it's pretty much GG. It's pretty much in the bag. And LGD, Sandstorm, saying about it, they got himself a chicken dinner yesterday, get himself finally another right here, and they're looking great. That back and forth, and especially that control applied by Buradam, they were pushing LGD in such bad spots every single time, being so proactive.
there has to be one team taking the chicken dinner at the end, but LGD and Buriram played out of their minds in this match, and that was one of the best finishes of the event so far. Oh yeah, and I mean, we saw how they managed to get themselves in that position in the first place, taking that early rotation, seeing how many teams decided to rotate on the eastern bridge, on the western bridge, or even decided to go swimming through the middle. But no, they decided to take a rotation from Ferry Pier, ignoring all the fights, getting themselves in prime position to take control of the game. And this is exactly what you talked about, Maxman, before, and this was the main reason I believe that made you choose LGD as your team to watch for the tournament. So good call. Max is like, this is weird. I'm not used to being given compliments. But as we take a look at our overalls here, look at this. You're talking about influence, Shem, and they can be safe in first place. But can they? Buriram, 10 points behind them. It's not as safe as I thought. Yeah, right? I mean, the other sure. side is, right, they still have like a 40-point gap between them and third place. But if you know, S2G step up, if Vegatron step up, DRS, like influence, if they can't maintain performances, they could technically be knocked out of top 3. Yeah. The thing is, they already had that much of a gap for them in their first place that they're still safe, but like 2-3 games, so they're not getting too many points. And Buriram being extremely consistent yesterday and today is looking pretty good. What's not looking good though, Sandstorm, is alright, 15. What do you think of that? Queso 16th, so it's not the worst. That's about it. But no, like here's the thing. When we're talking about R8 and Team Queso, these are two teams that are yet to get a podium in the first place. They haven't managed to get themselves a top 4 in 13 games so far. Every other team has managed to do so. So their problem right now is just get a podium and then see if you can compete for the survival stage, because as of right now, it is getting increasingly more difficult for both of these teams, alongside Mad, EMT, and maybe even for Rivals All, to try and get themselves into the survival stage. But it's just getting very, very difficult, especially for R8 and TQ, and something has to change. I mean, I said something has to change yesterday, but I think we might be getting to the point where it's too late already for both of these teams. Well, you know what? I do want to bring our attention back to the last match a little bit, because I feel like Zone 2, when that popped, I think, Sandstorm, you said it's going to be a melee finish, Military Island finish, and Max was immediately like, no, it's not going to happen. But it actually went super far south to Military Island. I'm kind of feeling for all the teams who obviously weren't dropping that location. DRS, they dropped down there towards the eastern side, and yet DRS, I expected a little bit of better performance out of, considering they had the avenue to potentially gatekeep some teams, pick up some eliminations, but they had none until like the very end potentially, and then they went up against 4 rivals and lost that fight. So I was like kind of disappointed with the DRS we saw yesterday come into this match. I thought they would have performed better. Yeah, you had kind of 2 different styles that we saw on each bridge. So on the eastern bridge, you had DRS, who decided to hold for maybe just a minute, and then as the second Titans broke through, a lot of other teams decided to rotate, do exactly the same thing. DRS just gave up. There's no way that they can hold the bridge when a team's already passed. They might be able to flank you afterwards, and they decided to just go into the zone. When you look on the opposite side, though, you had IA, who usually drops a military base, but the zone didn't really help them in that situation. So they had a 3-to-1 split, and you had 3 squads fighting. It was IA, you also had MTech, and I believe it was Team Queso as well on the eastern bridge, all trying to fight. But it was just so congested for such a long time that a lot of teams just lost so many players, and they weren't able to compete in the later stages. Hey, otherwise, what you can do, you do what LGD did, you rotate. You just avoid all of that mess happening on the east and western bridge, and you just rotate and be relatively quick, because we saw it was a hard shift straight south. You know the bridges are going to be congested, teams are going to try and cross that river. You just hold on to the southern side of the circle the entirety of that game, and that's what LGD did. You're going to have top priority for For our watching, make sure to check out the YouTube chat link. You actually will have a survey there. You can go ahead and potentially win prizes if you fill it out. So make sure to go fill it out as soon as possible. But obviously within the next 6 minutes, because we have the next match coming up shortly here. But Maxman, really quickly, you were talking about LGD when we saw them in PEL. Is this the LGD you saw then? I would say this is way closer to what I saw in PL. The thing they did so well in PL is knowing how the lobby as a whole would react to every single circle, and they would get priority to positions that teams would try and get access to, but they would just always be there first, and they were there first in this.
For the first time, them playing at this level, at PMGC outside of their region, it took a lot of time to adapt, but if this is their new kind of normal performance, they're feeling good. They're feeling comfortable, and this is a team that can be willing to climb up the leaderboards. Well, we can see here our top performers when it comes to Miramar, which will be coming up next. S2G, Wow. 24 limbs, 31 rank points. What were you wowing at, Max? I'm wowing at Aegon X I8. Average survival time on Miramar. Like, sure, it's not as much Miramars as Erangels, but still 27-minute mark. We saw it happen a little bit earlier for Influence Chairman on Erangel, and that's still really good survival time and able to get himself some decent points there. So, I8, sure, not one of those big heavy hitters, but still a silent performer this event so far. Silent but deadly, some might call it. I8 showing they can actually play here without crypto as well, and they've actually been having a pretty decent performance in the last 2 days. They're in 8th place right now, so looking pretty comfortable to make it into our survival stage, but maybe top 3, who knows? We'll have to gonna see as the day progresses. But here's our drop locations when it comes to Miramar. Now, S2G, my eyes are still on them. I don't know about you two. I don't know if you even filled out a teams to watch here for this next match. Maybe you two can let me know about that one. But for me, that's one team I want to watch because I want to see if they can hit that level of performance they had yesterday. We need to see some sort of level of consistency out of this team, which we kind of got to see when it came to the European regionals. However, this is obviously a much more difficult lobby. Yeah, 100%. And I'm not waiting for the predictions, but yes, I already actually chose S2G a lot because of the same thought process. I wanted to see. We saw day 1, they only managed to get 30 points. Day 2, they managed to get a total of 95. So what's going to happen on day 3? Are we going to see that consistency again throughout the day? Or are they going to be having issues like they did on day 1? Because this is going to be a very important day. And we've seen what they did yesterday with the back-to-back. One of them was on Miramar. They also managed to get a 3rd place on yesterday's Miramar, 2nd Miramar rather. So now they have to keep it up if they want to keep fighting against Buriram, who are... I mean, to me, they were just so deadly over the past 2 days, but they've been very, very, I guess, under the radar. They've just been flying under the radar the entire time. What about, though, here, Sandstorm, I'll throw it back to you again. Influence Chairman, they lost 3 players really early. I remember listening to you talk about it, and you're like, wait a minute, what did they lose 3 players? Not a great sign. However, with the consistency they've had, as you pointed out before, it's not a big deal to not have a great performance on one battleground. However, going into match 2, at least for me, my eyes are going to be on them, because if they have another bad match, I'm going to start to get a little bit worried for this team, because yes, they've had 2 great days, but if this is their downfall right now, if this is the day where they start to tank it to pull a big galaxy from yesterday, they could be looking at being out of top 3. Yeah, exactly. And I still can't fathom the fact that they have, well, right now it's about, 9 out of 13 games where it's top 4 compared to Buriram, who have like 5 or 6. So when it comes to Buriram and them getting their top 4s, their top 5s, they're actually getting a lot of eliminations with it. But like we've seen in yesterday's game, it was Law surviving long enough to give them the placement points that they need. So they're making, or rather they're getting more points every single game when it comes to Buriram compared to the likes of Influence Chairman. Okay, well, Maxman, hi. Hi. Okay, just wanted to get you to say something before we head over to our casters here for match number 2 on Miramar with John, Allen, and Blake. I really liked Max's segment there. I thought it was really good and insightful. I'm having a great time with it. I'm keeping your hairstyle, by the way. Oh, I think you might have had a little bit of a tech problem there, Blank. Hopefully, we'll get you on board in just a second. I'm sure whatever you said was incredibly insightful, and if the stream heard it, I'm sure they'd agree with me. But we are getting into game number 2. Coming in from Group Red onto Miramar, coming off the back of LGD's second chicken dinner of the tournament. We saw them use 1 to ladder up out of that red zone, out of the bottom side of the table. But now they have managed to put a second one on the cards. They have got up to that front page of the overall standings, ending up on 111 points total.
at the end of that game. A really, really solid result for them, as well as Buriram putting a dent in that gap, leaving themselves 10 points behind Influence Kemen, who are now very much in danger of losing off that top spot. It's unlikely that we could see them slip all the way down past third, with S2G sat in third currently with 128, but it is that top spot that could definitely be changed moving forwards. Blank, are you back with me? I hope so. Can you hear me? Is it all good? No. I can't hear him, unfortunately. So if Blank is talking, I'm sure it's great. Have a go. Right. Well, apparently I'm speaking. I'm not sure, but we'll find out. And I'm going to fix this in the meantime, John. So you're going to have to go ahead. All right. I'm sure we're going to try and fix these issues. I think I'm hoping Blank can hear me. Yeah, okay. I'm going to keep going with this one. Blank's going to work with production to fix that one. But we're going to get into the first Miramar of the day. El Pozo playing path down towards the south side of Los Leones. And we're on board with LGD in the picture-in-picture. Who dropped out fairly early towards El Pozo. A lot of teams have been isolated away from this position a couple of times before. We've seen that northeast side as well be isolated out of games as well, which it seems like it will be going for again in this game. Okay. Oh, I can hear you now. Hello. Yes, apparently. Not sure what happened there. Everything was correct, but apparently everything needed to be muted and then unmuted, and then muted and unmuted again. That normally does it. That happens apparently, but here we are. These things occur, so you know that is just how the cookie crumbles. And sometimes you almost lose out on a chicken dinner when you had the best compound of the game, the whole game, as we saw from LGD versus Buriram. But again, Buriram, an extremely potent team, so you can kind of expect why that would happen. S2G though, Razy all in his lonesome versus R8. Let's see how this works. Oh no, S2G. They didn't have the best of games last time around, going down with the last player over towards that bridge, but seemingly here struggling. Unfortunately, the DBS is bearing down upon him. Gets one on the drop with the spray and the micro. He actually looks for a second as well. He's doing a hell of a job against R8, but I mean, it's just a little bit too much, even for Razy. The fact that he's able to take down two, though, is quite impressive. And he had two nades, so maybe if that first one hit, we were going to see something spectacular, something magical happen during this, but unfortunately not to be. Especially with the DBS. Taking the DBS down first as well is probably the most important target to go for. The fact that he's able to hit that is quite something indeed. S2G though, 128 points. Again, it looks like those old habits are coming back to bite, unfortunately, Don. And BTR looking for that direct invite towards the grand finals. DRS also not far behind, but I do have my reservations about DRS at this point, John, just because of the way they played that last game out. I felt like something much better could happen. And again, I think this is a clear gameplay difference. Oh my goodness me, that is one hell of... Go for the DBS as well. No, come on, be reasonable. Put that DBS away. Well, you saw the top 5 percentages there. That was quite an interesting stat, actually, because you look at what S2G had. They were, I think it was 38 point something, and then DRS coming in with a 53% top 5 finish. Yep. That's really, really interesting. Consider that S2G are third place right now. The longer this tournament goes on, if they keep to those numbers, if they keep to those averages, DRS just will outstrip them. There is no question about it. Yeah. It's great because this is the point I wanted to talk about anyway. But yeah, the thing with DRS and what you saw in that last game is they're very much an edge team, right? And if you go back on the VODs, if you go back and watch day 1 and day 2, I don't expect you to do that, guys, unless you're an absolute turbo PUBG Mobile fan, in which case, go for it. Turbo geek. That's what they call it. Turbo geek. A like Turbo Geek fan. But honestly, if you're looking back on those games, as I do, as I am a Turbo nerd, you will see that DRS is going for a lot of these edge style plays. They don't often take the center, and I think this is where maybe the game plan has to change slightly for DRS, especially when they get the circle. They don't have to play that outer edge gameplay anymore. They can move further in towards the center, and I feel like they're a team with the chops on them, with players like Gyante as well as Killer, that actually
should be able to take out and find themselves some of these big wins. You will, however, see that top 5 percentage being quite high because they're very often in towards those later parts of the game, but not always grabbing themselves those big wins. S2G, they do manage to get a point back in hand. Taking down one of the R8 players. Those are the only two teams who have lost a player so far. And it seems like S2G definitely made R8 work a lot harder for their elimination than they did on the vice versa. And why not? I mean, S2G, 3rd place, R8, 15th. Yeah, and I think that, you know, you look at S2G and that top 5% once again, which I'd love to see one more time because it was a brilliant little graphic that we didn't get to see for a very long time. But you look at that and it's just a case of when they win big, they really do rake in those points. But if they don't, they just go home. And that is just the way that S2G is currently playing. We saw that yesterday with their 2 big chicken dinners back to back. And then I think it was the 2nd place they're able to pick up on their Sandhawk versus Influence Kemen. Again, a very difficult team to contend with at the moment, right at the top of the lobby. But you look at that, and I think for S2G, they need to even out these averages, man, because they're becoming quite problematic for them. And again, it's those old habits that need to die, essentially, at this point in time, because they had such a strong start yesterday, heading center, being a bit more patient with it, not going for these wild plays, and instead using that gun skill, using that team fight power that they have on their side to their advantage in the late game, because these games do go on for a long time now, up towards that 30-minute mark on Miramar as well as Erangel. So if they can stick around, they really are a powerhouse in those last 10 minutes of the game, but often they're making these little mistakes here and there in the first 20 minutes, which are leading to them not having the best position when they get towards that position at the end of the map. I mean, if you're coming off the back of that, I would say personally, as a team, you're feeling a little bit rough around the edges. You know, I would be a little bit upset with my teammates. So unless they have the most unreal maturity, I think this game might be one of those ones where it's a bit quiet in the beginning and they just try and play out for as long as possible. This is a team that, you know, is fairly safe right now in 8th place with 107 points. But again, things could be safer going to the next day. But you are now also starting to see these drop-offs in a big way, John. I mean, you mentioned it, but it up to 160 points, Influence Kemen at 170, massive drop-off down towards S2G at 128 points. Similarly, down towards where we have our survival stage bracket, 11th to 12th place, you know, 74 to 69, you got 5 points there, but then it drops off in a big way from 10 points down to MTech Storm, and then another 9 points down towards Mad Bulls in 14th place. So a little bit more difficult for like these last 3 teams in the lobby, 14th, 15th, and 16th, to actually even jump up towards the survival stage. It will really take a massive day out of these teams to get them back and seen safe. And I think, honestly, for me, it would just be Mad Bulls here that is the big question mark at the moment, the real in the lobby. The real... Yeah. Right, Greek philosopher style. absolutely. I mean, they are trying to figure out what's going on. It should be, because it has not been ideal. As you say, bottom 5, this is not what you expect from a team like Mad Bulls, who were the keys of consistency in the European Championship. Rolling on into this one. Quattro wants to get Rez out the blue. Should be fine in zone 2. Rez the saviour. Happy days. Circle to center up down towards Chumacera. So a lot of this hillside down towards that south edge of Chumacera as well. LGD maybe looking to go for a similar win that they had on Miramar. I think it was day 1, I believe it was, towards the end of the day, or day 2.
where they were on top of the mountain, but Adam on the other side. That might be a play that they go for later on in the game, where it's kind of still uncertain whether it's going to lock in on that northern side of the circle or down towards the south. But we'll wait and see for that to pass. At the moment, LGD, after that last game, very happy with themselves. I think they've been on a consistent uptrend at the moment, which is great to see from a team that was very far down the rankings towards the beginning of this mini format tournament. I think we're sort of in this... I love these middle parts of tournaments, right? Because there's so many teams that are definitely having that potential to get into the top 3 at this stage. I'm kind of looking at 3rd place all the way down to pretty much 9th for Nigma Galaxy, sat currently 27 points behind 3rd place in 9th place. And that is a really tight bunch. That is a really tight peloton towards those middle of the tables. Obviously, you've got the streak out front runners from Influence Kemen and Buradam right now, but it is only halfway through this tournament, there and thereabouts. We've had one extra game, but there is definitely time for any of those teams in that positions 3rd through 9th to be able to make it. And I really find that nice and exciting in terms of the dynamics that brings to all of these engagements. Absolutely. I think that, you're looking at a lot of these teams at the moment who do have a chance to send themselves upwards. Again, this is only the second half, so there is still time to play around with. And there is 100% a possibility that Buradam, Influence Kemen, both drop off the track just a little bit, in which case S2G might be able to sneak their way back in, but I doubt that. I think S2G is a team that is currently hanging on by the coattails of yesterday, essentially. But there are teams underneath them that have had some decent performances, seem to have some improvements going on that could make their way into that top 3. Survival stage is where it's at, though, at the moment, and I think that when you're looking at that side of the match, there is many teams that would like to see themselves up towards that top 3. You want confidence going to that survival stage. I would say for Group Red, this is probably the most difficult time to be dropping into the survival stage. If you're in Group Yellow, for instance, you're in the survival stage. Next week, you're instantly then over towards that survival stage tournament. So you hot off the heels of gameplay. For these teams, they are going to be getting a little bit cold in the meantime. The Infinity rolling up on Tizzy, but they've been swung a doozy at him as Tamen reigns on into the fight as well. They will be dispatched, but there is a high angle from a teammate to try and suppress the Infinity from going for these full flushes. Chicken is on in as well, but he gets cooked out of the engagement. Mela and Newsy active for the Infinity right now. Godtunny bleeding out. Logan with a more replenished health bar, but MTech Storm going to give up the ghost on this fight. Not really worth it for them at the moment, John. I mean, with the one player knocked and only one player now remaining, it's going to be a bit difficult for them. Tizzy also out. Might want to go for a little bit more, but the Infinity seems to be in a really good spot. It'd be difficult to find anything. They have an idea where this player is as well. Soko heading further down towards that southwest side does open up these things when it comes to playing on that high ground. This is to the south of this engagement, in fact. There's a lot of open ground. It's hilly. There's a lot of ditches here. It's rolling valleys. Weird places to finish this game, honestly. Just purely, there's so many different variables that can happen this map. And also, there's not a huge amount of priority compounds, and you won't find those out until maybe zone 4 or 5. Box under pressure with the Bigatron line of fire. It seems like Bigatron have been fairly solid at maintaining positions towards the edges of these circles. It looks like they've really found their feet in that sort of aspect over these last couple of games. That's the impression that I've got from them. When we've seen them fairly consistently as a unit together in the late game. They do go down together sometimes, but I feel like that's why we are seeing them towards the top. Sure, I think when you look at BTR, they're certainly having fun with it still. I mean, Luxy playing some cool little greedy plays here and there. But again, it'd feel like a much more competent team overall. What I do like is they're doing something similar to what DRS maybe need to work on, which is a case of they play edge when edge is available to them. And if center is available to them, they'll take that center position. I think that just comes with experience throughout the years of PUBG Mobile that they've played. They're very quickly adapting to this type of style of map, type of lobby.
Next circle heads up towards that northern side. Massive amount of high ground towards the middle of this one. A lot of teams going to be impactful on this fight. Nigma Galaxy losing Freak Hamodi there. Probably on quite a difficult angle to hold. I mean, yeah, you're just going to get peppered away, Team K. So taking Nigma Galaxy out of the mix. And remember, this is the Nigma Galaxy that finished in, what was it, 2nd place after day 1. They have really had a downward trend that has been picked up by teams like LGD and by Bigatron. Seems like that as well. A lovely nade over the top from Break to find Gen Foster. BTR will lose one of their players. Not ideal, especially after I said that they didn't do that much. I mean, Gen Foster's usually the one to go down first anyway, considering he plays so up close and personal. He certainly plays a dangerous game for himself, and I think BTR were hoping to see if they can get initial pick-off and then catch the players they came out to go for the res. In this case, though, BTR just has to make a mad dash to a position in the circle that might give them some more benefit towards the late game, but this is over completely open ground. Looks like one of the vehicle's wheels got popped out, in which case DRS can continue to take some shots their way. Similarly, so can Box, and this is most likely where BTR will have to remain for a fair amount of the oncoming circles. DRS again, sweeping out this east side. Bigatron moved down the hill. Central for the Infinity. On the left-hand side of the road, or the west side of the road. As normally known. Buraram suffering, unfortunately, again in this engagement with Team Queso. At the bottom of the tables, they've had a little bit of an impact here. First of all, Nigma Galaxy, and now moving their attention over towards Buraram. Tiger is still active though, and you can never count him out. When you back him in a corner, certainly fierce. Bigatron, having shots sent their way from Box, from across the way from DRS. They are really out in the open here, and it's a difficult move they've tried to make. And it has kind of crumbling down at this stage. Misery, last standing for the squad. I mean, if DRS is playing their cards right and they see how this one's unfolding and they know that BTR is that team, they could easily have allowed Box to get into that position without taking shots so they can eliminate BTR, who are currently in front of them. Mad Bulls, they lose effect. Now, Monkey has to be consistently good with his nades, and usually finds at least one of them. This might be time for Mad Bulls to at least find something in this game. This is an isolated engagement from them, so if they can't win this one out, you're looking, things are going to get slightly dicey. That's a good nade over the top. Teak sent backwards. They will have to bring effect back into the fight, though. Come on, Mad Bulls, show us what you're made of. We've been waiting all tournament. 15th place is unbecoming. Run around the edge of the smoke. The backup from 6 not going to be able to find that sight line. Oh dear. The lineup was good. Look at that. Titan with the good spread. Skills' last player standing. Hang on a minute. He's brought effect back into the fold. The heal does come through. 2 players down for Mad Bulls. Only the 1 for Titan. So 3 players up and on the mound. They're playing close. The Mad Bulls might be able to look with one another if effect can get a shot on the side, if they can win their ones, but they will not be able to do it. And again, the Mad Bulls just fall flat, down in 16th place now. Not a single shot found there either onto any of them. I mean, Skills, it's depressing to watch because this is not the Mad Bulls that I'm used to. It feels like someone else is playing in their shoes over the last 3 days. Honestly, I would say at this point, and sadly as well to Mad Bull fans around the world, that I don't think that by tomorrow they'll be in the survival stage. I think this could just be a case of one of our most exciting upcomers in PMGC being left right at the gate. There was a moment there where Sandstorm was head in hands. All right, we're at the bottom of the tables, but they managed to pick up 2 eliminations, and they did jump ahead of Mad Bulls, so he's all right for now. He's wiping the sweat off the brow. He goes again on this one. 2 players alive for R8 on the north side. They're currently trapped between LGD and the remnants of S2G. It might rhyme, but it is not going to be pleasant on the ears for R8. I'm sure those bullets will be ringing out fairly soon. Egon XI8 playing in that central position after they managed to mount the top of the hill there. Everybody's going to be looking their way, though.
It's some really interesting terrain for the rest of the game now because you have all these teams up towards that northeast having to cross the road. You can see it there in front of you. This causes problems for many players. I8 might be able to hold out DRS. They consistently are playing this edge playstyle. I think this is where it makes sense considering they weren't able to immediately get over to this side of the circle so quickly. They will have to now contend with Team Queso as well as I8 on the top side. Titans have spotted out the players from R8, but the shots are coming back, and that's from Hamzy G from S2G, in fact. North side, spotted out. That's quite the distance there. That's about that's almost a 400-meter shot. That very nice to be able to tap that one away. LGD seeing the top of that hill. This big bunker that they're currently sharing with R8. This ridge line that's sort of isolating it away from a lot of those teams playing near the roadside. LGD want to play on this north. Nade's a bit short, but the Molotov is good. That'll be the remainder of R8 now down. CCC hitting the flames. Beautiful stuff. Delta scarily close to Screams, in fact. Ooh. Rattles off a couple shots for Reyes from Team Queso. Scream will get fallen in response. Delta, with rules up the top down, wants to have a little bit of a maneuver to try and keep them in this. Papi Potro very, very much split, leaving Reyes pretty much alone here. We'll be able to control some of the sight lines, but Titans are looking out this way. DRS are moving in to put the pressure on. They want this res. They should be able to stay up as 4 once they get it. And this south side is looking to be there. The Titans might have something to say about it, but in the meantime, it's 4 rivals clashing with bots over on the north side. They haven't even crossed the road yet. And this hurdle is once more needing to be cleared. A 2v1 right now between the squads, and 4 rivals heavily suffering, but so are Box as well. Trisme at the back, last standing for the squad. 1 player alive, 4 rivals. Pui close and up to the vehicle. Bullets ringing through. A smoke there wants to bring Break back into the box and play as 2 from here on out, but teammates are bleeding out fast, and Infinity might even be looking for a position on the alternate side of the road. They drop a vehicle there to give them some cover for later. I mean, they would love to get... LGD would love to have got into that engagement. Ayala tries to move up with the DBS, can't get quite close enough to make anything happen. And Papi Potro has been playing this backstop for so long, but DRS have been holding him out the entire time with some very good awareness on their part. It was coming crumbling down slightly for DRS as soon as they got that high ground removed from them by Reyes, but other than that, no, it was not meant to be. 4 rivals step up towards Trisme. No medical supplies on board. Can he make it happen? Has to pull out the second weapon, and that's it. Trisme, clutch player from Box, able to take out the final player of 4 rivals, but it will be a nade to finish it off. But 8 limbs, still happy with that. Really, really happy with that for Box. You'll take those, you certainly will. Shots over towards S2G, they only had 2 left, they're down to 1. Hamzy G against the Infinity will be felled as well. A nice result. The Infinity have been playing in this central compound for a long, long time. 6 eliminations to show for it, 3 players are alive, but now they're on the edge of the circle, and LGD might have the inside track. I mean, LGD have been, again, very slow, very cautious, playing this 2-2. S2G were able to take down one of their players, but they quickly were able to get their feet planted in, stabilize just a little bit, but they have to deal with Titans now, who also have some control over on this side. Very open ground in front of them, a couple of rocks to play around with, but Axa, with this fantastic angle down towards them from the high ground, it will be difficult to dislodge him from this position. And again, what we have to look at here for LGD is the amount of space that they have to cover in the next 7 minutes. It is going to be difficult for them. What they would ideally like would be a northwest shift on the circle. Not really anyone in this circle has the most dominant position. It will be down to how each team plays out their rotate and how this next circle operates. Got XI8 putting nades up to the north towards the Infinity. But that's beautiful from Logan. From downtown, lands it, fades Ghost, and another one to follow it up. Actually nasty. Oh, that was a Molotov. Okay, I thought that was another nade. I thought that was going to be a 1-2 punch. Don't even need to see him. Smoke blooming out wide, giving a little bit of cover for a route in for the Infinity to sweep down towards the south. It seems like that's what they want to go for.
PMGC playing in those foothills. DRS on the backside of that mound to their left. Titan, 2-2 split right now on the west side. LGD trying to control from the north. You've got to be proud of the Infinity. The amount of times they got into the late game so far from what was a horrific start of the day on day 1. All the way into day 2, in fact. They started getting some big wins, which was really important for their scoreline. And for the Infinity, who have taken first places across the board this year, it really would be a massive shame for them to go out here in Group Red in the first week. Titan moving up and over the hill. Getting those sightlines and establishing a little bit more control over towards DRS, towards the Infinity as well. And LGD, who are just plinking away here. Aegon XA on the outside of the circle. Trying to move forwards, but cut short by DRS on their maneuvers. Killer playing forwards and up the hill. And I think we're going to be down to LGD, DRS, and Titan in a matter of moments. Circle doesn't really favor anyone here, and LGD is still able to play from this little lip at the moment. MVM sent over that side to ensure that Titans don't get the outside track on them. Looks like they're trying to rotate behind, but MVM was able to put a stop to that. They have vehicles, they have some cover to play around with. Suki has to hit those shots over towards the Infinity. Immediately backs off. 5 nades as well, so we'll be able to maybe stop these players from moving in. But now, again, it's Titans who have always been this big problem for LGD throughout. Set up in the vehicle, they have high ground over the top of them. They can move further in. This is one of the small compounds that has been remaining in the circle for a long while. No one's been really able to touch it because getting up to it would require you to be open towards these sight lines. But at this point in the game, I think Titans can be quite comfortable that this side of the map is cleared out. We have just teams on the north, west, east, south. It's the full compass. To me, it feels like either Titans or DRS. Taking a look at the lay of the land, that's who I'm backing. I'm backing that south side rather than the north here. Aegon XI8 feels like they're a little bit trapped. LGD, they have that ridge line to crest. And against so many sight lines, it's going to be brutal. There's a little bit more cover ahead of DRS, and Titan have the compound. Do worry slightly for a lot of these teams. Again, another circle comes in, centers up, everyone has to move inwards. LGD were happy with their position on the northern side, still provided them some cover. As you can see, this is just the basin that everyone will be heading into soon. It's going to be full combat. Titans have to leave their compound, but will try to do as much damage as possible before vacating, pulling out the sledgehammer, tearing down the walls here. Aegon XI8, the only team with 3 left. And it looks like they're trying to hedge their bets. Split themselves off to cover. They're not really going to be able to claim a lot of sight lines here. Instead, they're just going to try and keep their heads down. Valuable tire pop coming through from YZ. But he's backing off. They're not going aggressive. They're repositioning and they're getting ready their move. They're making ready their march into this next circle. CCC taking shots up towards DRS. IA also chiming in. Through the players going down, and that will delay them massively. So important for DRS to be able to get out, but making the first move, they were the ones that made the sound, and everyone was waiting underneath the rocks, ready to strike. DRS with 2 now. LGD pick off a Titan. With 4 of themselves alive, they now have the major advantage in this circle. Nobody else at full force with Puncher down. That leaves Titan at 3. LGD nearly take a knock over towards CCC, but do manage to squeak that away behind the smoke. Get out of danger, get out of dodge. DRS on 2, playing in the blue zone. And look at that, 2-3 teams now taking shots out their way. It's difficult. They didn't manage to make it to the cover in front of them. They haven't been able to play around those trees or get to the ridge lines ahead. And Aegon XI8, they have been keeping their nose clean. This is just wonderful map knowledge coming through from LGD, and now it's time to just try and send central as possible for LGD. With the vehicles they're able to hold on to, with the cover that they set up, they'll be able to outlast a lot of these teams coming out from the blue. I8 will finish off the final members of the RS. Titans, though, spot at least one of those players.
In the meantime, they've got troubles of their own as one player is knocked, trying to bring it back on the feet, but that will delay them quite a bit. Oh. That's a great nade, and CCC just has to throw one more, but only one more in the pocket has to make it count. Will be able to find both of them as it bursts in the air. Slivers of HP found, and he picks up the 7-10 split. Cut down on the back as Teak rains hell down from the top. Oh, 1-2 fall to the crosshairs. Teak absolutely furious about that. Will not let it lie, and LGD now turn the tables. They're down to 1. Wiser cannot afford to be burnt away here. Forced out on the res. The zone will be closing, but they have a central position. Gets 1 res through. Teak not so lucky. Trying to get cut down out in the open on the cross. Ooh, Ghost. Needed from Ghost. Aegon XI8 looking to spoil the day for LGD, but they are sticking these reses. 2 players alive for Titan, 2 for Aegon XI8. LGD recruits 3. Still with 3 here, it will all matter about the nades. Maybe UZM's nade was better placed over towards LGD. There it is. As YZZ Elite picks up 1, that's both of them down. 3v2, John. LGD with a chance for the back-to-back here, Blank, to put themselves in a great stead for the tournament tables. Aegon XI8 with a blinder of a game as well. 4 eliminations so far, guaranteed second place. 3 players alive for LGD, though. They know exactly what they're up against. They know what they've got in the pocket. 11, and they're going to rack up that big 12 elimination chicken dinner for a back-to-back victory. They dominate on Erangel. They follow it up. A bit trapped, but getting over that ridgeline, using the ground to their advantage, making it work. That's what LGD does, and that's what hopefully they'll continue to do. Maxman, LGD, what's going on? Back-to-back chicken dinners, 27 points. They're your boy LGD. You get to call him LG. I call them GD. Yeah, I don't know. LGD short enough, but yes, my boys LGD. They're doing great. I knew it was going to take some time because once again, it is their first time playing outside of their region, but now they're feeling comfortable. Now they're feeling good, and they're pulling the 10,000 IQ rotations every single game so far today. I'm stoked, Jason. I'm loving it, and I'm telling you, it's just a start. LGD, they're starting to heat up, and the lobby better be shivering in fear because they're not going to stop.
Well, I mean, you have yet to put them on your teams to watch today, so maybe that has something to do with it, or maybe you're going to start to put them on. Could they be the first team to go back to back to back? We almost saw S2G do it yesterday. I'm still not going to pick them. I'm staying far away from that. I don't want any trouble, guys. Okay? I don't want anything to deal with that. Do you mind if I pick them then? Sure, go for it. Knock yourself out. Well, I know who Max knock is going to pick them. He's going to pick R8, of course. Make sure you guys get your predictions in over in the YouTube chat as well for the upcoming match of who you think is going to win. Now, you could probably go with LGD. I think they've generally been number 2 when we looked at our predictions, and DRS number 1. Yet DRS hasn't gotten that chicken dinner done for themselves. But either way, we are seeing again a big change. Different teams stepping up on day 3 that we had on day 2, that we had on day 1. I8 is also a team we need to talk about here just a little bit. आता रह गया इस मैच में, तो आता रह गया। लेकिन न चलें, अब बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग्स की, जहां पर कुछ चेंजेस हमें नजर आ रहे हैं आदि। जी बिल्कुल अलादीन, और काफ़ी मेजर चेंजेस। खैर एज सच चेंजेस हमें S2G, ओ माय गॉड, S2G तीसरे पायदान पे थी, चौथे पे भी नहीं आए, बल्कि 5वें पर आ चुके हैं। BTR को देखें आप, BTR को आप देखें, BTR 8वें पे चली गई है। आज से पहले, आज के दिन के आगाज़ होने से पहले वो चौथे 5वें पर थे, और अब वो 8वें पर जा चुके हैं। सो एक बुरा मैच आपको काफ़ी नीचे लेकर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब एगोनिक्स I8 ने थोड़ी बहुत अपनी लीड, जो लीड है तीसरे स्पॉट के दरमियान और 7वें स्पॉट के दरमियान, उसको काफ़ी हद तक नैरो डाउन ज़रूर किया है। 16 पॉइंट्स मजीद उन्होंने लिए हैं अपने बैकपैक में। लेकिन आगे सेकंड पेज के ऊपर सूरत हाल ख़राब बनती हुई निग्मा गैलेक्सी पहले पेज से दूसरे पेज पर आ चुकी। बिल्कुल निग्मा गैलेक्सी पहले पेज पे चली जाएगी, और अब थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि वो क्या ऐसी गलतियां कर रहे हैं। हालांकि ये वो टीम थी जिसने आगाज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लिया था। बात करते हैं इन्फिनिटी की, जिनके पास इस वक्त अभी तक कोई चिकन डिनर मौजूद नहीं है। लेकिन वहीं पर फॉर रबल्स, बॉक्स गेमिंग, EM टेक टीम को टीम R8 और मैरबल्स को भी हम इसके साथ साथ देख लेंगे। साथ इसके साथ हम जाएंगे एक छोटे ब्रेक की तरफ। ब्रेक करते ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। कहीं नहीं जाना, स्ट्रीम को लाइक कीजिए, अपने की बहुत सारा ख्याल। वी विल बी राइट बैक।
अस्सलाम वालेकुम तेरे साथ एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? और खुशामदीद के साथ साथ बात करेंगे अगले मैच की। अगला मैच स्टार्ट होने वाला है, सीधा मैच की तरफ जाएंगे। आज के दिन का तीसरा मैच और सनों का ये मैच है। आदि खुशामदीद के साथ साथ आपसे पूछना चाहूँगा, प्रेडिक्शन गेम हो जाए जरा, कौन सी टीम आपको लगता है इस मैच में डोमिनेशन करने वाली है? आई थिंक सो एलजीडी नहीं करेगी। ये मैंने आपको बता दिया कि एलजीडी इस मैच के अंदर डोमिनेट उस तरह से नहीं करेगी कि वो इस मैच का चिकन डिनर ही ले जाए। हाँ, टॉप 5 के अंदर हो सकते हैं क्योंकि मोमेंटम काफ़ी अच्छा उनके पास आ चुका है। आई बिलीव इस मैच के अंदर S2G फायर बैक करने वाली है इस मैच, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना तीसरा स्पॉट गंवाया है पिछले मैच के बाद, वो उन्होंने थोड़ा सा अपनी ईगो पे ज़रूर लिया होगा। अल्लाह आपने ये बता दिया कि कौन परफॉर्म करेगा कौन नहीं करेगा। अब मेरा सवाल स्पेसिफिक टीम के बारे में, जिस टीम के लिए ये उर्दू वॉच पार्टी, उर्दू कास्टिंग नॉट वॉच पार्टी हो रही है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि भाई बाकी 15 टीम्स को भी देखें, वो भी लॉबी खेलने आई है, हम उन पर बात करते हैं। तो प्रॉब्लम इज उर्दू स्पेसिफिकली, जब हम उर्दू साइड पे जब हम जाते हैं, अगर ये इंग्लिश होती तो हम सब टीम से बात कर रहे थे, बिकॉज वो एक मिनट डाइवर्सिटी आ जाती है, आपको 16 टीम्स के बारे में बात करनी होती है। एक्चुअली अलादीन, इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि बेसिकली पीछे से हमें ऑर्डर्स भी होते हैं कि यार यू शुड टॉक अबाउट योर टीम, क्योंकि आपका जो लोकल रीजन है वो आप लोगों को इसीलिए सुनता है ताकि आप अपनी टीम के बारे में ज़्यादा बात करो। लेकिन खैर, यहाँ पर एक वही ड्रॉप क्लैश बनता हुआ जो हम पिछले 3 ही दिनों से देखते हुए आ रहे हैं। एक ही बुलेट से उन्होंने नॉक किया प्लेयर को और घुटनों पर लेकर आए हैं, लेकिन S2G के रेज उठते हैं वापस से। टीम R8 के एक और मजीद प्लेयर को गिराया भी गया है। S2G ने अभी अपना एक ही प्लेयर नॉक करवाया है। ऑन दी अदर हैंड टीम R8 अभी तक सर्वाइव कर रही है। इसके टन काफ़ी ज़्यादा लो है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो पीछे भाग जाते हैं। नेड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं रेज, और प्रेस्टीज को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा भागते हुए और घुटनों पर ले आए हैं R8 के स्केटन और प्रेस्टीज। अब यही दोनों प्लेयर यहां पर सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉप क्लैश क्यों ड्रॉप क्लैश? जब दोनों ही टीम्स को नुकसान पहुंचेगा तो क्यों ये ड्रॉप क्लैशेस हो रहे हैं अलादीन, खासकर सैनहॉक में सिर्फ? देखिए, मुझे तो इस चीज़ पे दुख आ रहा है कि जब ऑलरेडी ये बात जानती है टीम R8 कि वो बॉटम पे मौजूद हैं और जिन टीम से वो क्लैश ले रहे थे आर ऑन द 5th स्पॉट, तो फिर कंपटीशन लेने का, फिर फाइट लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन लुक एट टीम BRU स्लॉली INF क्लोज चले जाए कि INF का अगर ये मैच बुरा चाहता है, BRU उनसे ऊपर भी जा सकती है। ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई एक ऐसी टीम नजर आए जिसके पास 50 पॉइंट की सिक्योरिटी मौजूद हो, तमाम टीम्स आसपास ही मौजूद हों और आखिरी दिन तक ये पता ना हो कौन सी टीम क्वालिफाई करिए। ऐसा कंपटीशन देखने का मजा आता है। लेकिन आदि, लेट्स गेट बैक टू द कैमरा शॉट जहां पर प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज लॉबी रीहोस्ट हो रही है ड्यू टू सम डिले। लॉबी इज गेटिंग रीहोस्टेड, लेकिन R8 इज गोना बी द हैप्पीएस्ट टीम। आदि बिल्कुल लाते हैं। और यार अब मैं देखना चाहता हूँ कि आने वाला जो सैनहॉक है जो रीहोस्ट होकर आएगा उसमें ये ड्रॉप क्लैश ना हो। आपने R8 की बात की, मैं S2G की बात करूंगा कि यार उनको ज़्यादा सेंसिबल होना चाहिए अलादीन, कि अगर R8 बाज नहीं आ रही पिछले 2 दिनों से और टीम S2G अपना तीसरा स्पॉट भी गंवा चुकी है, फिर क्या ज़रूरत है उसी जगह पे उतरने की? और मेरे ख्याल से ज़्यादा केयरफुल सर्विस सारी चीज़ में होना चाहिए टीम R8 को, बिकॉज वो बॉटम पे मौजूद है। अगर वो बॉटम पे ना होते, अगर वो अच्छे स्पॉट्स पर होते, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप रिस्क ले सकते हैं। बट अगर आप ऐसी जगह पर रिस्क ले रहे हैं जहां पर आप सर्वाइव ही ऑलरेडी बॉटम पे कर रहे हैं, तो व्हाई आर यू डूइंग दैट? क्यों कर रहे हो भाई? क्या वजह है? क्या मजबूरी है? क्या तकलीफ है? क्या दिक्कत है? क्या काम है? क्या चाहते हो? बॉटम पे मौजूद हो आप यार, क्या बात, आपको कम बैक करना है यार। एंड ऐसे थोड़ी ना कम बैक होता है, बट प्रॉब्ली वो चाहते हैं कि वो टीम S2G को अर्ली एलिमिनेट करके वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस लें कि हमने टेबल की टॉप टीम को एलिमिनेट किया है, अब हम कुछ कर सकते हैं। फिर तो उनको नहीं, अगर यही लॉजिक है फिर तो उनको क्लैश इन्फ्लुएंस केविन के साथ देना चाहिए अलादीन। वो तो फिर ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि वो सीधा फाइनल में चले जाएंगे उस मैच के बाद और प्रॉब्ली सीधा घर चले जाएंगे इस मैच के बाद। लेकिन प्लेयर्स दिखाते हैं आपको, प्लेयर शॉट एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जहां पर तैयार हैं आपके फेवरेट प्लेयर्स। DRS के प्लेयर्स क्या ही जबरदस्त खेलते हैं लड़के। साउथ एशिया की शान आज तक हम सिर्फ ST को कहते थे, मुझे लग रहा है कि DRS का भी ये नाम रखना पड़ेगा कि साउथ एशिया की शान है ये टीम। बिल्कुल अलादीन, और अभी तो हमने असल साउथ एशिया की शान को देखना है जो कि टीम स्टालवर्ट है। अलादीन, मुझे थोड़ा सा बाकी ग्रुप्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि ख़ास तौर पर मैं IHC का नहीं मैं ज़्यादा जिक्र करूँगा, लेकिन स्टालवर्ट का मैं ज़्यादा करूँगा। जनरली क्या आपके थॉट्स हैं उनके बारे में? PMGC में खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, आगाज़ लेट लेंगे या क्या करेंगे?
मुझे मेरी गट फीलिंग ये कह रही है कि टीम ST इस बार परफॉर्म नहीं करेगी। हमेशा वो करती आई है, मैंने हमेशा उनका साथ दिया, मैंने हमेशा चाहा है कि वो परफॉर्म करे, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार ST थोड़ा सा मुश्किल में है, क्योंकि बिकॉज उनका ग्रुप बहुत टफ है, और ग्रुप टफ होने के अलावा भी मुझे लग रहा है कि लाइक ये पहली बार ऐसा होगा। जिस तरह से आपने IRC को देखा था लास्ट, अगर आपको याद हो, जो पहला PMGC जीता खेला इन्होंने, उसमें ये टीम सेकंड आई थी IHC, लेकिन अब उसके बाद आप देखें IHC साउथ एशिया चैंपियनशिप में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। सो कभी कभी बुरे टाइम बुरा वक्त आता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ST का बुरा वक्त होगा, बट आई एम स्टिल नॉट श्योर। फील आ रही है एक, वहीं पर ये भी फील आती है कि ST डोमिनेट करेगी, बिकॉज उन्होंने हमेशा किया है ऐसा, वो कैपेबल हैं इस चीज़ के। बिल्कुल, अलादीन कैपेबल तो काफ़ी ज़्यादा हैं और टीम स्टारलॉर्ड ईस्पोर्ट्स के पास एग्रेशन है, लेकिन आपकी बात एक अगर हम उसे यहाँ पर मैं कहूँ कि आपकी बात ठीक है कि ग्रुप उनका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कि उसके अंदर जो हमारे डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं वो भी वहीं पर मौजूद हैं और VPE भी वहीं पर मौजूद है। सो ख़ास तौर पर इन दोनों टीम से तो ख़तरा हर ही लॉबी को है, क्योंकि नोवा जैसी कंसिस्टेंट टीम हमने नहीं देखी। ऑब्वियसली वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल टीम है। इस पूरी सारी टीम्स में से अगर एक टीम मुझे कोई चॉइस मिले कि सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है तो वो नोवा ही है। लेकिन खैर, सैनहॉक का मैच रीहोस्ट हो चुका है, ख़वातीन हज़रात वापस से हम उसी जहाज़ को देख रहे हैं जो कि उड़ान भर चुका है। मैच नंबर 15 है, चंद ही मैचेस बकाया बाकी रह जाएंगे आज के दिन के बाद, सिर्फ 6। और अभी के लिए देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। प्लेन पाथ की तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे सैनहॉक के अंदर, लेकिन ड्रॉप क्लैश अलादीन बताइए होगा या नहीं होगा? होगा ड्रॉप क्लैश फिर से होगा। वही टीम्स दोबारा से ड्रॉप क्लैश की तरफ जाएंगी। एंड आप प्रॉब्ली देख सकते हैं इस वक्त स्ट्रेटजी को, वो जा रही है जिस एरिया पर, वहीं पर R8 नहीं जा रही। ओके, R8 अवॉइड करिए। नहीं, दे आर नॉट अवॉइडिंग, दे आर अगेन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं और दे आर नॉट अवॉइडिंग, दे आर मेकिंग श्योर अलादीन की ये ड्रॉप क्लैश हो। दे आर मेकिंग श्योर कि वो फिर लॉबीज आए। अलादीन यार क्यों, मुझे दुख होता है यार। PMGC के स्टेज को एक रिस्पेक्ट दो यार, एक रिस्पेक्ट दो। और R8 वंस अगेन एलिमिनेट हो जाती है। What should I say? पिछली बार तो शायद उन्होंने एक नॉक भी निकाला था, इस बार तो वो भी नहीं हुआ। एक किल कंफर्म किया था शायद, पिछली बार किया था या नहीं किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है पिछली बार S2G वो एक बुरी पोजीशन में थे थोड़ी सी। हाँ ठीक है, R8 तो बहुत बुरी पोजीशन में थी। अच्छा, पिछली बार उनका एक प्लेयर बचा हुआ था, इस बार उनका वो प्लेयर भी नहीं बचा हुआ थी, वो भी लॉबी चला गया। लेकिन इन्फिनिटी ओके अलादीन, देखें जब ज़्यादा आप ड्रॉप क्लैशेस के अंदर मुलविस होते हैं तो ये होता है। दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल कि क्या होगा। अब S2G ये ड्रॉप क्लैश हुआ, इन्फिनिटी ऑब्वियसली उनके कोचेज़ ने देखा होगा कि यार पिछले दिनों से ये चीज़ हो रही है और ये दोनों टीम्स बाज नहीं आ रही, कोई भी अपनी जगह नहीं चेंज कर रहा, तो इन्फिनिटी ने मौके का अब वो फ़ायदा उठाने के लिए आ चुके हैं। टीम S2G थोड़ी बहुत उनको भनक ज़रूर लगी है कि शायद कोई ना कोई प्लेयर्स यहाँ पर मज़ीद और भी मौजूद हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। लेकिन इन्फिनिटी दे आर वेरी श्योर कि कोई ना कोई एक टीम R8 और S2G में से अभी तक सर्वाइव कर यहाँ पर रुकी हुई है। लेकिन इन्फिनिटी के प्लेयर्स अब वो फॉल बैक कर रहे हैं, वो ज़्यादा टाइम अपना ज़ाया नहीं करना चाहते और ज़्यादा इनकी तरफ से परफॉर्मेंस भी हमें देखने को नहीं मिली। इन्फिनिटी बीइंग द चैम्पियंस ऑफ PMRC रीजनल कप के वो चैम्पियन रहे हैं और इसी के साथ साथ काफ़ी कुछ गलत भी हो रहा है उनके साथ। उनको अभी वो स्टेज नहीं मिल पा रहा, वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा। आई डोंट नो व्हाई एडजस्ट नहीं हो पा रहे। डिवाइसेस का भी एक इशू हो सकता है ऑब्वियसली, इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन टॉप ऑडियंस प्रेडिक्शन आपकी स्क्रीन पर ख़वातीन हज़रात आ चुकी है और DRS हमेशा की तरह ऑडियंस, नेपाल की जो ऑडियंस है चार्ट में एक्टिव रहते हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स हमारे, और अच्छे खासे वोट्स उन्होंने दिए हैं। 44% ऑडियंस के जो है उनके रहेंगे तासुरात के DRS चिकन डिनर लेकर जाएगी और LGD के भी चांसेस हैं अलादीन। बिल्कुल जी, लेकिन बात करेंगे इस वक्त मैट बुल्स की, जो कि हमारे सामने मौजूद है। मैट के सीरीज को हम देख रहे हैं। मैट बुल्स लास्ट मैच बहुत ही ज़्यादा बुरा जाता है एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग के वेस्टर्न यूरोप चैंपियनशिप की डोमिनेटर टीम मैट बुल्स इतना स्ट्रगल करेगी। लेवल ऑफ कंपटीशन देख लें फिर तो, हालांकि फिर तो अपनी I8 बेहतर है भाई। बिल्कुल अलादीन, I8 बहुत टीम से बेहतर है,
बहुत ही टीम से बेहतर है। आप 4 राइवल्स को देखें, वो मोमेंटम ही नहीं पकड़ पा रहे। एक मैच में अच्छा खेलते हैं, दूसरे मैच में इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाते हैं। बॉक्स गेमिंग एग्रेशन बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने आज के दिन। अच्छा, लेकिन वही बात है अगर ये देखा जाए कि मैड बुल्स जो कि वेस्टर्न यूरोप की डोमिनेटर टीम है वो यहाँ के स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आई8 पाकिस्तान रीजन से जो कि डोमिनेटर टीम है वो यहाँ जाके परफॉर्म कर रही है। सो आई8 को अगर वेस्टर्न यूरोप भेजा जाता है ये तो जीत जाएंगे भाई वहाँ जाके। ये कहीं पे भी जीत सकते हैं अलादीन। ये ऐसी टीम है जो कुछ भी कर सकती है। एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और एक हमारी ई स्पोर्ट्स की टीम, ये कहीं पर भी रहते हुए कुछ जीते हैं। ये शहजादे हैं ये हमारे, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार डेलिबरेटली दिल से निकल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हैविंग आई8, लाइक लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक टीम ग्लोबल में जाके, मैंने कल भी हसन को ये बात कह रहा था कि मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ज़िंदा रहने तक पाकिस्तान से कोई टीम जाके परफॉर्म करेगी, बिकॉज हमें लगता था कि शायद हम सिर्फ टेकन में ही अच्छे हैं। बट यहाँ पर जो है वो टीम आई8 ने बताया कि नहीं यार ऐसा नहीं है, आप ज़्यादा उम्मीद मत छोड़ें, हम हैं आपका आपके क्या कहते हैं आपका दिल रखने के लिए और मुल्क का झंडा जो है वो लहराने के लिए। लेकिन चलें बाकी 15 टीम्स की लॉबी में उन पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। INF वर्सेस टाइटन्स चल रहा है। टाइटन्स ने लास्ट खेल जो खेला है, अगर आपको याद हो, टाइटन्स के ऊपर जो खेल खेला है LGD ने, और टाइटन्स काफ़ी दुखी ज़रूर होंगे उसके बाद। लेकिन INF बार बार आज के दिन के बड़े मैचेस, अभी तक मेरे ख्याल से 4 से 5 पंच लेने में शायद कामयाब हुई है ये टीम। 170 से ही प्रॉब्ली इन्होंने आगाज़ किया था आज के दिन का और वहीं बैठे हैं अभी भी। जी, ख़ासी मुश्किलात में फंसी हुई हैं। टॉप जो आज के दिन के आगाज़ होने से पहले जो टॉप 3 टीम्स थी वो उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रही। और S2G तो खैर अपना नीचे भी आ गई है टॉप 3 से। LGD ने उनकी जगह ले ली है, अब टॉप 3 के अंदर वो आ गए हैं इस मैच में। सो BRU अभी फ़िलहाल के लिए आउटसाइड द सर्कल है। R8 का स्क्वाड इनिशियल्स में ही इस मैच में हमें छोड़कर चला गया है। टीम बॉक्स आप देख रहे हैं कितना बॉडी लैंग्वेज में चेंज आया है सानॉक के मैच में। अलादीन आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा टाइटन को, कितना पैसिव वो खेल रहे हैं। बॉक्स भी उस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज नहीं मुझे देखने को मिल रही जिस तरह से आज के पिछले मैचेस में देखने को मिल रही थी। आई थिंक सो सानहॉक की वजह से ही है कि वो कोई अननोइंगली ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करना चाहते जिसकी वजह से उनको कोई खुमियाजा भुगतना पड़े। लेकिन खैर LGD के प्लेयर अभी रोटेट कर रहे हैं और LGD के Y-ZZZ अभी आगे की तरफ रवानगी इख्तियार कर रहे हैं। ओ एक बाइक फ्लिप है, इनको बोनस पॉइंट्स 5 में ज़रूर दूंगा। साथ ही साथ उतर कर उन्होंने स्काउट भी किया कि कहीं रंगे हाथों में पकड़ा ना जाऊं और मुझे यहाँ से बाहर ना कर दिया जाए। लेकिन अब मजीद अपनी वेस्पा के ऊपर वो आगे जा रहे हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं ये जाते हुए, मैं ज़रूर कहूँगा। एनक भी उन्होंने लगाई हुई है मेरी तरह। लेकिन INF के प्लेयर्स वो नहीं ये जगह छोड़ना चाहते, वो फाइट ये लेना ही चाहते हैं टीम टाइटन के अगेंस्ट। टाइटन्स को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा, अभी भी काफ़ी केयरफुल वो नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है उनकी, हर एक कंपाउंड के अंदर एक एक प्लेयर मौजूद है। लेकिन INF के प्लेयर टाइटन के 6 को नॉकडाउन कर सकते हैं। आसान है नॉकडाउन करना बज़ाहिर, लेकिन INF सिंस उनको भी कुछ पॉइंट्स चाहिए वो भी घबराए हुए हैं। टीम अब BRU भी घबराई हुई है, S2G भी घबराई हुई है। DRS बहुत अच्छा खेल रही है आज के दिन। इनके अलावा आज के दिन मुझे लगता है I8 के पास बहुत चांस है क्योंकि टॉप की जो टीम्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रही। INF S2G ने परफॉर्म नहीं किया उस तरह से। BRU करने की कोशिश ज़रूर कर रही है लेकिन वो खातिर खा जो परफॉर्मेंस है वो नहीं आ रही। इस पहले पेज में से स्ट्रॉन्ग जो टीम्स हैं वो AGX I8 नज़र आ रही है, टीम टाइटन नज़र आ रही है, DRS नज़र आ रही है। इन तीनों के पास आज के दिन चांस रहेगा कि वो टॉप 3 क्लेम कर सकते हैं। लिख लो ये बात, Onyx I8 को 2 मैचेस चाहिए सिर्फ आज के दिन टॉप 3 क्लेम करने के लिए। एक अच्छा मैच और एक सूटेबल पॉइंट्स के साथ उनको एक एवरेज मैच चाहिए। लेकिन अभी के लिए मैड बुल्स जिनकी हम बात कर रहे थे, लीडर बोर्ड के ऊपर सबसे आखिरी पायदान पर मौजूद, हालांकि इनका जो रहता है रुतबा रहता है उसके बरअक्स ये लोग मौजूद है लीडर बोर्ड के ऊपर। लेकिन सर्कल एक हार्ड शिफ्ट लेकर जा चुका है। सानॉक के अंदर एक्सपेक्टेड था हार्ड शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट आ भी जाता है। लादन बिल्कुल ये हार्ड शिफ्ट कहने की लारे लगाएगा BRU Onyx I8 DRS निगमा गैलेक्सी को, लेकिन निगमा गैलेक्सी तो आसानी पहुंच पाएगी बिकॉज रिसलेंट पर वो मौजूद है, वहीं पर सर्कल है। टीम I8 की रोटेशन देखना हो कि क्या वो बूट कैंप वाली साइड से रोटेट करते हैं जहाँ पे क्लस्टर है या फिर उनकी तरफ से कोई एक लंबी रोटेशन लॉन्गर रोटेशन दी जाती है। सिमिलरली DRS को भी मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा रोटेट करते हैं। लेकिन INF टीम टाइटन्स को पकड़ती हुई रोटेशन के टाइम पर नॉक निकाला जाता है, थर्स्ट भी मिल सकता है, लेकिन लकीली प्लेयर सर्वाइव कर जाएंगे। फेडरल यहाँ पर ओपन में मूव कर रहे हैं। फेडरल की तरफ से ये जो मूवमेंट दिखाई सारी गलत थी, उनकी वाज़ेह कर सकती है। लेकिन लुक एट दिस, मैं कहना चाहूँगा ब्यूटीफुल रोटेशन वॉक या फिर कह लें कि फ्लैंक वॉक जो किया गया इनकी तरफ से। फ्लैंक एंगल पर जाएंगे तो डिफेंस साइड से होल्ड किया जाएगा। एंड व्हाट इज मैड बुल्स डूइंग? मैड बुल्स क्या कर रही है यार?
मैड बुल्स आर गोइंग मैड राइट नाउ, और वो टीम अपने साथ साथ बाकी टीम्स को भी पागल करना चाह रहे हैं, लेकिन खैर ये पागलपन चाहिए स्टेज के ऊपर आकर। ये अननोइंग रशेस, ये स्लैम इन्स काफ़ी ज़रूरी हैं मैड बुल्स के लिए, खास तौर पर क्योंकि उनको इनिशियल पॉइंट्स जो है वो चाहिए थे, लेकिन टाइटन्स को एलिमिनेट कर दिया जा चुका है इस मैच से, और ये चीज़ टीम एगॉन एक्साइड के लिए बेहतर साबित हुई है क्योंकि उनसे ऊपर ही वो मौजूद थे। सो एक बड़ी मछली पहले पेज से तो एलिमिनेट हो चुकी है। AGX-I8 को अब सिर्फ अपनी रोटेशन के ऊपर काम करना है इस मैच के ऊपर, क्योंकि हार्ड शिफ्ट है, सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाना आसान नहीं होने वाला किसी भी टीम के लिए, लेकिन मैड्स को अभी भी थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा, थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि INF के प्लेयर्स काफ़ी देर से जगह पर मौजूद थे, जो किल्स वो लेना चाहते थे वो मैड्स लेकर चले गए हैं। BTR भी यहाँ पर आ चुकी है। सो BTR के जक्सी हायर ग्राउंड पर हैं और सबसे ऊपर बैठकर हर एक चीज़ को देख रहे हैं बाखूबी तौर पर। मैड बुल्स के लिए यहाँ से निकलना अब खासा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर कुछ सूरत हाल बनती हुई EM टेक के प्लेयर्स मौजूद हैं। टीम एगॉन एक्स-I8 के एक प्लेयर को नॉकआउट करने में कामयाब, दूसरे प्लेयर को भी गिरा दिया जा चुका है। एगॉन एक्स-I8 रोटेट कर रही थी, ड्यूरिंग द रोटेशन उनको सरप्राइज किया गया EM टेक की तरफ से। EM टेक के एक प्लेयर ने 2 नॉकआउट निकाल दिए हैं। एगॉन एक्स-I8 के ब्लेड अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। घोस्ट भी बैकएंड के ऊपर लो ऑन HP है और काफी खासी मुश्किलात में एगॉन एक्स-I8 अब फंस चुकी है। सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बच चुके हैं। निग्मा गैलेक्सी का भी बैक टू बैक तीसरा मैच अच्छा नहीं जा रहा, जिसमें 3 प्लेयर्स गिर चुके हैं और LGD बिल्कुल उनके सामने मौजूद है। सुक रिवाइव दे रहे हैं अपने प्लेयर को, लेकिन निग्मा गैलेक्सी की कहानी अनकरीब खत्म होने जा रही है। स्ट्रगलिंग प्रोसेस काफी टीम्स का चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसका भरपूर फायदा टीम LGD भरपूर तरीके से उठाती हुई, जहां पर बाकी लॉबी स्ट्रगल कर रही है वहां पर यही टीम पुरसुकून है और यही टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। EM टेक के प्लेयर्स ने एलिमिनेट कर दिया है एक और मजीद प्लेयर। एगॉन एक्स-I8 के अब आखिरी प्लेयर सरवाइव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। EM टेक के चिकन, जिनका नाम ही चिकन है, चिकन डिनर वो ज़रूर लेना चाहेंगे बाखूबी तौर पर। 3 किल्स अभी तक उनके पास बेहतरीन आ चुके हैं, लेकिन बॉक्स के प्लेयर बिल्कुल करीब मौजूद हैं और MVP के ऊपर नज़र रखे हुए बैकएंड के ऊपर INF के प्लेयर देख रहे हैं। INF के प्लेयर देख ही रहे हैं अभी तक सारी टीम्स को, वो कुछ ना कुछ अभी नहीं कर पा रहे। किल स्टीलिंग वो करना चाह रहे हैं। पहले उन्होंने टाइटन्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की, अब वो बॉक्स गेमिंग के ऊपर आंखें जमाए। बिल्कुल जी, वो जानते हैं कि यहाँ पे मौजूद तमाम टीम्स केपेबल हैं और इतनी आसानी से कोई किल्स नहीं देने वाला, लेकिन INF अब EMT के ऊपर कहर बरसाने की कोशिश करते हुए नॉक निकाला जाएगा उनकी तरफ से। लेकिन सर्कल को देखें आप, सर्कल BTR की तरफ चल जाएगा, लेकिन LGD पिंच हो जाती है 2 डिफरेंट साइड से। DRS पैकेज उनके आती हुई BRU सामने मौजूद है। LGD की अब एलिमिनेशन बनने वाली, बिकॉज वो 2 डिफरेंट साइड से फैंटी खा रही है। किल फीड में मैड बुल्स वर्सेस BTR भी चल रहा है। मैड बुल्स के ऊपर 2 नॉक्स निकाले जाते हैं, किल कंफर्म भी किया जाता है। मैड बुल्स के 3 प्लेयर्स इनफैक्ट रह जाएंगे, 1 नॉक निकालकर किल कंफर्म किया जाता है, लेकिन DRS के खिलाफ IT यहाँ किल्स उठा सकते हैं। बट किल फीड में EM के TC को डाउन करते हुए घोस्ट नजर आएंगे। घोस्ट यहाँ पर अपनी टीम का बदला लेना चाहते हैं, किल कंफर्म भी कर जाएंगे। टीम एगॉन एक्स-I8 1 किल उठाते हुए अभी भी जिंदा है, अभी भी जिंदा है और 123 पॉइंट्स उनके पास आ जाते हैं। आई बिलीव उनको 10 पॉइंट्स अगर इस मैच से मिलते हैं, 8 पॉइंट्स और मिलते हैं तो वो ओके। EMT के चिकन भी डाउन हो जाएंगे। घोस्ट यहाँ पर सोलो बदला लेते हुए किल फीड के अंदर नजर आते हैं, लेकिन वहीं पर BRU के ग्रेनेड जाता है और LGD के ऊपर किल कंफर्म किए जाते हैं। LGD का अब आखिरी प्लेयर जिंदा रहेगा, लेकिन घोस्ट का ये जो मैं कहना चाहूँगा बदला है वो किस तरह से कंप्लीट होता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर 4 आवर्स के ईपू किल कंफर्म करते हुए नजर आते हैं। एक और प्लेयर का इन्फिनिटी के, और इन्फिनिटी इस मैच से बाहर हो जाएगी। लेकिन किल फीड अब वहाँ पर फिर से I8 का नाम, घोस्ट का नाम आता है या नहीं आता ये देखना पड़ेगा। वहीं पर BRU अब रोटेशन करते हुए सर्कल में जा रही है। LGD के चंगसी आई बिलीव उनकी पोजीशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है इनको बिल्कुल। लेकिन बात करेंगे इस वक्त एस्ट्रोजी की, जो कि 4 लेवल के ऊपर कैर बरसाते हुए कि 4 लेवल के आखिरी प्लेयर जिंदा रहेंगे। 4 लेवल्स उन्होंने अभी कुछ सेकंड्स पहले इन्फिनिटी को एलिमिनेट किया था, उनके आखिरी प्लेयर यहाँ पे मौजूद है। एंड EMT जिन्होंने I8 को एलिमिनेट किया था, उनके भी आखिरी प्लेयर यहाँ पे जिंदा रहेंगे। EMT वर्सेस एगॉन की फाइट चलते हुए, लेकिन वहीं पर बॉक्स गेमिंग भी आ जाती है टीम एगॉन एक साइड के घोस्ट के सामने। घोस्ट यहाँ पर एक नॉकर निकालते हैं, बट ही गेट्स टेकन डाउन और किल फीड मैंने सब होता हुआ देखा जरूर। लेकिन एसजी की बात करेंगे, एसजी यहाँ पर नॉक्स निकालते हुए 5 किल्स उनके पास आ जाएंगे। 4 आवर्स के ऊपर अभी कुछ नॉक्स ऐसे हैं जो किल में कन्वर्ट नहीं किए गए, वो होते हैं, तो इस टीम के पास 8 किल्स आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग स्टार्ट इस पूरे मैच में टीम एस्ट्रोजी ने निकाला है।
बल्कि लेकिन S2G जहाँ पर अभी किल्स कंफर्म कर रही है, उनके पास सर्कल का जो है वो एज भी मौजूद है, लेकिन IN वर्सेस TRS फिर से बनता हुआ LGD के आखिरी प्लेयर की तरफ से BRU के प्लेयर को डाउन किया जाता है। BRU जो कि अपने 4 प्लेयर के साथ जिंदा थी, 3 प्लेयर के जिंदा थी, उनको अब 2 मैन स्टैंडिंग किया जाता है और LGD के बैकपैक में चौथा किल आता हुआ, लेकिन जोन से डैमेज खा रहे हैं ये प्लेयर। अनफॉर्चुनेटली सर्कल इस तरह का हो चुका कि आप हील बैटल नहीं कर सकते। DPS सर्कल का बढ़ाया जा चुका है, डैमेज पर सेकंड सर्कल का बढ़ाया जा चुका है, लेकिन किल फीड DRS वर्सेस INF की फाइट को प्रोसीड करते हुए नजर आती है, जहां पर INF के ऊपर नॉक्स निकाले जाएंगे। इसकी तरफ से DRS यहाँ पर काफी ज्यादा इस मैच में भी इंटैक्ट नजर आ रही है। 3 किल्स उनके पास मौजूद हैं, एक प्लेयर उनका खुद डाउन हो चुका है। वहीं पर बॉक्स गेमिंग को देखें आप, 4 किल्स उनके पास मौजूद हैं। बॉक्स की रोटेशन काफी शानदार है, लेकिन S2G उनको पनिशमेंट दे सकती है। S2G यहाँ किल्स उठा जरूर सकती है, लेकिन S2G वहीं पर अगर हम बात करें उनके पास जो एरिया मौजूद है वो सर्कल में भी बासानी जा सकते हैं। फॉर नाउ दे आर इनसाइड द सर्कल, वो हाथिन की तरफ बासानी जा सकते हैं अगर वो पानी की तरफ रोटेट करते हैं, क्योंकि बिकॉज उनकी जो बैक साइड है, उनकी ईस्टर्न साइड है, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं आती और तमाम टीम्स का फार वेस्टर्न साइड से रोटेट करना वहाँ एक क्लस्टर बनाता है और अब हमारे पास सिर्फ 12 टीम्स और 26 प्लेयर्स अंदर आती। जी बिल्कुल लादेन, और टीम S2G के प्लेयर रोटेट कर रहे हैं। ये मैच उनको अपने लिए अपने हाथ में लेकर जाना है, सिंस टॉप 3 टीम्स अभी तक के लिए जो लीडर बोर्ड पे हैं, INF, BRU, LGD, सबके 2 से 3 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम S2G ऑन दी अदर हैंड 4th स्पॉट पर चारों के चारों प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रही है। फिलहाल बॉक्स गेमिंग के अगेंस्ट वो फाइट लेना चाह रहे हैं। 7 किल्स भी उन्होंने इस मैच में स्कोर कर लिए हैं। UMP 4-5 लेकर जाते हैं। कुछ ब्लाइंड फायर्स इंगेज करने की कोशिश की गई है। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स पानी के अंदर मौजूद है और एक फिलहाल के लिए हार्ड कवर में तो है, लेकिन ज़्यादा देर तक यहाँ पर वो सर्वाइव ना कर पाएंगे। यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है टीम S2G के खिलाड़ियों की तरफ से, लेकिन कैल्सी देखते हुए नजर आ रहे हैं और कॉन्स्टेंटली उनके क्रॉसेज जमे हुए हैं। टीम S2G ये 2 फ्री किल्स अपने गंवाना नहीं चाहती, लेकिन EMT के एमन एक और मजीद किल कंफर्म करने में कामयाब रहते हैं। S2G के रेज बॉक्स के बेंजू को इस मैच से एलिमिनेट कर देंगे। BTR के लक्सी हाई ग्राउंड के ऊपर मौजूद है। INF के प्लेयर फायदा उठाते हुए आहिस्ता से रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खामोशी के साथ रोटेट किया जा रहा है और एक तरीके से रैप राउंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वैली का होल्ड, कंप्लीट होल्ड टीम BTR ने अपने हाथ में संभाला हुआ है। BTR के मिजरी स्पॉट डाउन करने में कामयाब रहे। M416 मौजूद रहेगी। लक्सी बैक एंड के ऊपर लो ऑन HP है, उनके पास भी M4 मौजूद है, लेकिन INF के लॉ को उनको एलिमिनेट करना ही होगा। INF के फेडरल काफी ज्यादा लो ऑन HP है, स्पॉट डाउन भी किया जाता है, नॉक भी किया जाता है उनको, और BTR एक मजीद किल इस मैच में अपना कंफर्म कर ही लेगी। लक्सी सर्वाइव कर रहे हैं। BTR अच्छा होल्ड करती हुई बिल्कुल टॉप पर मौजूद थे, काफी देर से होल्ड उन्होंने किया हुआ था, लेकिन बहुत बेहतरीन नॉक। फेडरल इन एक्शन आते हुए किल नहीं कंफर्म कर पाएंगे, लेकिन अपने प्लेयर को उनको रिवाइव जरूर करना है। मिजरी छलांग लगाते हैं INF के प्लेयर्स के अगेंस्ट, अब वो मजीद फाइट नहीं लेना चाहते। जोन भी आ चुका है, DPS डैमेज पर सेकंड भी बढ़ चुका है और 4th फेज ऑफ द सर्कल है। 16 मिनट हो चुके हैं। खासी टीम्स इस मैच से एलिमिनेट हो चुकी हैं, सिर्फ 11 ही टीम्स बाकी बची हुई है। LGD के चेंगसी अपने आप को रिवाइव करते हुए, अपनी हेल्थ को रिवाइव करते हुए, लेकिन ज्यादा देर तक वो भी सर्वाइव ना कर पाएंगे। मेड किट्स तो उनके पास अच्छी खासी मौजूद है, थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा सा लेट रोटेट करना चाहेंगे क्योंकि कहीं उनको एलिमिनेट ना कर दिया जाए, लेकिन BTR के प्लेयर को बैक हैंड से पिंच डाउन करते हुए टीम मैड के प्लेयर्स इस मैच से बाहर कर देंगे और BTR गेट्स एलिमिनेटेड। लेट रोटेशन नहीं करनी थी BTR को, लेकिन सर्कल के अंदर अभी के लिए एनिग्मा गैलेक्सी के सिर्फ एक ही प्लेयर अच्छी जगह पर मौजूद है। दूसरी जानिब के ऊपर मजीद भी खिलाड़ी है मुख्तलिफ टीम के, लेकिन LGD के प्लेयर बढ़ते हुए आगे, अकेले प्लेयर हैं, ज्यादा देर ना सर्वाइव कर पाएंगे। TQ के प्लेयर बिल्कुल सामने है, हायर ग्राउंड के ऊपर वो जाना चाहते हैं, अपने लिए कुछ एदाद वो टॉप 5 के अंदर अपनी टीम को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन गाड़ियां उनकी उलट जाती है, फंस जाते हैं। अब उनको ऑन फुट अपनी रोटेशन कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी। 5th फेज ऑफ द सर्कल है। 17 मिनट्स हमें ऑलरेडी इस मैच में किक इन किए हुए को हो चुके हैं अलादीन। बिल्कुल, लेकिन मुझे BTR की खेल की समझ नहीं आई। जहाँ पर वो हिल के किंग बने हुए थे, जहाँ पर उनके पास सर्कल मौजूद था, किस तरह से वो टीम अपना सर्कल का एडवांटेज खोती है और इस मैच से बाहर जाती है, ये चीज़ समझ नहीं आई बिल्कुल भी। लेकिन फिलहाल LGD को आप देखें, हाइट पे मौजूद है उनके एक प्लेयर चेंगसी अकेले इस टीम को किल्स पे दिला रहे हैं, इस टीम को सर्वाइवल पॉइंट्स पे दिला रहे हैं। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, लेकिन 8 टीमें और 16 प्लेयर जिंदा। काफ़ी सारी टीमें ऐसी हैं जो अपने एक 2 प्लेयर के साथ जिंदा है, जिनमें मैड बुल्स है, जिनमें पॉक्स गेमिंग है, फॉरएवर है, टीम LGD, टीम निग्मा गैलेक्सी एंड BRU। लेकिन फिलहाल टीम S2G काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। 7 किल्स उनके पास मौजूद हैं। इस पूरे मैच का सेकंड निकालने में सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी, सबसे बड़े नंबर्स टीम S2G के पास रहेंगे, लेकिन
TQ का भी एक अच्छा मैच हो सकता है बिकॉज उनके पास भी 3 किल्स, उनके पास सर्कल भी है इनफैक्ट, और उन्होंने एक प्लेयर ऑलरेडी जोन में अंदर भेजा हुआ है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है टीम TQ के लिए। अलादीन 2 ही टीम्स है जिनके पास चिकन डिनर जाएगा और क्लियरली नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर S2G होगी या TQ हो सकती है, लेकिन TQ के प्लेयर आमने सामने आ रहे हैं टीम S2G के। अगर इस फाइट के अंदर इन दोनों के 2 से 3 प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, 2 प्लेयर्स फॉर एग्जांपल इन दोनों के एलिमिनेट हो जाते हैं, हाँ फिर किसी भी टीम के पास चिकन डिनर जा सकता है। लेकिन बॉक्स गेमिंग सिर्फ 2 ही एलिमिनेशंस लेने के बाद इस मैच से बाहर हो जाती है। TQ अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, BRU के प्लेयर वो भी कोशिश कर रहे हैं 2 मैन सर्वाइवल करने की, लेकिन S2G और टीम TQ की फाइट होना बहुत ही ज़रूरी है बाकी टीम्स के लिए। लेकिन 4 राइवल्स के पास सर्कल जाता है, सर्कल का खासा हिस्सा अकेले ही खिलाड़ी के पास मौजूद है। निग्मा गैलेक्सी के लॉर्ड भी कंपाउंड्स के अंदर हैं और एक स्लाइट एज आ रहा है उन कंपाउंड्स के ऊपर। BRU के टाइगर 3 ही किल्स हैं। मुश्किल रहा है ये मैच, आई डोंट नो मुश्किल रहा है या मुश्किल इन टीम्स ने अपने लिए खुद बनाया है। कोई बहुत ज़्यादा अननेसेसरी फाइट्स भी हमें देखने को मिली हैं इस सारे मंजर में। कुछ रोटेशंस के अंदर काफ़ी इश्यूज हमें देखने को मिले, जिसकी बदौलत अब हम 19 मिनट हुए हैं सिर्फ हमें इस मैच में। हालांकि हम देखते हैं सैनहॉक के अंदर इस स्टेज के ऊपर रहते हुए कम से कम भी 10 टीम सर्वाइव कर रही होती थी, लेकिन अब हम 7 टीम्स पर हैं, जिनमें से बेशतर टीम्स के 3 से 4 खिलाड़ी एलिमिनेट, 2 से 3 खिलाड़ी एलिमिनेट हो ही चुके हैं। अलादीन बिल्कुल इस स्पेसिफिक मैच के अंदर हमने देखा कि अर्ली फाइट्स, अर्ली एलिमिनेशंस काफ़ी टीम्स की बनी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर LGD के प्लेयर ग्रेनेड स्पैम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैट के मंकी वो यहाँ ये किल कंफर्म करते हैं। उनका ग्रेनेड पहले कनेक्ट कर जाता है और अब लॉबी भेजने के साथ साथ 5 किल्स मैट बुल ले चुकी है। दे आर इनसाइड द सर्कल, दे कैन गेट अ लॉट ऑफ किल्स एज वेल। लेकिन वहीं पर TQ की पोजीशन देखें आप, अगर सर्कल TQ की तरफ आता है, TQ को बहुत सारे ईजी किल्स मिलेंगे, लेकिन there is a challenge जो कि टीम मैट बुल्स की सूरत में TQ के बिल्कुल साथ मौजूद है। जी बिल्कुल, और TQ के प्लेयर्स अच्छे लग रहे हैं फिलहाल, बहुत बेहतरीन लग रहे हैं, लेकिन एक भी प्लेयर मजीद एलिमिनेट हुआ तो वो जो ख्वाब देख रहे हैं चिकन डिनर का, वो उनसे छीन लिया जाएगा। टीम S2G के 2 प्लेयर्स को गिराने में कामयाब रहे। BRU के प्लेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट ही टीम को एलिमिनेट कर दिया है उन्होंने। BRU के टाइगर बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बहुत ही असल खिलाड़ी, 720 यही है इस सारे मंजर में। लेकिन S2G के हमसी को भी इस मैच से बाहर कर दिया गया है। S2G डाउन टू 1 मैन सर्वाइवल पर आ चुकी है और अब TQ को अपने मैन एडवांटेज को मजीद रखना है अपने पास और इसकी हिफाजत करनी है, क्योंकि वही एक स्क्वाड है इस मैच इन सारी टीम्स में से, इन 5 टीम्स में से जिनके 3 खिलाड़ी अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। मैट बुल्स के प्लेयर नॉक कर सकते हैं और इस मैच के अंदर बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर रही है मैट बुल्स की। जिस तरह से उन्होंने रशिन किया टाइटन्स के ऊपर, सही फायदा उठाया उनकी कमजोरी का। एक प्लेयर उनके पहले ही नॉक थे, 2 प्लेयर को इंस्टेंट ही एलिमिनेट किया उन्होंने जाकर। लेकिन अभी भी कहना नामुमकिन है कि कौन सी टीम चिकन डिनर लेकर जाने वाली है, क्योंकि अगर TQ से जोन हटकर रिज से नीचे आ जाता है तो फिर TQ को मूव आउट करना पड़ेगा। और ड्यूरिंग दिस रोटेशन टीम BRU और मैट बुल्स के पास अच्छा खासा एक मौका होगा टीम के ऊपर स्कोर करने का किल्स। लेकिन अभी के लिए एक और मजीद टीम्स एलिमिनेट हो जाती हैं। एक और टीम एलिमिनेट हो गई है, BRU 5 किल्स लेकर इस मैच से बाहर होते हो कि BRU अभी तक सर्वाइव कर रही है। 5 किल्स की के ऊपर वो गए हैं डोमिनेशन के ऊपर, लेकिन मैट के ज़ेरी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। हायर ग्राउंड को संभालने की कोशिश की जा रही है, डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन BRU के प्लेयर अब एलिमिनेट हो सकते हैं TQ के हाथों ही। और 2 से 3 टीम्स अभी तक सर्वाइव कर रही हैं। मैट बुल्स के आखिरी प्लेयर हैं, रिवाइव नहीं दे पाएंगे, लेकिन आमने सामने आते हैं। मैट बुल के ज़ेरी स्पॉट आउट करते हैं एक प्लेयर को, दूसरे प्लेयर को गिराने की कोशिश की गई, लेकिन पापी पोत्रो राइट ऑन टाइम ही क्लिक्स द एक्शन और उस बुलेट पर उनका नाम लिखा गया था। मैट बुल्स भी एलिमिनेट हो गई है। द फाइनल 2 टीम्स आर सर्वाइविंग, BRU वर्सेस TQ। काफी ज्यादा लो इन HP है स्क्री, और स्क्री को अब अपने आप को रिवाइव करना है, अपनी हेल्थ को वापस से बढ़ाना है और उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। छलांग मारेंगे, इसके दौरान ये नॉक भी हो सकते हैं, लेकिन स्पॉट डाउन करने में कामयाब टाइगर रहे। एक प्लेयर को गिरा दिया जा चुका है, दूसरे प्लेयर जोन से नॉकआउट हो जाते हैं, तीसरे प्लेयर कोशिश जरूर कर रहे हैं चिकन डिनर लेकर जाने की, लेकिन आउटसाइड द सर्कल है। BRU के अकेले प्लेयर इस मैच का चिकन डिनर अपने नाम करते हुए, लेकिन TQ के स्क्री बिल्कुल बीच में मौजूद है। वो कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी तरह प्री फायर्स दिए जाए और इस मैच पर अब फुल स्टॉप लगाया जाए, लेकिन नेट का इस्तेमाल करते हुए टाइगर को नहीं अंदाजा कितना लो HP है प्लेयर। नेट थ्रो करते हैं, दरख्त पर पहले ही नेट था और नेट के ऊपर अपने कदम रखे BRU के पास ये चिकन डिनर जाता है। जस्ट लुक एट द हैप्पीनेस, जस्ट लुक एट द हैप्पीनेस, कितना खुश है लड़के इस मैच के चिकन के बाद। अलादीन बिल्कुल जी, खुश होना बनता भी है। BRU ने जिस तरह से चिकन छीना है 1v3 सिचुएशन में, क्या गलती की जाती है
TQ की तरफ से, और क्या ही गलती को पकड़ा जाता है BRU की तरफ से, जहां पर जोन एक बड़ा दुश्मन बना टीम TQ का। वहीं पर BRU ने जिस तरह से संभल कर खेला है यार, they deserve it, they literally deserve it, and I believe second डिनर BRU के खाते में दर्ज होता हुआ, और ये सेकंड डिनर उनको टॉप 3 की रेस में से आएगा आदि। अमेजिंग टीम, लेकिन क्या सर्वाइवल निकाला है, लग नहीं रहा था कहीं से भी, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि TQ हाइट एडवांटेज के साथ चिकन ले जाएगी, बट BRU मेड इट इम्पॉसिबल फॉर देम। और वहीं पर टीम स्टार्ट्स हमारे सामने आते हुए जहाँ पर 6 किल्स निकाले हैं टाइगर, 6 किल्स निकाले हैं टाइगर ने, और 811 का हाईएस्ट डैमेज भी रजिस्टर किया उन्होंने। और दूसरी तरफ इसके बरक्स सिर्फ 147 का डैमेज उन्होंने लिया है इस मैच में, हालांकि 4 नॉकआउट उन्होंने निकाले थे, 2 किल उन्होंने स्टील भी किए हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस है, बेहतरीन सोलो परफॉर्मेंस है BRU के। टाइगर की टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट में भी मौजूद हैं ये। BRU माय नेम पी की साइड से भी अच्छी कोशिशें की गई। टोटल ओवरऑल एक जो टीम गेम हमें देखने को मिला वो बहुत बेहतरीन था। हालांकि काफ़ी देर से ये टीम 3 मैन स्टैंडिंग थी, काफ़ी देर तक इन्होंने सर्वाइव किया। रोटेशन बहुत अच्छी रही एंड सर्कल्स के अंदर, जिसकी बदौलत वो इस मैच का चिकन डिनर भी लेकर जा पाए। लेकिन TQ ऑन द अदर हैंड आखिर में आकर काफ़ी ज़्यादा चोक इन्होंने किया है, क्योंकि एट अ पॉइंट दे वर ओनली द स्क्वाड जिनके चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे। उस 1v1 के अंदर, उस 1v3 सिचुएशन जहाँ पर मैड बुल्स के प्लेयर थे, उन्होंने भी नॉक किया था, उसके बाद रिवाइव दिया और लेट हो गए सर्कल के में आने में, और जिसका भरपूर फ़ायदा BRU ने उठाया। बिल्कुल जी, BRU भरपूर फ़ायदा उठाती हुई नजर आती है इस चीज़ का। लेकिन बात करेंगे हाईलाइट्स की, जहाँ पर बहुत बेहतरीन खेल दिखाया जाता है टीम LGD की तरफ से आगाज़ में। लुक एट दोस नॉक्स, निगमा गैलेक्सी हैड नो आइडिया कि उनके साथ हो क्या रहा है। 3 नॉक्स निकालते हैं सुख, लेकिन उसके बाद फॉरएवर्स के ईपू को देखा हमने, उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छे नॉक्स निकाले गए। शिफ्ट देखें आप इस प्लेयर का, जो एंगल शिफ्ट किया इन्होंने फ़ौरन से, कह लें कि एक प्लेयर से बैक साइड पे जो प्लेयर था उसके ऊपर रिफ्लेक्स जो उन्होंने मारा, लेकिन फिर मैड बुल्स के मंकी ग्रेनेड स्पैम कहते हैं यहाँ पर। मैड बुल्स ही जिस तरह से मैं कहता हूँ वो टीम हो सकती है जो कि चिकन डिनर टीम TQ का थ्रो करा सकती है, कोशिश उन्होंने की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो जोन था वो ज़्यादा बड़ा ख़तरा साबित होता है टीम TQ के लिए। एंड बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स वो शायद ये सोच भी नहीं रहे होंगे कि हम इस मैच में चिकन लेकर जा सकते हैं आदि। वाकई अलादीन, उन्होंने तो सोचा उनके, और ये चीज़ उनकी सेलिब्रेशन से वाज़े थी कि उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यार वाकई हम लोग चिकन डिनर लेकर चले गए। दिस वाज इम्पॉसिबल एट दैट प्लेस, जहाँ पर इनकी टीम काफ़ी देर से इनके 2 प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके थे। लेकिन खैर 24 पॉइंट्स कुल अपने बैकपैक में हासिल इन्होंने किए हैं। टीम क्वेस्को जो कि प्रॉमिसिंग थे कंटेंडर इस मैच के चिकन डिनर के लिए, सेकंड स्पॉट लेकर जाते हैं, और 17 टोटल पॉइंट्स उन्होंने लिए। टीम S2G 17 पॉइंट्स के साथ अपना मैच खत्म करती है तीसरे पायदान पर। आई बिलीव एक अच्छा मैच टीम S2G का भी निकला है बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ी सी यहाँ पर जो एक शुरू में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, कह लें कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत आपको दे दी। वो जो 16 पॉइंट्स वाला ग्राफ आपको दिखाया गया था ख़वातीन साथ, जहाँ पर 15 पॉइंट्स डेल्टा के पास थे, वो 16 पॉइंट्स का मतलब 16 किल्स नहीं था, बल्कि ये था कि प्लेयर्स ने अकेले कितने पॉइंट्स लिए। जब वो अकेले थे आदि, तब उन्होंने कितने पॉइंट्स लिए। सो डेल्टा, इफ यू रिमेंबर, एक मैच में अपनी टीम को सेकंड स्पॉट पर लेकर आता है, दैट्स द रीजन व्हाई ही इज ऑन द टॉप इन 16 पॉइंट्स। लेकिन ये मैच ऑब्वियसली कुछ टीम्स के लिए अच्छा नहीं रहा, DRS के लिए अच्छा नहीं रहा। DRS ने ठीक खेला इस मैच में। देन इसके मैच है वो I8 के लिए अच्छा नहीं रहा स्पेसिफिकली। INF इस मैच में अर्ली एग्जिट ली जाती है, दे कुड नॉट परफॉर्म इन दिस मैच। लेकिन वहीं पर मैच रैंकिंग्स हमारे सामने आई थी, जिनमें हमने देखा कि हमें एगोनिक साइड इन्फिनिटी टाइटन्स R8 बॉटम पे नजर आए। DRS के पास सिर्फ 4 पॉइंट्स थे इस मैच पे। बट ओवरऑल रैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हालात किस तरह के बन रहे आती। बिल्कुल, और ओवरऑल रैंकिंग आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। बुरीराम यूनाइटेड ई-स्पोर्ट्स ने ओवरटेक कर लिया है फर्स्ट स्पॉट, और इन्फ्लुएंस केमिन सेकंड स्पॉट पर अब आ चुके हैं 176 पॉइंट्स के साथ। 188 पॉइंट्स BRU लेकर जा चुकी है। S2G ई-स्पोर्ट्स ऑन दी अदर हैंड अपना #3 वापस से क्लेम करते हुए LGD गेमिंग को एक स्पॉट नीचे धकेल दिया जा चुका है। इसके बाद जो नीचे टीम्स मौजूद हैं उनकी तरफ से भी एक पायदान नीचे आया ज़रूर गया है। AGX I8 का भी ये मैच इतना बेहतरीन नहीं जाता, लेकिन निगमा गैलेक्सी की कंसिस्टेंसी सेकंड पेज के ऊपर ये है कि उन्होंने अपना #9 नहीं छोड़ा अलादीन। बाकी लॉबी शिफ्टिंग कर रही है, बाकी लॉबी दुनिया इधर से उधर हो रही है, लेकिन निगमा गैलेक्सी अभी तक #9 पर ही है। अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, आप क्या कहेंगे अलादीन?
बिल्कुल, हम ज़रूर पूछेंगे अलादीन से कि वो क्या कहेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटी की। इन्फिनिटी आ तो रहे हैं ऊपर, लेकिन एक पायदान इस मैच के बाद वो भी नीचे गए हैं। बॉक्स गेमिंग भी अपने लिए कुछ खातिर खा परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पा रही, उन्हीं के साथ साथ नीचे भी उनके जो टीम्स मौजूद हैं उनकी तरफ से भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। ये मैच खासा मुश्किल रहा है। पिछले जितने भी मैचेस हम लोगों ने विटनेस किए हैं उनसे जल्दी इस मैच के अंदर टीम्स एलिमिनेट हुई हैं, और सिर्फ 7 ही टीम सर्वाइव कर रही थी। लाइक 19 मिनट के बाद सिर्फ 7 टीम्स मौजूद थी, जिनमें से 90% ऑफ द टीम्स वो सिर्फ अपने 2 या 1 प्लेयर के साथ सर्वाइव कर। लेकिन गोस्ट का इंटरव्यू जो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लेट्स मूव देयर एंड देखते हैं कि गोस्ट क्या कहने वाले हैं इस वक्त अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में। सो लेट्स जस्ट गो देयर। I am Ghost from i8 Esports. All right, thank you very much. And of course, I got a couple of questions for you. And we've already witnessed throughout the tournament days. And on day 1, you guys were placed in 14th. But after that, in day 2, you guys have managed to gain 62 points in the day, which is great overall. So could I ask you, what has you managed to change between these 2 short days? तो पहले दिन आप लोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे, और सेकेंड डे आप लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी जो चेंज करी है कि आप लोग पहले लो 5 में थे, अब आप लोग टॉप आ गए हो, तो क्या स्ट्रैटेजी चेंज हुई आपकी? कोई ख़ास मतलब यही है कि अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा। पहला दिन समझने में लगा टीम्स को और मेटा को, तो पहला दिन समझ आया तो दूसरे दिन इसलिए कम बैक कर पाया। First day they were just trying to understand the game, and once they understood the game, then they just did a comeback in the game. That's great to hear, and that's where I really want to also check on you guys when it comes down to this competition. Of course, it's a very different level of play. So what was the biggest adaptation that you guys have to make from playing in the PMPL South Asia and now in the PMGC? तो पहले जब आपने गेम खेला था, ये वाला ऑब्वियसली उससे ज़्यादा एक लेवल अप है और बड़ा कंपटीशन है, तो क्या आपने स्ट्रैटेजी चेंज करी है, यहाँ पे आपने क्या अडेप्ट किया एज कम्पेयर टू पहले वाला गेम? PMPL और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे लैन इवेंट्स वगैरह नहीं होते, और यहाँ पे ऑब्वियसली मेटा चेंज है, नया मेटे में अडेप्ट करने का टाइम लगा, और यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स है, और एक तो हमारा लैन का पहला एक्सपीरियंस है, तो वो अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम, मतलब बस वही फ़र्क है वो अडेप्ट करने में। It's just that they had to just take some time in adaptation. Obviously, it's more pressure. It's World Championship, so it's just they had to understand the game at first, and once they did that, they're back in the game again. All right, and of course, how have you guys also feel a little bit of that gap where Crypto have left earlier in the team between PMPL Spring and Fall, and how did you guys manage to finally find this form to get here at the PMGC? जब क्रिप्टो ने छोड़ा तो फिर उसका जगह आप लोगों ने किसको रखा, क्या किस तरीके से आपने वो गैप को फिल किया? क्रिप्टो के जाने के बाद हमारे टीम में IQ आया, और उसके साथ बहुत सारी मोटिवेशन आई हमारे पास इस चीज़ के लिए कि हम ज़्यादा मेहनत करें और PMPL से भी आगे लेवल में जाएं, तो हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद हम PMGC आ गए। So when Crypto left, another member joined, which is IQ, and he's doing pretty well. So when he entered the team, there was a lot of positive vibes and a lot of motivation. And because since he was new, so a lot of it with a lot of positivity, they're able to do it a lot better now. I'm glad to really hear that, and overall, we definitely see a very consistent performance coming in from the entirety of the squad of IA. So one question I do have for you is that who do you view as the strongest team in the lobby currently, especially for today? आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी में कौन सी टीम है आज स्पेशली? ओवरऑल मेरे ख्याल से इन्फ्लुएंस सबसे अच्छी है, लेकिन आज मेरे ख्याल से ब्रू काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल रही है। Overall, they think that Influence is doing really well, but if you talk about today, they think Brew is doing really well. I see, and I really do hope to see you guys get yourself a chicken dinner for today. But of course, there's a lot of fans back at home watching currently, and also many new fans have gathered from all around the world. Do you have any words for them before we start off with our next game? कुछ कहना चाहेंगे आप जो भी आपको व्यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं? बस यही कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, और करते रहो, और इंशाल्लाह कमबैक्स आते रहेंगे। बाकी बिलीव इन i8, और इंशाल्लाह हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। Keep supporting and keep loving and believe in i8. Thank you. All right, thank you guys so much for joining us here on this interview. We'll continue on with our matches as we will approach Game 4 real soon. So make sure you guys see who will be the next one to take home the chicken dinner.
वेलकम बैक खवातीनो रात खुशामदीद करेंगे आप सभी लोगों को आज के दिन एक बार फिर से। और बेहतरीन इंटरव्यू देखा हमने जहाँ पर गोश्त का कहना ये था कि वो डरते तो किसी से भी नहीं है। वैसे ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं खुद से ऐड कर देता हूँ। मुझे उन्होंने मैसेज किया था कि वो किसी से नहीं डरते, और उन्होंने ये कहा कि भाई BRU काफ़ी मुश्किल टीम है, आज के दिन वो काफ़ी अच्छा खेल रही है, इन्फिनिटी काफ़ी अच्छी टीम है, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा कि बिलीव इन इट, हम कर दिखाएंगे, हम कर देंगे, हम हमारे ऊपर एतबार रखो, बस भरोसा करो यार। बिल्कुल। और उन्होंने एक और भी चीज़ कही कि आते रहेंगे कमबैक्स, तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे नज़र आया। थोड़ा सा परेशान भी मुझे घोष नज़र आया। आई थिंक सो वो लैंड का प्रेशर और वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो मौजूद रहता ही है। और उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ का इतराफ़ किया कि यार हमारे रीजन के अंदर, पाकिस्तान रीजन के अंदर लैन इवेंट्स नहीं होते। और आई रियली डोंट थिंक कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी लैन इवेंट ऐसा हुआ जो I8 ने खेला हो। अरे फ्रॉम वो है ना, हाँ एक भी नहीं ऐसा ही है, यही है, एक भी नहीं है। सो खैर, सो उन्होंने इस चीज़ का इतराफ़ भी किया है कि यार वहाँ पे लैन इवेंट्स नहीं होते, वो जो प्रेशर हैंडलिंग है, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए एक नई है। लेकिन स्टिल अलादीन इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जितना प्रेशर है, हमारी टीम तो फिर भी बहुत बेहतर खेल रही है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा बेहतर खेल रही है। और ये देखिए कि उनके मुकाबले में मोस्टली टीम्स ऐसी हैं जो पहली बार नहीं खेल रही, लेकिन चलें लैन का और उनको लैन का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है भाई। टीम I8 को तो लैन का एक्सपीरियंस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एक साथ उन्होंने कभी भी लैन इवेंट खेला ही नहीं है। लेकिन चलें, हमने एक ग्राफिक देखा जो कि हमने देखा ज़रूर, लेकिन उस पर हमने बात नहीं की। लेकिन आगे बढ़ते हैं और अब इस ग्राफिक पर बात करते हैं। एक्सपेक्टेड ड्रॉप्स की बात करें तो I8 मिलिट्री लुक एट द ड्रॉप ऑफ I8 के कुछ प्लेयर्स मिलिट्री बेस है, कुछ घाट का है। ये गोस्ट है, दिस इज गोस्ट। मुझे नहीं समझ नहीं आई। मुझे लगा जैसे आपको खांसी आई है बीच में, मुझे लगा शायद आप बस यहाँ से जाने वाले दमे का शिकार हो गए हैं आप। लेकिन खैर मैं समझ गया, आप घोस्ट को देख के थोड़ा आपकी हलक में फंस गया नवाला। लेकिन खैर ख़वातीन हज़रात, अगला इरांगल है। और अगर तो I8 ने ये रोटेशन, ये जो एक्सपेक्टेड ड्रॉप उन्होंने दिखाया है ना, कि एक बंदा दुनिया के दूसरे कोने में और एक बंदा दुनिया के दूसरे कोने में, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन आई डोंट बिलीव I8 इसको फॉलो करने वाली है। दे विल बी गोइंग टू मिलिट्री बेस आइदर, या वो शायद हमें गाटका वाली साइड पर उतरते हुए नजर आए। लेकिन अलादीन एक दिन में आगाज़ में 2 चिकन डिनर्स, LGD ने अपने आप को वाकई मनवा लिया यार कि हम आए हैं पहले रीजन से, स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन से हम जीत कर आए हैं, और कोई हमारा भी सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल जी, LGD ने अपनी सिग्निफिकेंस बताई है यहाँ पर सीख कर। और आप देखें कि जिस तरह से खेल रहे हैं लोग एक मैच के अंदर, गलतियाँ एक तो बिल्कुल नहीं कर रहे, पनिशमेंट बहुत अच्छे से दे रहे हैं, रोटेशंस आप इनकी देखें ऑन पॉइंट है, ग्रेनेड यूजेज देखें इनका आप ऑन पॉइंट है। लास्ट मैच में भी जहाँ पर लग रहा था कि चिकन थ्रो हो जाएगा, फिर रिमेंबर द सेकंड लास्ट मैच जहाँ पर I8 के अगेंस्ट लोग लास्ट फाइट ले रहे थे, टाइटन्स वर्सेस I8 वर्सेस LGD बन रहा था, वहाँ पर लग रहा था कि अगर गोस्ट का ग्रेनेड कनेक्ट हो जाता है LGD इज गोना बी डन। लेकिन LGD रिवाइव करते हैं टीममेट्स को 2v3 सिचुएशन में पुश करती है, इंस्टेंट रिवाइवल के बाद पुश किया जाता है। I8 को मौका नहीं दिया जाता पुश करने का, और चिकन ले जाते हैं अब। बिल्कुल। और LGD ने तो वाकई ही हैरान किया है इस पिछले मैच के अंदर। खा वो उस तरह से पॉइंट नहीं लेकर जा पाए, लेकिन स्टिल देव बीन सो गुड फ्रॉम यस्टरडे आई बिलीव। लेकिन खैर देखते हैं, BRU तो बहुत ही अच्छा खेल रही है यार। BRU LGD मेरे ख्याल से आज के दिन इन्हीं दोनों नामों ने खेला है। अलादीन बाकी किसी को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। वाकई आज अगर हम सोचें तो सिर्फ यही 2 टीम्स हैं जिन्होंने अच्छा खेला है, जिन्होंने अच्छे खासे अदाद लिए हैं। बिल्कुल यही 2 टीम्स जिन्होंने अच्छे खासे अदाद दिए। लेकिन बात करेंगे हमारे स्पॉन्सर की, एक्सपीरिया हमारे ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर, इनका बहुत शुक्रिया, इनके ताउन का बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ अगर दूसरे स्पॉन्सर की बात की तो भी पुलमान कोलालमपुर बंगसार होटल, जिनकी तरफ से होटल प्रोवाइड किया गया है। सारे जो आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन सेटअप आप देख रहे हैं, बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, ये सारा पुलमान बंगसार होटल कोलालमपुर की तरफ से दिया गया है। और क्या ही मैं कहता हूँ कि आदि एनवायरनमेंट है, क्या ही स्टेज है, पाकिस्तान की टीम वहाँ जाकर रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी हमें खुशी बहुत ज़्यादा है। और उनकी परफॉर्मेंस, शुक्र है #14 #16 से ऊपर आया। सही बात है वाकई अलादीन, हैरान हूँ मैं भी कि यार वाकई माशाल्लाह जितना ज़्यादा मैं बोलूँ माशाल्लाह उतना कम है। इंशाल्लाह आने वाले जो मैचेस हैं वो अच्छे होने वाले हैं। 3 मैचेस बाकी रह चुके हैं ख़वातीन हज़रात, दूसरा दिन भी ख़त्म होने जा रहा है। ग्रुप रेड से
3 टीम्स उठकर फाइनल्स में चली जाएंगी और उस सर्वाइवल स्टेज से बचने के लिए आपको उन 3 स्लॉट्स में आना ही आना है। ऊपर के जो 3 पायदान हैं वहाँ पर आपको आना ही आना है। जंग तो चल रही है, काफ़ी टीम्स कोशिश भी कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें तब्दील भी हुई हैं। निग्मा गैलेक्सी की जो आई है तब्दीली, वो एक काफ़ी नेगेटिव आया है उनके अंदर, एक के पहले पेज पर थे, टॉप 3 में थे, इनफैक्ट इतना चोक किया कि अब वो #9 पर चले गए। लेकिन खैर, ये हसीन चेहरे देख लीजिए, क्योंकि ग्रुप रेड का सिर्फ एक और मजीद दिन रह चुका है। अभी भी 3 मैचेस बकाया बाकी हैं और तीसरा मैच किसी भी टाइम शुरू हो जाएगा। IQ शहजादा बैठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है और प्लेयर्स जो है वो आपस में गुफ्तगू भी कर रहे हैं। दिनों के मैच स्टार्ट हो चुका है और एक हिकमत अमली, एक स्ट्रैटेजी तैयार कर ली जा चुकी है। तो आइए, सिर्फ इंतज़ार है तो सिर्फ आप लोगों का है, तो आइए चलते हैं सीधा मैदान जंग में। रैंगल आ चुका है, प्लेन आपकी स्क्रीन पर है, प्लेन पाथ भी थोड़ी ही देर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। बिल्कुल जी, फ्लाइट पाथ आपको दिखाया जाएगा कुछ सेकंड्स में और जी हाँ, फ्लाइट पाथ आपके सामने आ जाता है जो कि इस वक्त कामिश्की के नीचे की तरफ से लिपोव को कामिश्की के सेंटर से होता हुआ मिलिट्री बेस की तरफ जा रहा है। सर्कल की अगर बात करें, इस सारे फ्लाइट पाथ के हिसाब से वो घाटकर पोचिंकी साइड पर जाता हुआ नजर आ सकता है, बट मुझे क्यों लग रहा है कि फिर से सर्कल मिलिट्री बेस चला जाएगा। घाटकर पोचिंकी नहीं तो मिलिट्री बेस से सर्कल जाएगा, और अगर मिलिट्री बेस जाता है तो फिर से टीम्स ये सोचेंगी कि भाई लगता है ड्रॉप शिफ्ट करना ही पड़ेगा। रोजक स्कूल, रूइंस और हॉस्पिटल के अलावा घाट का जॉर्जबुल छुट्टी जो स्वर्णी वाली जितनी भी टीम्स हैं, सारी ये सोचेंगी कि मिलिट्री बेस ही उतरना चाहिए, बिकॉज सर्कल आज के अलावा अगर बाकी दिन की भी बात करें तो वो मिलिट्री बेस ही ज़्यादा गया है। लाइक रेंगल का मेन आइलैंड पर सर्कल हमें शायद एक ही दिखा होगा। यस, मैं तो अला दिन पहले भी यही बात कर रहा था कि ये चेंज हुआ है, जब से मेटा चेंज हुआ, एल्गोरिदम्स चेंज हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स मिलिट्री आइलैंड के ऊपर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमें 1 in a million कोई सर्कल देखने को मिलता था जो कि कंप्लीटली मिलिट्री आइलैंड के ऊपर सेंट्रलाइज्ड हो, और वो जो बीच का जो सर्कल होता था ना कि यार 50% मिलिट्री आइलैंड पर है, 50% पे जो है वो मेन आइलैंड पर है, वो सिचुएशन नहीं बन रही अब या तो डिसाइसिव सर्कल्स बन रहे हैं, शिफ्ट्स ही ऐसे हैं कि यार या तो मिलिट्री साइड पर जा रहे हैं या तो मिलिट्री बेस साइड के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन ये सर्कल मुख्तलिफ है और मुश्किल है इसके अंदर रोटेट करना, खासी उन टीम्स के लिए जो कि साउथर्न साइड के ऊपर मौजूद हैं, जो कि साउथ वेस्टर्न साइड के ऊपर, ईस्टर्न साइड के ऊपर और इस मैप की वेस्टर्न साइड के ऊपर मौजूद है। उनके लिए सर्कल को चेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन मज़ेदार होगा ये मैच, क्योंकि जितना मुश्किल ये सर्कल है उतना ही मज़ेदार ये मैच होने वाला है। अर्ली रोटेशंस करना होंगी, अर्ली रोटेशन इज़ द की, और ये सारे इवेंट के अंदर ये चीज़ निकल कर सामने आई है कि जिस टीम ने अच्छी रोटेशन की है, टाइमली रोटेशन की है, अर्ली रोटेट किया है सर्कल के अंदर, वो ही एंड पर चिकन डिनर लेकर गई है। और फिलहाल के लिए टीम R8 के प्लेयर्स फिलहाल अपने ड्रॉप लोकेशन तक अर्ली रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनको व्हीकल्स भी मिल चुकी है, लेकिन डिस्पर्स्ड हैं कुछ प्लेयर्स। एक प्लेयर के पास यहाँ पर आ चुकी है, गाड़ी भी मिल चुकी है, ओके, दूसरे प्लेयर के पास भी मौजूद है। फिलहाल रवानगी इख्तियार कर रहे हैं और बज़ाहिर देखने में ऐसे लग रहा है कि साउदर्न साइड के ऊपर, नॉर्दर्न साइड के ऊपर इस मैप की लूट करने के लिए वो जा रहे हैं। TQ भी बिल्कुल सामने मौजूद है और वंस अगेन ऑडियंस प्रेडिक्शन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुकी है, जिसमें अभी भी ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा वोट DRS को ही दिया है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान रीजन से मैं वोटिंग देखकर इतना हैरान हुआ हूँ। आप कंपेयर करें तो नेपाल हमसे बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम R8 एक बार भी वोटिंग में नहीं आई, एक बार भी वोटिंग में नहीं आई। तो ये थोड़ी सी दुख भरी बात है ज़रूर, और मैं यहाँ पर लिटरली दुख का इजहार कर रहा हूँ कि गो एंड वोट फॉर योर टीम, प्रेडिक्शन में अपनी टीम का नाम लाएं यार। लेकिन वहीं पर आप DRS को देखें, 5th स्पॉट पे मौजूद है, एगोनिक साइड 8th स्पॉट पे मौजूद है। डिफरेंस अगर आप पॉइंट्स का देखें तो वो ज़्यादा नहीं है, लाइक आई बिलीव 21 पॉइंट्स का डिफरेंस किया दोनों टीम्स के दरमियान। ओके, अगर मेरी मैच अच्छी है तो कितने 19 पॉइंट्स का डिफरेंस है, कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आती? अलादीन आप ही बताइए, आपकी मैच अच्छी है अभी आपने बोला। मैंने कहा मेरी अच्छी नहीं है। अच्छा, अब आपकी अच्छी नहीं है फिर तो मतलब मेरी तो है ही नहीं फिर। नहीं आपकी है, लेकिन चलें ख़वातीन और साथ कोई बात नहीं। आदि की और मेरी मैच को हम साइड पर रखकर अगर बात करें इस मैच की, ज़रूरी मैच है आदि, बिकॉज अगले मैचेस का मोमेंटम ये मैच सेट कर देगा। एरेंगल पर जब भी आप आते हैं आप एक फ्रेश माइंड सेट के साथ आते हैं, आप ये नहीं सोचते कि लास्ट कितना बुरा किया था। ये जो आखिरी 2 रैंगल्स हैं ना, ये आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस रैंगल में आपको अगले रैंगल के लिए वो ग्राउंड बनाना पड़ता है, वो एक ब्रेकिंग ग्राउंड साबित होता है ये वाला रैंगल अगले रैंगल के लिए। इसमें अगर
अगर कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है उस आखिरी एंगल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। हाँ, मिरामार एक चैलेंज ज़रूर है, उसके अंदर आपको अगर आप जो टीम इस एंगल के अंदर चिकन डिनर कर ले उसको मिरामार के अंदर ज़्यादा जान मारने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी मैच में जान मारें, एंगल के अंदर ही जान मारें, एक दूसरी टेरेन के ऊपर मत जान मारें। हाँ, अच्छे पॉइंट ज़रूर लेने की कोशिश करें, लेकिन चिकन डिनर के लिए नहीं भी जाएंगे तो कोई ऐसा जो है मसला नहीं है। लेकिन इस रैंगल के लिए ये रैंगल वाकई ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सही कहा है कि आज के सब मैचेस में से ये जो बीच का रैंगल है, चौथा मैच है, ये वाकई ही बहुत बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि आखिरी मैच के लिए एक आपको ग्राउंड बनाकर ये देता है और आपको एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी ये मैच देकर जाता है अगर आप इसमें अच्छा खेल जाएं। लेकिन खैर अभी के लिए रोटेशन देखने को मिल रही है, लेकिन सर्कल जब हम देखेंगे तो तब देखते हैं कि क्या कोई टीम अभी सर्कल के सेंटर के अंदर या अच्छे स्पॉट के ऊपर ऑलरेडी जाकर विराजमान हुई है या नहीं हुई। लेकिन एगोनिक्स i8 अभी भी मिलिट्री बेस पर ही है मौजूद और व्हीकल्स कुछ आसपास मुझे दिखाई दे रही हैं। उज़म के कुछ फ्रिक्शन का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा, रिटालिएशन का सामना भी तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 2000 मीटर का ये सफ़र ये थोड़ा परेशान कुन है। अलादीन बिल्कुल जी, 2000 मीटर का ये सफ़र थोड़ा सा हैरान कुन है, थोड़ा सा परेशान कुन है। लेकिन TQ को आप थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं। लास्ट मैच में TQ दे हैड द एडवांटेज, लेकिन चिकन थ्रो करती हुई नजर आती है। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करें टॉप 5 रेट फॉर दिस मैप की, उसमें DS का नाम, फरावल का, BRU का, INF का। INF ने लास्ट मैच में सिर्फ 6 पॉइंट्स निकालने हैं और आप देखें कि INF से 12 पॉइंट्स ऊपर जा चुकी है BRU। लेकिन उसके बाद आप डिफरेंस देखिए, 176 से सीधा 148 आती। ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा बुरा है बाकी टीम्स के लिए। अलादीन पहले तो एक ही टीम थी, पहले तो इन्फ्लुएंस ही थी जिसने इतना डिफरेंस लिया था, लेकिन अब BRU भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हो गई है। सो आज के दिन के बाद टॉप 2 तो गया, टॉप 2 तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि गया, लेकिन उसके लिए निचली टीम्स को अब कोशिश करनी है कि यार जल्द से जल्द क्लोज इन किया जाए। 125 पॉइंट्स के साथ एगोनिक्स i8 मौजूद है, 127 पॉइंट्स के साथ BTR मौजूद है, टीम टाइटन्स 130 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं, DRS 138, LGD 144 और S2G 148 के साथ है। सो कुछ सूरत हाल बेहतर बनाई जा सकती है अपने लिए, लेकिन अभी भी #3 चेजेबल है। कहीं ऐसा ना हो कि टॉप 2 की तरह #3 भी आपकी पहुंच से बाहर निकल जाए। सो उसके लिए आपको मेहनत आज के दिन ही करनी पड़ेगी। लेकिन 2 टीम्स अभी खासतौर पर जो दिखाई दे रही हैं सर्कल से बाहर हैं, टीम मैड और टीम DRS। लेकिन बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स स्पॉट डाउन करते हैं EM टेक के प्लेयर्स को, उनकी जो बाइक थी वो भी थोड़ी सी लड़खड़ा जरूर जाती है। और बाइक कितने चलेगी That was funny. I'm sorry guys, लेकिन खैर बॉक्स के बेंच से कोशिश उन्होंने ज़रूर की कि टीम EMT की जो बाइक है उसको ना बख्शा जाए। ओके, वो बाइक उड़ के वापस भी आ गई है उनके पास और वो उसी पे बैठकर आगे भी चले गए हैं शहजादे मेरे। लेकिन खैर बॉक्स गेमिंग अनफॉर्चुनेटली वो किल्स नहीं उठा पाई। बॉक्स गेमिंग ने पिछले मैच के अंदर भी बड़ी कोशिश की थी किल्स उठाने की, लेकिन वो उस मैच में भी नहीं उठा पाए थे। INF इनकी स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि अभी के लिए ये आते हैं, एक टीम को स्पॉट करते हैं, उसे पिक करते हैं, उसके पास ही किसी जगह के ऊपर होल्ड करते हैं, बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही पुरसकून तरीके से होल्ड किया जाता है। काफ़ी देर रुकते हैं इनके प्लेयर्स उस टीम के पास, सारी सिचुएशन का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद कोई ना कोई इंगेजमेंट इनकी साइड से ली जाती है। लेकिन फिलहाल एगोनिक्स i8 अर्ली रोटेट करती हुई, ड्यूरिंग द रोटेशन बचना पड़ेगा, काफ़ी ध्यान से रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोटेशन पिछले रैंगल्स की रोटेशन से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ रहने वाली है। ऐसा सर्कल नॉर्थ ईस्टर्न साइड के ऊपर, एक्सट्रीम नॉर्दर्न साइड के ऊपर शूटिंग रेंज का एरिया जहाँ पर शुमार हो रहा हो, हमने काफी देर बाद देखा है। लेकिन EMT के प्लेयर फंस चुके हैं, टीम बॉक्स गेमिंग के हाथों ही काफी ज्यादा करीब है, लेकिन BTR के प्लेयर ने बैक एंड से किल फीड के अंदर रौनकें जरूर लगाई हुई हैं। बॉक्स के बेंसू को भी स्पॉट डाउन किया गया EMT के TC की तरफ से और उनको भी एलिमिनेट करने की अब कोशिश की जाएगी। लेकिन EMT ओके एक किल अपना कंफर्म भी कर चुकी है बॉक्स गेमिंग के ऊपर। एगोनिक्स i8 रिसेंटली देव मूव्ड और वो रोजहॉक के करीब आ चुके हैं, क्लस्टर का शुमार वो बन सकते हैं। लेकिन इस मैच में
काफ़ी ज़्यादा इम्कानात इन्फिनिटी के भी रहते हैं चिकन डिनर करने के, क्योंकि काफ़ी देर बाद सर्कल मेरे ख्याल से ये पहला कोई शिफ्ट है जो हमें ऐसे नॉर्दर्न साइड के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन नॉक निकाला गया, 4 राइवल्स के प्लेयर को स्पॉट डाउन किया गया और वो की ओपी घुटनों पर आए, उनको इंस्टेंटली एलिमिनेट भी दिया गया टीम एगॉन एक्साइड की तरफ से। लेकिन एगॉन एक्साइड के उज़म को स्पॉट डाउन करने में कामयाब रहे टीम 4 राइवल्स के प्लेयर। बैक एंड के ऊपर S2G भी INF के ऊपर थोड़ा सा किल स्प्री, थोड़ा सा किल स्टीलिंग करने की कोशिश करती हुई। बिल्कुल, लेकिन उज़म को नॉक नहीं होना चाहिए था इस सिचुएशन में। उज़म का नॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर उज़म नॉक हुए तो 4 राइवल को थोड़ा सा मौका मिल जाएगा टीम I8 के ऊपर केयर बरसाने का। लेकिन वहीं पर उस फाइट की तरफ पता नहीं क्यों नहीं जाया जा रहा। अगर वहाँ हम जाएंगे तो सूरत हमें कुछ थोड़ी सी टेंस होती हुई नजर आएगी। लेकिन 4 टीम्स ऐसी जो सर्कल से बाहर है, जिनमें NGX, मैड बुल्स, EMT और R8 हमें नजर आ रही है। लेकिन ये क्या हुआ है बॉक्स की? ओके, मुझे लगा शायद कोई प्लेयर ने जंप कर दिया बॉक्स की गाड़ी से, लेकिन सॉस हमारे सामने मौजूद हैं, वो गाड़ी लेकर इस वक्त रोटेशन कर रहे हैं। बॉक्स और ट्रिस्मी भी उनके पास भी सेपरेट व्हीकल मौजूद है। लेकिन एक मगर इसी की बात करेंगे, वो यहाँ पर एक रोटेशन गेट कीप करना चाहते हैं मैड बुल्स के ऊपर, लेकिन मैड बुल्स आसानी सर्कल में चले जाएंगे। एंड राउफ का जो स्प्रे है या उनकी जो भी हाँ बिल्कुल उनका जो स्प्रे है वो कनेक्टेड नहीं करता और मैड बुल्स आसानी उनके सामने से सर्कल की तरफ जगह बनाएगी। पर I8 की फाइट क्यों नहीं दिखाई जा रही फिर से? आई थिंक सो मे बी शायद एगॉन एक्साइड वहाँ से डिसंगेज कर गई है या 4 राइवल्स वहाँ से डिसंगेज कर गई है, क्योंकि 4 राइवल्स अपना एक प्लेयर गंवाने के बाद आई डोंट बिलीव सो कि वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर रुकेंगे। खैर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनी है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर टीम R8 के प्लेयर आउटसाइड द सर्कल हैं और बीइंग ऑन 16th स्पॉट उनको चाहिए कि वो इनिशियल्स में ही रोटेट करें और बाकी क्रॉसहेयर से बचते हुए नजर आए, क्योंकि गेट कीपिंग ऐसे सर्कल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा की जाती है। ख़ासतौर पर जो क्लस्टर ज़्यादातर बनता हुआ दिखाई देता है वो ये स्नार साइड के ऊपर, रॉजहॉक साइड के ऊपर ही बनता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वही एंट्रेंस प्रेफर की जाती है टीम्स की तरफ से सर्कल के अंदर रोटेट करने की, क्योंकि वहाँ पर रिजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो आप गाड़ी लेकर अगर जाते हो, प्लेन फील्ड्स वहाँ पर कम है सिवाय स्नार के एरिया के, सो आसानी थोड़ी हो जाती है रोटेशन करने में। लेकिन क्लस्टर भी दूसरी जानिब वहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा बना हुआ होता है। लेकिन R8 के प्लेयर IO7 सही टाइम के ऊपर यहाँ से रिट्रीट बैक तो कर गए हैं। EMT के TZ ने कोशिश भी भरपूर की, लेकिन बगी में बैठे बैठे कोशिश की जा रही है नॉक करने की, एटलीस्ट डैमेज करने की थोड़ा बहुत टीम R8 के प्लेयर्स को। लेकिन TZ लोन HP रहते हुए रोटेशन इन प्ले करेंगे। आगे जाकर टीम R8 ही हो सकता है टीम EMT को गेट कीप करती हुई नजर आए और ऐसा ही होता हुआ दिखाई भी दिया आप लोगों को। और यहाँ पर EMT के प्लेयर को घुटनों से उतार भी लिया गया, घुटनों पर ले आए हैं बल्कि उतार कर गाड़ी से टीम R8 के प्रेस्टीज और EMT के कैक से। अब उनके लिए ज़्यादा कुछ इम्कानात उनके पास भी मौजूद नहीं है, ज़्यादा वक्त उनके पास भी मौजूद नहीं है सर्वाइव करने का, सिंस प्ले जोन भी है, डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा रिसीव हो रहा है। जल्द से जल्द अपनी जगह को यकीनी बनाना है सर्कल के अंदर। लेकिन मैं दाद दूंगा उज़म को, इस रोटेशन पर मैं दाद दूंगा। खूबसूरत रोटेशन, कैसे टीम एगॉन एक्साइड ने अपनी जगह बनाई उस क्लस्टर के अंदर से। खैर वो क्लस्टर अभी के लिए आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि डिस्पर्जन आ चुकी है उसमें, लेकिन जब ये लोग यहां पर आए थे, जब इन्होंने एंट्रेंस लेने की कोशिश की, तब वहां पर एक अच्छा खासा क्लस्टर था। और मैं दाद दूंगा एगॉन एक्साइड के उज़म को, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को लीड करते हुए सर्कल के अंदर एक जगह बनाई। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे इस वक्त BRU वर्सेस INF की फाइट चलती है। इन्फिनिटी की नूसी काफी डैमेज खाते हैं, लेकिन वहां उनकी तरफ से गन शिफ्ट करके स्प्रे देने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये स्प्रे कनेक्ट नहीं होगा। BRU द चैंपियंस द लास्ट मैच, इस मैच में INF के सामने आ जाते हैं। INF के पास मौका मौजूद था नॉक निकालने का, इस फाइट को अपर हैंड एडवांटेज इस फाइट में लेकर जाने का। लेकिन लुक एट द स्प्रे ऑफ माइन MP, कनेक्ट करता है स्प्रे सारा का सारा और नॉक निकाला जाएगा नूजी के ऊपर। ही इज गोना गेट आउट द मैच और नूजी एलिमिनेट भी हो जाते हैं जहां वो मौजूद थे। ही वाज इनसाइड द कवर, लेकिन प्लेयर के पास जाते जाते लॉबी चले जाते हैं। एंड INF इज नॉट गोना बी हैप्पी एट ऑल बिकॉज उनके मैचेस पहले ही अच्छे नहीं जा रहे और इस मैच में भी अपना वो प्लेयर बहुत जल्दी गवा देते हैं आदि। बिल्कुल, लेकिन बात करेंगे इस वक्त BTR की, जो कि DRS के साथ फाइट में जुटेगी। BTR वर्सेस TRS की फाइट चलती हुई, DRS जोन के बाहर से जोन के अंदर आ रही है। और क्या इनको अंदाजा है कि यहाँ पर इनको गेट कीप करने के लिए इस वक्त BTR के लिक्विड अलॉन्ग जक्सी, मिजरी एंड बाकी प्लेयर के जो है वो यहाँ पर खड़े हुए। लेकिन मैड बुल्स एक बार फिर से वही एग्रेसिव स्टांस, वही मैड स्टांस इनका बनता हुआ, अपने नाम को जो है वो सही तरीके से अपने नाम की डिपिक्शन यहाँ पर अपने गेम प्ले में करते हैं। लेकिन किल फीड में EMT को हमने देखा
जाके उनके ऊपर एक और नॉक निकाला जाता है। जोन के बाहर उनके प्लेयर सेक्सी भी एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन R8 के बंदर R8 के नॉक प्लेयर को रिवाइव देने के लिए स्मोक डिप्लॉय करते हुए नजर आया हमें। R8 भी अपने प्लेयर्स को बचाना चाहती है बिकॉज वो जानते हैं कि वो इस वक्त सोल में पतन मौजूद, लेकिन किल फीड ने BTR वर्सेस टीम DRS की फाइट में DRS एक नॉक खाती जरूर है, बट रिटेलिएशन फायर्स में नॉक निकाल के किल कंफर्म किया जाता है। BTR इस फाइट में अब डिसएडवांटेज में जा चुके हैं, लेकिन लुक एट द किल फीड, NGX वर्सेस इन्फ्लुएंस और निग्मा गैलेक्सी एक बार फिर से सफर करती हुई INF के हाथों। बिल्कुल, और निग्मा गैलेक्सी फिलहाल अपने 2 प्लेयर्स ऑलरेडी गवा चुकी हैं, इनिशियल्स में ही गवा चुके थे अपने 2 प्लेयर्स INF जो कि काफ़ी देर से दूसरी जानब जगह पर मौजूद थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम किसी टीम के ऊपर अपने हाथ साफ करते हुए नजर आएंगे, लेकिन BTR के लिक्विड किलफीड में गिरते हुए अपनी ही गाड़ी से उनको छलांग मारनी पड़ गई है। इसकी वजह भी हम उनसे जानेंगे थोड़ी ही देर में कि क्या उनको कुछ रिटेलिएशन फायर्स का सामना था या उन्होंने इंटेंशनली छलांग लगा दी गलती से। लेकिन नेड आता है फेडरल का, घुटनों पर लाते हैं और एक और नेड, कहानी खत्म। चुटकी में टीम निग्मा गैलेक्सी इस मैच से बाहर हो जाती है। फेडरल के बैकपैक में 4 बेहतरीन एदाद आ चुके हैं, लेकिन अभी सर्कल को देखना है। सर्कल के अंदर टीम एगॉन एक्साइड के IQ मौजूद है और एगॉन एक्साइड के अलावा 3 से 4 5 मुख्तलिफ टीम्स इस सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह के ऊपर ऑलरेडी मौजूद हैं। सो अभी भी सर्कल के अंदर वैकेंसीज हैं, सर्कल के अंदर जगह तो मौजूद है बाकी टीम्स के लिए कि वो आए और सर्कल के अंदर अपनी जगह बना पाए, लेकिन जो मेन जो गोल्डन एरियाज हैं, जिनको मैं गोल्डन एरियाज कहता हूं, वो फिल्ड हो चुके हैं। एक जानिब एज के ऊपर टीम AGX-I8 है, सर्कल के मिड के अंदर 3 टीम्स मौजूद हैं। टीम S2G अभी सर्कल के अंदर बाहर है और फाइट लेते हुए हमें दिखाई भी दे रहे हैं। 4 राइवल्स के प्लेयर किल फीड के अंदर कुछ नॉक निकालने में कामयाब रहे। LGD के प्लेयर्स की गाड़ियां जो हैं वो जलजले का शिकार हो चुकी हैं और गाड़ियां जो है उनकी वो कलाबाजियां खाती हुई हमें दिखाई दे रही है, लेकिन बॉक्स के ट्रेज में स्पॉट डाउन उन्होंने किया, लेकिन साथ ही साथ ट्रिगर डिसिप्लिन दिखाएंगे ताकि वो ज्यादातर रडार में ना आए बाकी टीम्स के। लेकिन BRU के प्लेयर्स जो कि एंड पर आकर अपनी डोमिनेशन दिखाते हैं, एंड पर आकर हमें वो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने को मिलती है। उससे पहले 4th 5th फेज से पहले वो ज़्यादातर रडार में नहीं आते, ज़्यादा शोर शराबा वो नहीं करते हुए नजर आते, उस तरह से रशियंस इस्लामियंस नहीं करते हुए नजर आते। लेकिन BRU के किंग्सो अब मुश्किल में फंस सकते हैं, क्लस्टर का उनको सामना है, उस पूरे के पूरे क्लस्टर को गेट कीप कर सकती है BRU। बॉक्स गेमिंग को स्पॉट डाउन किया, घुटनों पर भी लेकर आए किंग्सो और किल कंफर्म करने की भरपूर जान भी मार रहे हैं और मिनी 14 के ऊपर SKS के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जो व्हीकल्स हैं उनको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, लेकिन BRU बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ऑलरेडी 188 पॉइंट्स हैं उनके पास मौजूद और इस मैच के चिकन डिनर के बाद वो लगभग 200 पॉइंट्स के करीब भी जा सकते हैं और ऐसा करने से उनको रोकना है इन बाकी टीम्स को, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन हो जाता है तो फिर #1 #2 आउट ऑफ रीच हो जाएगा आज के दिन के बाद। लेकिन BRU के टाइगर वंस अगेन स्पॉट करने में कामयाब रहे टीम R8 के प्रेस्टीज को, लेकिन राइट ऑन टाइम प्रोन होने की वजह से अपनी जान की हिफाजत इस मैच में कर पाते हैं प्रेस्टीज। लेकिन TQ के पापी पोत्रो बिल्कुल एंड पर मौजूद हैं। TQ के 4 मैन स्टैंडिंग स्क्वाड में से ये प्लेयर काफी ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं, काफी ज्यादा दूर हैं अपनी टीम से और अब व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए रीयूनाइट होने की भी कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से। लेकिन S2G के कैल्सी भी कोशिश कर रहे हैं टीम R8 के ऊपर अपने किल, अपने हाथ साफ करने का, नॉक भी करने में कामयाब रहे, किल नहीं कंफर्म करना चाहेंगे इस जगह के ऊपर रहते हुए, सर्कल के अंदर अपनी जगह को यकीनी बनाना चाहते हैं। टीम R8 को नॉक किया, उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी थी, उसके पीछे एक माइंडसेट था कि इनको नॉक करने के बाद ही हम सर्कल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो हायर ग्राउंड के ऊपर मौजूद थे। हालांकि वहां पर R8 दूसरी भी टीम्स के अगेंस्ट होती हुई पिंच डाउन हमें नजर आ रही है, लेकिन मैड के ज़ेरिश एक मजीद प्लेयर पर अपना नॉक निकाल लिया है उन्होंने टीम S2G के, और S2G के रेज आगे बढ़ रहे हैं, सर्कल के अंदर अपनी जगह बनाई है टीम S2G के प्लेयर्स ने। एगॉन एक्साइड इनके बिल्कुल करीब मौजूद है, बिल्कुल जी, एगॉन एक्साइड इनके बिल्कुल करीब मौजूद है आदि इस वक्त के लिए। लेकिन S2G को आप देखें, एक किल तो लिया है लेकिन अपना एक प्लेयर नॉक करा चुके हैं। रिवाइवल की कोशिश की जा रही है लेकिन किल फीड में नॉक निकाला जाता है, किल कंफर्म किया जाता है। इनफैक्ट S2G अपना एक प्लेयर गवा देती है, लेकिन एगॉन एक्साइड 4 men intact, 3 kills in the backpack, highest kills की बात करें वो INF के पास रहेंगे, लेकिन ग्रेनेड आता है बॉक्स के ब्रेक MVP का एंड ही टेक्स 4 राइवल्स, ही टेक्स द प्लेयर ऑफ टीम बॉक्स गेमिंग एंड वहीं पर ग्रेनेड्स फिर से आ रहे हैं और हालात यहां पर खराब होते हुए बॉक्स गेमिंग के, लेकिन पुश करती हुई S2G नजर आएगी। S2G चार्ज इन करती है, ऑल इन योलो जाया जाता है एंड S2G मजीद किल्स कंफर्म करेगी, लेकिन सर्कल गोज टुवर्ड्स दैट टीम जिसको आप सब शेयर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैड बुल्स की बात करें, हाइट एडवांटेज लेंगे,
टीम एसट्रोजी के सामने बॉक्स मौजूद थी, लेकिन बॉक्स का खेल तमाम किया जाता है, बॉक्स को लॉबी भेजा जाता है टीम एसट्रोजी की तरफ से, और साथ उनके कुछ किल्स मैड बुल्स भी उठा जाती है आदि, लेकिन फाइट्स अभी भी चल रही हैं। एसट्रोजी अपना दूसरा प्लेयर गिरवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एगोनिक्स 8 के प्लेयर्स ज्यादा ओवर रोटेट नहीं करना, ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना। आइजल हिमसेल्फ इज स्काउटिंग दैट एरिया, वो क्लियर करना चाहते हैं अपने आसपास के कंपाउंड से, लेकिन टीम एगोनिक्स 8 उनके बिल्कुल करीब एस2जी के प्लेयर्स मौजूद हैं और ये किल्स उनको मिल सकते हैं। आईक्यू अगर अपनी डीपीएस को पिंस करते हैं, आई बिलीव उनको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आदि के सामने हिल पे एक टीम मौजूद है बिल्कुल, लेकिन बात करें एगोनिक्स 8 के गेट कीप की, तो वो इस वक्त एलजीडी करने की कोशिश कर रही है। एलजीडी के प्लेयर को स्पॉट करते हुए उज़म नजर आएंगे, उज़म इंतजार कर रहे हैं गलती का। एलजीडी दे हैव नो आइडिया कि उज़म उनके ऊपर स्कोप लगा चुके हैं, बट उज़म इज वेटिंग, सामने से प्लेयर गलती करें, शॉट लैंड की जाती है बट कनेक्ट नहीं करती, पर पता भी नहीं चलता प्लेयर्स को कि वो कहां से उनको एक शॉट अप्लाई की गई है। बट उज़म नाउ ही स्पॉट्स द प्लेयर ऑफ टीम एलजीडी, और अब नॉक निकालने की कोशिश फिर से की जाती है बट नॉक नहीं निकाल पाते। ओके, आईक्यू की शॉट्स कनेक्ट करेंगी, एलजीडी के चंगसी डाउन हो जाएंगे, सुक डाउन हो जाएंगे, एलजीडी के 2 प्लेयर्स डाउन होते हुए टीम एगोनिक्स 8 इस फाइट में काफी एग्रेसिव होना चाहती है, लेकिन लुक एट BRU एक थर्ड पार्टी कहते हुए टीम एगोनिक्स 8 के ऊपर 2 नॉक्स निकाले जाते हैं। एगोन के इस एग्रेशन को शट अप किया जाता है, शट डाउन किया जाता है। एगोन हैज टू रिवाइव देयर टीममेट्स नाउ, लेकिन नाउ किल फीड में इसके चलती हुई किंग्स की ही कंफर्म्स दैट किल ऑफ ब्लेड, जहां पर टीम एगोनिक्स 8 काफी एग्रेसिव तो हो रही थी, एलजीडी के ऊपर 2 नॉक्स निकाले थे, लेकिन BRU कहां से आती है? BRU केम आउट ऑफ सिलेबस और अब एगोनिक्स 8 को केयरफुल होकर खेलना पड़ेगा, लेकिन फिर से BRU हाइट एडवांटेज लेगी। आईक्यू इज गोना गेट पिंच डाउन, आईक्यू गेट असाइड, बगी आपको एलिमिनेट करा देगी। आईक्यू की बगी यहां पे बस्ट होने वाली थी, लेकिन वहीं पर किंग्सो को देखें आप, किंग्सो के पास ओपन हाइट एडवांटेज मौजूद है। ओपन एरिया में वो स्पॉट करते हुए I8 के प्लेयर्स को टैप देने की कोशिश करें, बट I8 के प्लेयर्स की व्हीकल्स बर्स्ट हो चुकी हैं। नाउ टीम I8 हैज टू मेक श्योर कि वो टीम वो एलिमिनेट करें यहाँ पर टीम LGD को, अदरवाइज उनके लिए जोन में जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन वहीं पर लुक एट HP ऑफ IQ, बहुत ज़्यादा टैग उनको पड़ चुका है फिलहाल। He's trying to heal himself, he's trying his level best कि वो सर्वाइव करें, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें एगोनिक्स 8 के प्लेयर्स की, 3 प्लेयर्स यहाँ जिंदा हैं। IQ की HP ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, इनफैक्ट गायब ही हो चुकी है। अब वो अपने आप को हील करते हुए नजर आएंगे, पर किल फीड में DRS इज कमिंग फॉर द रेस्क्यू। DRS नॉक निकालते हुए नजर आती है हमें LGD के प्लेयर्स पे। लेकिन बात करेंगे इस वक्त BTR की, जिनकी फाइट बनती हुई टीम TQ के साथ नजर आ रही है। TQ के पापी पोत्रो इस वक्त काफ़ी क्लोज मौजूद रहेंगे BTR वर्सेस TQ की इस फाइट में। यहाँ जो है वो इस वक्त एडवांटेज BTR के पास मौजूद रहेगा, लेकिन S2G सर्कल क्या S2G के पास आता या नहीं जाता, उनके पास बहुत अच्छा सर्कल में जो है एक होल्ड बना हुआ है, सर्कल का काफ़ी एरिया वो ये टीम होल्ड करती हुई नजर आएगी। बट BTR अब किल्स कंफर्म करना चाहती है, लिक्विड आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, पोत्रो को स्पॉट किया जाएगा, डैमेज देते हुए, रैंडम फायर देते हुए नजर आएंगे। रैंडम फायर्स में बुलेट्स कनेक्ट करती हैं और नॉक भी निकाला जाता है आदि। जी बिल्कुल लादेन, और TQ के प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं अपनी जान की हिफाजत करने की। 4 किल्स तो हैं उनके पास, लेकिन एक ही प्लेयर अब सर्वाइव कर रहा है। दूसरी जानिब BTR के प्लेयर आते हैं, नॉक भी करते हैं और आहिस्ता से आता है लिक्विड की, जहां से लिक्विड भी अकेले प्लेयर सर्वाइव कर रहे थे 1v1 की सिचुएशन में, भारी पड़ते हुए टीम TQ के। लेकिन दूसरी तरफ एगोनिक्स 8 अपना घर बनाने की कोशिशें का विषय करती हुई सर्कल के एज के ऊपर बाहर भी सर्कल टीम्स मौजूद हैं। 11 टीम सर्वाइव कर रही हैं, लेकिन टाइटन के टीक का एक नेट जाता है जो कि नॉक करने में कामयाब रहता है। उज़म नॉक एक्सचेंज करते हुए LGD जो कि आज के दे जाते हुए दिखाई थे, उनके 2 प्लेयर्स को गिराने में कामयाब रह चुके हैं। 3 किल्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है 5 किल्स के अंदर, लेकिन उज़म को ध्यान से चलना पड़ेगा। DRS अभी भी सर्कल से बाहर मौजूद है, टीक को स्पॉट डाउन किया, गाड़ी के नाक एलिमिनेशन DRS की तरफ से, और DRS भी 4 किल्स के साथ एक अच्छी किल स्प्री के ऊपर जा चुकी है। डेल्टा सर्वाइव कर रहे हैं, मेड किट्स लगाई जा रही हैं। एगोनिक्स 8 8वें नंबर से उठकर 7वें पायदान पर आती जा रही है, और अभी 6 किल्स उनके पास आ ही चुके हैं। इस मैच को कन्वर्ट करना है एक अच्छे चिकन डिनर के अंदर, लेकिन मेन एडवांटेज तो है एगोनिक्स 8 के पास। इस पूरी लॉबी के अंदर कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसके चारों हो सिवाय BRU के, जिनके एक प्लेयर नॉक
लेकर डाउन किया जाता है। आरएस के ज्ञानते की तरफ से गॉनिक्स आई8 के उज़म को गिराया गया घुटनों पर। घोष कोशिश कर रहे हैं रिटालिएट करने की, कॉन्स्टेंटली फोकस्ड है टीम एलजीडी के ऊपर, उनके प्लेयर के ऊपर मौजूद है। और डीपी का एक स्प्रे दिया गया उनकी तरफ से, एलजीडी के प्लेयर के पास भी डीपी मौजूद है। लेकिन डीआरएस से बचना है, डीआरएस से बचना है। एक प्लेयर जो नॉक हुए हैं उनको रिवाइव BXI8 के, और रिवाइवल कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए डीआरएस 5 एलिमिनेशंस के ऊपर जा चुकी है। एगॉनिक्स आई8 सर्वाइव करती हुई, बीटीआर अपने एक ही खिलाड़ी के साथ सर्वाइव करती हुई, इन्फिनिटी के प्लेयर अपने 3 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं। 8 टीम हो चुके हैं, लगभग 5 मिनट की सिर्फ गेम बाकी रह चुके। चिकन डिनर मैच का फातेह निकलकर सामने आ जाएगा, लेकिन BRU माय नेम P अभी किल्स जिनके पास हैं, चारों के चारों प्लेयर्स को रीसेट कर लिया जा चुका है। अपने एक प्लेयर जो नॉक थे उसको रीसेट करने के बाद 4 मैन स्टैंडिंग होते हुए काफी प्रॉमिसिंग दोबारा से इस मैच के चिकन डिनर के लिए आ सकते हैं। ये पहला दिन होगा जिसके अंदर अगर BRU दोबारा से चिकन डिनर कर लेती है तो 2 टीम्स ऐसी होंगी जिन्होंने बैक टू बैक 2 मैचेस में चिकन डिनर किया है। एक LGD ने किया है और अब BRU भी उसी फहरिस्त में अपना नाम लिखवाना चाहती है। DRS के किलर वाइटी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशान है कि किस जगह के ऊपर हमें रोटेट करना चाहिए, लेकिन उससे पहले उनको किल्स अपने उठाने हैं, और किल्स उठाने की इस कोशिश के अंदर उनके पास अच्छे खासे किल्स आ भी चुके हैं। LGD के प्लेयर स्टेल्थ मोड के अंदर जा चुके हैं, वो ज्यादा अपने आप को विजिबल नहीं करवाना चाहते, ज्यादा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाना चाहते। इन्फिनिटी के गॉड टेनी जो कि जान मार रही है, इन्फिनिटी को एक अच्छा मैच चाहिए, इन्फिनिटी को एक अच्छा चिकन डिनर चाहिए इस सारे कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए। लेकिन डीआरएस के प्लेयर नेट्स का इस्तेमाल करते हुए आईएनएफ के फेडरल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। इन्फिनिटी डाउन द हिल रोटेट करते हुए डीआरएस के बिल्कुल नेबरहुड में आ चुके हैं, अखाड़े में आ चुके हैं। इन्फिनिटी स्पॉट डाउन क्योंकि डीआरएस को ना चने चुप बात सकती है, क्योंकि डीआरएस जिस जगह पर मौजूद है वहां पर सिर्फ इन्फिनिटी ही उनके ऊपर अपनी आंखें जमाए हुए है। BRU वो बहुत चिल है, वो बहुत ध्यान से वहां पर रुके हुए हैं, उनको किसी चीज की कोई टेंशन ही नहीं है कि यार हम पर कोई टैग्स करेगा या हमें कोई देखेगा। उनको कहीं पर रोटेट भी नहीं करना अभी के लिए, लेकिन सर्कल अगर मजीद सेंटर में जाता है तो फिर BRU को मुश्किलात में फंसाया जा सकता है। एक सर्कल अगर सेंटर में जाएगा BRU मुश्किल में आ सकती है, लेकिन फिलहाल मैड बुल्स की बात करते हैं के मंकी अकेले प्रसंदा है। BRU के बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा बैक साइड पे मौजूद है, एक बैक स्टैप दे सकते हैं उन्हें, लेकिन किल फीड में अभी तक हमें नॉक्स अब निकलना बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन BRU के पास हाइट का एडवांटेज रहेगा, BRU के प्लेयर्स हाइट से नॉक्स निकाल सकते हैं। एस्ट्रोजी गेम्स को हम पहले भी देख चुके हैं कि स्प्रेज बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी चलती है। मैट के मंकी एक पर डाउन करेंगे, उस पर काफी लॉन्च भी किया जाता है, लेकिन वहीं पर BRU के किंग्सो यहाँ पर जो ये किल कंफर्म कर जाएंगे, लेकिन ये मौका S2G को मिलता है पुश करने का, ये मौका S2G को मिलता है कॉम्पाउंड ब्रीच करने का। पर क्या S2G यहाँ पर नॉक निकाल पाएगी, क्या वो पुश कर पाएंगे? लेकिन नो, किंग्सो का ग्रेनेड आता है, किंग्सो एक बार फिर से सेवियर बनकर जाते हुए अपनी टीम के लिए, लेकिन टीम S2G रुकने नहीं वाली। केल्सी ही नोज के यहाँ से फॉल बैक करना पॉसिबल नहीं रहेगा, ही इज गोना चार्जिंग, लेकिन ग्रेनेड आता है किंग्सो का फिर से। तीसरी बार ये प्लेयर अपनी टीम को बचाता हुआ, तीसरी बार ये प्लेयर नॉक्स निकालता हुआ नजर आता है। टीम BRU एट द बेस्ट 6 किल्स ये टीम लेके जा चुके, लेकिन S2G के हमसी एक बार फिर से S2G डिफरेंट साइड से आती है और 2 नॉक्स निकाले जाते हैं, लेकिन इस बार रेस्क्यू करने के लिए LGD के प्लेयर्स आते हुए और BRU को एक दिन और जिंदा रहने दिया जाएगा। बहुत बेहतरीन खेल खेला जाता है। INF वर्सेस DRS वर्सेस LGD 1v1v1 बन रहा है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें BRU की, उनके 4 प्लेयर्स जिंदा रहेंगे और इन्फिनिटी के 2 प्लेयर्स इस सारी फाइट में जिंदा हैं। अनफॉर्चुनेटली टीम एगोनिक्स आई8 के प्लेयर 6 किल्स के साथ इस मैच से लॉबी चले जाते हैं आदि, और एगोनिक्स आई8 को अब अगले मैच के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 4-5 टीम्स जिंदा हैं और 9 प्लेयर्स हमारे सामने इस वक्त जिंदा है। लेकिन BRU क्या एक और चिकन डिनर लेकर जाएगी? क्या BRU एक और अच्छा मैच निकालने वाली है? बिकॉज उनके स्टान से तो ये लग रहा है, उनका क्वेश्चन तो ये बात वास्ता कर रहा है। 8 किल्स आदि उनके पास मौजूद हैं एंड दे आर रेडी टू गेट अ लॉट मोर किल्स इन देयर बैकपैक आदि। जी बिल्कुल, और अभी भी काफ़ी किल्स उनको चाहिए और वो ये सब किल्स लेकर भी जा पाएंगे, क्योंकि इस पूरी ही लॉबी में सिर्फ एक ही स्क्वाड है जिसके 4 प्लेयर्स हैं, बाकी कोई भी 3 प्लेयर के साथ भी सर्वाइव नहीं कर रहा। लेकिन LGD काफ़ी देर से, जो कि आखिरी प्लेयर उनके सर्वाइवल मोड में गए हुए हैं, वो थोड़ा बहुत नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं। DRS के डेल्टा को भी पिक ऑफ कर लिया जा चुका है BRU की तरफ से,
this game, this meta is all about rotations. It is all about high ground. जैसे पहले होता था कि एक टीम अगर लेट रोटेट करती थी वो फिर भी चिकन डिनर ले जाती थी, अब ऐसा मुमकिन ही नहीं है. डीपीएस इंक्रीज कर दिया जा चुका है. आखिरी फेजेस जो है सर्कल के वो बढ़ा दिए जा चुके हैं. उनका जो प्लेइंग फील्ड है वो बढ़ा दी जा चुकी है. जो शुरू के फेजेस हैं उनकी प्लेइंग फील्ड ही कम कर दी जा चुकी है. सो जो अर्ली रोटेट करेगा, जो पॉइंट पे रोटेट करेगा, वो ही चिकन डिनर लेकर जाएगा. और यही चीज बार बार हमें देखने को मिल रही है, बार बार हर मैच में देखने को मिल रही है. लेकिन एलजीडी 1v3 सिचुएशन के अंदर फंस चुके हैं, 1v4 सिचुएशन के अंदर आ चुके हैं. इन्फिनिटी के गॉटन ये आखिरी प्लेयर थे. ब्रू इस मैच का भी चिकन डिनर लेकर जाती है और वो फिर से नहीं यकीन कर पा रहे कि वो आखिरी प्लेयर को हमने एलिमिनेट किया है. दे जस्ट कुडंट बिलीव इट एंड जस्ट लुक एट द हैप्पीनेस ऑन देयर फेसेस. दूसरी टीम जिसने बैक टू बैक 2 मैचेस में एक ही साथ चिकन डिनर की हालत है. बिल्कुल जी, BRU को यकीन तो नहीं आ रहा कि इस तरह से उनको मौका फराहम किया गया है ग्लोबल चैंपियनशिप में 2 दिन 2 बैक टू बैक चिकन डिनर्स लेने का. बट दे आर हैप्पी, दे डिजर्व टू बी द हैप्पीएस्ट टीम ऑन दिस PMGC ग्राउंड. बिकॉज आप देखें कि ना सिर्फ उन्होंने 2 चिकन्स निकाले हैं बल्कि वो इस वक्त टेबल पे टॉप पे मौजूद हैं. आप INF को देखें, INF ने बेशक 2 चिकन्स निकाले हैं बट दे आर नॉट ऑन द टॉप स्पॉट. सो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट रख रही है. एंड फिलहाल क्या देखा जा रहा है, आई बिलीव उनके फ़ोन को देखा जा रहा है और दे आर चेकिंग समथिंग. बट चलें ख़वातीन और साथ उनकी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो हमारे सामने इस वक्त के लिए BRU के बाकी प्लेयर्स का जो वो स्टार्ट दिखाया जा रहा है, राइट, स्टार्ट्स दिखाए जा रहे हैं उनके. जी बिल्कुल अलादीन, उनके स्टार्ट्स दिखाए जा रहे हैं और इन स्टार्ट्स में वाज़े तौर पर इस दफ़ा, हालांकि पिछले मैच के बाद हमने BRU के टाइगर को देखा था MVP बनते हुए, इस दफ़ा माई नेम पी बनते हैं और डैमेज 681 का दिया और इतना ज़्यादा डैमेज लिया भी नहीं. लेकिन टीम्स टू वॉच इस पिछले मैच में जो रहीं वो आपकी स्क्रीन पर है. बुरीराम यूनाइटेड ईस्पोर्ट्स ऑब्वियसली चिकन डिनर बेहतरीन लेकर गए हैं, मिन एडवांटेज भी अपना उन्होंने संभाला. लेकिन इन्फिनिटी का सर्वाइवल अच्छा रहा, उतने किल्स नहीं लेकर जा इस मैच से गए वो, लेकिन सेकंड स्पॉट उन्होंने कामयाबी के साथ हासिल किया. तो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम हीट जो है वो इन्फिनिटी का स्क्वाड लेकर जा रहा है. एलजीडी ऑन दी अदर हैंड उनके भी एक ही प्लेयर #3 लेकर जाते हैं. 7926 मीटर की उनकी रोटेशन रही है. 21 स्मोक्स यूज़ की, 2 नेड्स यूज़ किए इस पूरी गेम के अंदर, 22 मिनट की गेम के अंदर. और इसी के साथ साथ DRS ऑन दी अदर हैंड भी कंसिस्टेंसी के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट्स अपने लिए लेकर जा रही है. अलादीन बिल्कुल जी, DRS कंसिस्टेंसी के साथ पहले पॉइंट्स लेकर जा ज़रूर रही है. लेकिन वहीं पर हम दाद देंगे टीम LGD को, टीम इन्फिनिटी को, टीम BRU को. बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो उसमें BRU और LGD का नाम आता है, DRS का भी नाम आता है. लेकिन फाइनली एक कम बैक मैच इन्फिनिटी के लिए रहेगा. लेकिन इसी के साथ साथ हम हाईलाइट्स की तरफ जाएंगे आदि और देखेंगे कि हाईलाइट्स में किस तरह से टीम्स परफॉर्म करती हैं. हाईलाइट्स में यहाँ पर हमने किस तरह से देखा कुछ मज़ेदार मोमेंट्स जिनमें आगाज़ तो बहुत अच्छा लेकर जाती है लेकिन इन्फोसेवन का अख्ताम अच्छा नहीं निकल पाता. बाकी टीम्स उनको मौका ही नहीं दे रही है अच्छे अख्ताम का. एंड वहीं पर इन्फिनिटी के मेला के स्प्रेस भी हमें नजर आए, काफ़ी बेहतरीन स्प्रेस भी दिए गए उनकी तरफ से. उसके अलावा अगर आप देखें तो ये व्हीकल नॉक देखें, BRU इस तमाम फाइट में स्ट्रेटजी के साथ अपर हैंड एडवांटेज लेकर गई. जहाँ पर पहले BRU के ऊपर 2 नॉक्स निकाले गए थे मैडबूस के ऊपर की तरफ से, वहीं पर उसी चीज़ को, सिचुएशन को कैंगजू की तरफ से 2 बार जो इवेंट किया गया वो काफ़ी बेहतरीन था. जी बिल्कुल, और बेहतरीन लम्हात आप लोगों ने मुलाहिजा फरमा लिए हैं इस पिछले मैच के. मुझे सेलिब्रेशन, मुझे वो देखें वो कितना हैरान है कि हमने चिकन डिनर किया यार हमने किया चिकन डिनर. लेकिन खैर BRU ब्रोस आपने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेल रहे हो, बेहतरीन खेल रहे हो. जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही बेहतरीन है. लेकिन द इन्फिनिटी सेकंड स्पॉट लेकर जाती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मेरे ख्याल से ये चंद उन मैचेस में से एक मैच है जिसमें इन्फिनिटी ने सेकंड स्पॉट लेकर लिया है और 18 टोटल पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं. तीसरे पायदान पर टीम LGD गेमिंग है, 16
पॉइंट्स हैं इनके पास, कुल एदाद हैं। DRS गेमिंग 13 लेकर जाती है, इन्फ्लुएंस केमिन 12, S2G 9 लेकर जाती है, एगॉन XI8 चंद ही एदाद इस मैच से लेकर जाती है, जिसमें से 2 प्लेसमेंट पॉइंट्स थे और 6 किल पॉइंट्स थे। सो फॉर एग्जांपल अगर वो S2G की जगह एलिमिनेट होते, #6 पर एलिमिनेट होते, तो उनके पास 10 कुल एदाद आ सकते थे, लेकिन अभी के लिए 8 हैं उनके पास। इतने बुरे भी नहीं हैं, इतने अच्छे भी मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेशर इस मैच के बाद, इन 8 पॉइंट्स के पास के बाद आने वाले मैचेस में प्रेशर बढ़ जाएगा AGXI8 पर। जी बिल्कुल, एगोनिक साइड पे इन आने वाले मैचेस के बाद प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट एगोनिक साइड उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल करती है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन अब वहीं पर अगर हम बात करें टोटल पॉइंट्स, जिस तरह से हमने देखे कुछ सेकंड्स में हमारे सामने टोटल रैंकिंग्स भी आ जाएंगी, रैंकिंग्स में हालात किस तरह के हैं उस तरफ भी हम नज़र डालेंगे ज़रूर, और इंटरव्यू की तरफ भी हम जाएंगे आदि। लेकिन वहीं पर हमारे सामने अगर हम बात करें तो हमने देखा कि लास्ट मैच के अंदर बॉक्स गेमिंग कुड नॉट प्ले अ गुड मैच। बॉक्स गेमिंग के साथ साथ हमने टीम टाइटन्स को स्ट्रगल करते हुए देखा, टीम EM टेक तो स्ट्रगल कर ही रही थी, लेकिन निग्मा गैलेक्सी के साथ क्या गलत हो रहा थी? व्हाट डू यू थिंक, निग्मा गैलेक्सी क्या गलती कर रही आ रही? अलादीन, गलतियाँ एज सच तो मैं नहीं अभी इस वक्त एज सच वो कर पाऊंगा पॉइंट आउट, लेकिन देखें अभी पिछले मैचेस से आज के दिन प्रेशर ही बहुत ज़्यादा है। हर ही टीम वो प्रेशर महसूस कर रही है, जो कि हमने कल के दिन नहीं देखा था। उसी की वजह से गलतियां कुछ होती हुई भी हमें दिखाई दे रही, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग्स आ चुकी है। ब्रू का स्क्वाड अभी तक ऑन टॉप है, 213 कुल पॉइंट्स हैं उनके पास, और इन्फ्लुएंस केमिन सेकंड स्पॉट पर मौजूद है 188 पॉइंट्स के साथ। LGD गेमिंग तीसरे पायदान पर 160 पॉइंट्स उनके पास मौजूद हैं। टीम एगॉन XI8 #6 पर आ चुकी है, एक पायदान ऊपर 133 पॉइंट्स के साथ। बिल्कुल, एगोनिक साइड की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन चिकन डिनर मिस है आदि, चिकन डिनर चाहिए। और आज के दिन में अभी 2 ही मैचेस बाकी हैं सिर्फ, और इन 2 मैचेस में से एक चिकन तो एटलीस्ट चाहिए। अगर दोनों हो जाते हैं इट्स वेल एंड गुड, पर एक चिकन तो एगोनिक 8 को चाहिए। आज का दिन काफ़ी कंसिस्टेंट रही है टीम, एक मैच में सेकंड स्पॉट पर आती है। लेकिन चले बात करते हैं ओवरऑल रैंकिंग, जहाँ पर इस वक्त निग्मा गैलेक्सी में नजर आ रही है विद 1 चिकन डिनर, इन्फिनिटी विद 0 चिकन डिनर। लेकिन पॉइंट्स देखें काफ़ी क्लोज है दोनों टीम्स के। उसके बाद 90 पॉइंट्स के बाद 82, 79, 69, 66 और 55 पॉइंट्स लेते हुए बाकी टीम्स नजर आ रही है, लेकिन खवातीन साथ। इसी के साथ साथ हम चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नेक्स्ट मैच के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।
हेलो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। और पाँचवें मैच का आगाज़ करने के लिए हम लोग आ चुके हैं, तो आइए चलते हैं सीधा गेम में। मीरामार पर खेला जाएगा ये मैच, और बेहतरीन टीम्स की जंग वापस से जारी होने वाली है। आखिरी 2 मैचेस बकाया बाकी हैं, और कल का दिन टॉप 3 का नहीं होने वाला, आज का दिन ही है टॉप 3 का। कल के दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा टॉप 3 को। खैर #1 तो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी लीड ही इतनी ज़्यादा बन जाएगी कि #2 पर रहने वाली टीम इन्फ्लुएंस केमिन के अलावा कोई भी #1 को कैप्चर नहीं कर सकता, और इन्फ्लुएंस केमिन को भी सिर्फ #3 पर रहने वाली टीम ही कैप्चर कर सकती है। सो ये जो एक सिलसिला है, ये जो एक स्ट्रिंग थ्योरी है, ये आपको चलती हुई नज़र आएगी कल के दिन भी, लेकिन आज के दिन ही कोशिश करनी पड़ेगी। ये जो आखिरी 2 मैचेस हैं, मेरी नज़र ख़ास तौर पर टीम AGXI8 पर रहेगी, लेकिन इन सारी बातों को मज़ीद कहने के लिए, डिस्कस करने के लिए मैंने बुलाया है अलादीन को। अलादीन, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच आदि, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बात करेंगे हम अगले मैच की कुछ मिनटों में। जैसे ही हमारे सामने जो वो सर्कल बनेगा, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, और देखेंगे किस तरह से टीम्स इस सर्कल के हिसाब से खेलती हुई नजर आती हैं। फिलहाल हमारे सामने हम देख सकते हैं कि फ्लाइट पाथ एक बहुत ही ज़्यादा अनऑर्थोडॉक्स। अच्छा, मिरामर के फ्लाइट पाथ के अंदर जो मेटा चेंजेस आए हैं, मुझे लग रहा है कि उसमें यही किया है कि बस अब मिरामर का फ्लाइट पाथ कभी भी तमाम टीम्स को एडवांटेज नहीं देगा, मुझे ऐसा लग रहा थी।
जी बिल्कुल लादेन, और मिरामर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर हमने सेंट्रलाइज्ड जो प्लेन लोकेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं देखी जो प्लेन पाथ्स हैं, लेकिन सर्कल का ये शिफ्ट पिछले मैच में भी हमने नॉर्दर्न देखा, इस मैच के अंदर भी नॉर्दर्न एक शिफ्ट है, नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं बस मैं जा पा रहा, बाकी नॉर्दर्न शिफ्ट ही मैं देख रहा हूँ इस सारी गेम के अंदर। लेकिन खैर 4 राइवल्स उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं अपनी सराउंडिंग्स को कि कोई भी टीम मौजूद तो नहीं, कोई ख़तरा तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन 4 राइवल्स का कंप्लीट स्क्वाड, तीनों के तीनों प्लेयर्स ही इसी जगह के ऊपर लूट करना पसंद अभी करेंगे और उसके बाद फर्दर आगे रवानगी इख्तियार करने की उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी। लेकिन देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच के चिकन डिनर के बाद BRU 213 पॉइंट्स का मार्कर क्रॉस कर चुकी है, 200 पॉइंट्स का मार्कर क्रॉस कर चुकी है। टोटल एलिमिनेशंस इन मिरामार के अंदर एगोनिक्स I8 का भी नाम शुमार हो रहा है। 22 एलिमिनेशंस अभी तक के लिए जितने मैचेस हुए हैं, 22 एलिमिनेशन स्कोर की है मिरामार के ऊपर एगोनिक्स I8 ने। इससे क्या समझ आ रही है, इससे क्या समझ आ रही है तुम लोगों को, मुझे ये बताओ कि ये मैच हो सकता है, ये मैच उन मैचेस में से एक हो सकता है जिसमें एगोनिक्स I8 बेहतरीन परफॉर्म करे और इंशाल्लाह चिकन डिनर लेकर जाए चार्ट के अंदर। सब ने इंशाल्लाह ज़रूर बोलना है, सब ने सपोर्ट ज़रूर करना है जिस भी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन टोटल के आगे एलिमिनेशंस में हाईएस्ट एलिमिनेशंस 95 ब्रू की ही रहेंगी जो कि लीडर बोर्ड के #1 पर हैं। सेकंड हाईएस्ट एलिमिनेशंस 83 भी उसी टीम के रहेंगी जो कि लीडर बोर्ड के ऊपर #2 पर मौजूद है, इन्फ्लुएंस केमिन। LGD पिछले मैच के अंदर एलिमिनेट हो जाते हैं, तीसरे पायदान पर आते ज़रूर हैं लेकिन इतने खातिर खा पॉइंट्स उनके पास नहीं थे, वो भी सोलो सर्वाइवल उस प्लेयर को मैं दाद दूंगा जो कि LGD के आखिरी प्लेयर थे जिन्होंने सोलो सर्वाइवल को यकीनी बनाया अलादीन। बिल्कुल, और थोड़ी देर में अलादीन से उनकी खुशगवार आवाज़ हम लोग सुनेंगे ज़रूर, लेकिन अभी के लिए फोकस है टीम R8 के प्लेयर्स का रोटेशन के ऊपर कि वो इनिशियल्स में रोटेट करना चाहते हैं। R8 बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, मेनली ड्यू टू सैनहॉक ड्रॉप क्लैशेस एंड ड्यू टू रोटेशंस एंड अननेसेसरी फाइट्स। जितनी ज़्यादा अननेसेसरी फाइट्स इस टीम ने ली हैं मेरा नहीं ख्याल, और उसी की वजह से जाहिर सी बात है #16 पर वो मौजूद है। EM टेक ऑन दी अदर हैंड देव ट्राइड टुडे, यार उन्होंने वाकई कोशिश ज़रूर की आज के दिन कि शायद हम कहीं ना कहीं से पॉइंट्स अखज़ कर पाएँ। हालांकि मुझे लग रहा था कि इस सारे मेटा के बाद इतना स्ट्रगल नहीं किया जाएगा टीम्स की तरफ से, लेकिन स्टिल कुछ ऐसे नाम हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि आप हिसाब लगाओ कि पहले 4 सर्कल्स तो चेज़ करना कोई बड़ी बात ही नहीं है, पहले 4 सर्कल्स तो आप एक ही जगह पर रहते हुए भी चेज़ कर सकते हो, ज़्यादा सर्कल जो डिफरेंस है वो भी नहीं है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि जो सर्कल्स हैं इनिशियल्स में वो पिछला जो मेटा था उसके मुकाबले के अंदर अच्छे खासे बड़े भी बन रहे हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। लेकिन फिर भी इस सारे मेटा पर लैंड कुछ टीम नहीं कर पा रही, और ये बड़ी एक मेरे ख्याल से एक सरप्राइजिंग एक चीज़ है जो मैं नहीं समझ रहा था इस स्टेज के ऊपर आने वाली कोई भी टीम इतना ज़्यादा स्ट्रगल करेगी कि 2 दिन के कंप्लीट मैचेस और आज के दिन के मैचेस को मिलाकर सिर्फ 55 पॉइंट्स हासिल किए हैं टीम R8 ने। लेकिन खैर टीम R8 देखते हैं, यहाँ तक आए हैं ऑब्वियसली अपने आप को मनवा कर ही आए हैं और बहुत अच्छा खेलते हुए भी हमें दिखाई देंगे, में भी शायद हमें दिखाई दें अच्छा खेलते हुए। लेकिन खैर ज़्यादा बातें R8 के ऊपर नहीं करेंगे, थोड़ी सी बात LGD के ऊपर भी करते हैं। YZZZ अभी तक नॉकडाउन है और MVM उनको रिवाइव दे रहे हैं, लेकिन ख़तरा कोई भी करीब मौजूद नहीं है। आई थिंक सो कोई व्हीकल स्प्रे तो नहीं लग रहा मुझे, कोई भी व्हीकल डैमेज हमें दिखाई नहीं दे रही। सो आई बिलीव कि किसी न किसी प्लेयर ने नॉक इनको ज़रूर किया, या हो सकता है व्हीकल से गिर कर भी नॉक हो सकते हैं। LGD अब फर्दर आगे की जानिब रवानगी इख्तियार कर रही है। बिल्कुल, LGD अब फर्दर आगे की तरफ LGD फर्दर आगे की जानिब मूव कर ज़रूर रही है। लेकिन बात करेंगे ब्लेड की। ब्लेड इस वक्त अपने टीममेट के साथ एगोनिक्स I8 के प्लेयर्स के साथ यहाँ पर सब रोटेट करते हुए नजर आ रही है, लेकिन टीम एगोनिक्स I8 ने अर्ली प्लेयर्स अपने जो है वो लूज़ कराए हैं। अगर आपको लास्ट मैचेस भी याद हों, ब्लेड 2 मैचेस में जो है वो अर्ली एग्जिट लेकर जाते हुए नजर आए। उससे पहले अगर आपको पहला मैच याद हो तो गोस्ट को हमने अर्ली एग्जिट लेते हुए देखा। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमने देखा कि कल के दिन के मैचेस और परसों के दिन के मैचेस में IQ जो थे वो सफ़र हो रहे थे, वो जल्दी एलिमिनेट हो रहे थे। सो एगोनिक्स I8 हैज़ टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। उनको थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अर्ली प्लेयर्स अगर वो लूज़ नहीं कर रहे फिर भी वो टॉप 3 में फिनिश कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर एक पर अपना जिंदा रख पाए तो आधी चिकन डिनर ज़्यादा दूर नहीं है उनसे। अलादीन बिल्कुल भी दूर नहीं है। आज के
एक मैच में तो हमने देखा कि एगॉन एक्साइट सेकंड स्पॉट तक भी आई, और पहले मैच में जैसा सर्कल था मिलिट्री आइलैंड के ऊपर, एगॉन एक्साइट अगर उनके चारों के चारों प्लेयर सर्वाइव कर रहे होते तो आई बिलीव वो जो फेंस जहां पर वो फंस चुके थे वो बासानी वो क्रॉस कर सकते थे। कुछ भी हो सकता था अगर एक प्लेयर उनका सर्वाइव कर रहा होता। सो मेन एडवांटेज, अर्ली रोटेशंस, ये दोनों चाबियां हैं चिकन डिनर की इस सारे मेटा के अंदर। मेन एडवांटेज अपना रखना है बस, चाहे मीसने बन के बैठ जाओ, चाहे एक ही जगह पर कैंप करो, जो मर्जी करो, एवरीथिंग इज अलाउड, लेकिन मेन एडवांटेज नहीं गंवाना अपना। अगर एक अच्छा चिकन डिनर हासिल करना है, मेन एडवांटेज नहीं गंवाना। और आईजीएल रोटेशंस के ऊपर टीम एगॉन एक्साइट इज डूइंग सो गुड। उन्होंने बहुत अच्छी रोटेशंस की हैं, पिछले मैच में बहुत अच्छी रोटेशन की है। पहले दिन हमने देखा क्या खूबसूरत रोटेशंस उन्होंने की हैं। रोटेशंस के अंदर कोई गलती नहीं है, गलती एज सच कोई मेजर भी नहीं है, लेकिन बस वो जो गलती से यही एक गलती है कि गलती बस एक ही है कि जो वो गलती से अपना एक प्लेयर गवा देते हैं अक्सर औकात, वो जो गलती अगर रिकवर कर ली जाए तो मेरे ख्याल से टीम एगॉन एक्साइट आज के मैच में चिकन डिनर भी हासिल कर सकती थी और अब भी कर सकती है। मेरा इस पे यकीन है क्योंकि दे आर लुकिंग प्रीटी गुड। हाश 6 के ऊपर मौजूद है, 133 पॉइंट्स अभी तक उनके पास मौजूद हैं और 33 पॉइंट्स ही उनको चाहिए। 30 से लगभग 28 पॉइंट्स उनको अभी तक दरकार हैं टॉप 3 के अंदर जाने के लिए। लेकिन खैर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। ऑडियंस और आप लोगों की प्रोडिक्शन स्क्रीन पर आ चुकी है। नेपाल के जो हमारे फैंस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग का जो है वो सिलसिला सरअंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। 44% इसमें भी मैच में प्रोबेबिलिटी वोटर्स की, ऑडियंस की यही है कि डीआरएस चिकन लेकर जाएगी। बिल्कुल, लेकिन अगर बात करें हम इसी के साथ साथ निकमा गैलेक्सी और टीक्यू की, दोनों ही टीम्स ऐसी टीम्स हैं जो कि आज के दिन ऐसा इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। टीक्यू ने एक मैच में बहुत अच्छा खेला ज़रूर है, लेकिन चिकन थ्रू कर जाती है। निकमा गैलेक्सी को ये मैच अच्छा निकालना होगा आती, बिकॉज देखिए अपने स्टार्ट का जो दिन है वो बहुत अच्छा खेला, सेकेंड डे यू वर एवरेज, और थर्ड डे अगर आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये चीज़ अब ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल खड़े करती है कि पहले दिन आप तो खेल पाए, सेकंड डे ऐसी क्या गलती की आपने जो आपसे बिल्कुल भी नहीं खेला गया। बिल्कुल, और ये सारे सवालात हैं अलादीन। जैसे कि टीक्यू की हमने क्वालिफिकेशन पर भी थोड़ी सी बात की थी कि वाकई वो लक था यार। वाकई टू बी ऑनेस्ट, लोग समझते होंगे कि शायद इस स्टेज के ऊपर आप लक से नहीं आ सकते हो। लक से कैसे आ सकते, जहां से क्वालिफाई किया उस चैंपियनशिप में। हैश जो बेहतरीन 3 थी टीम्स ऊपर से लीडर बोर्ड से ओवरऑल रैंकिंग के, उन्होंने क्वालिफाई करना था। टीक्यू 6 पर मौजूद थी लेकिन फिर भी वो क्वालिफाई कर गए। कैसे? उनसे ऊपर जितनी टीम्स थी वो सब ऑलरेडी क्वालिफाइड थी पीएमजीसी के लिए। सो टीक्यू को तो एक प्लेटफॉर्म मिला है, उन्होंने यूटिलाइज भी किया है। ऑब्वियसली मैड से अच्छा खेल रहे हैं, ईएमटी से अच्छा खेल रहे हैं, R8 से किसी ना किसी से तो अच्छा खेल ही रहे हैं, लेकिन यहां पर फाइट के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं। बॉक्स गेमिंग के प्लेयर आमने सामने आए टीम एनजीएक्स के, और एनजीएक्स ने इस फाइट में भी अपने प्लेयर्स गवा दिए हैं और निग्मा गैलेक्सी अपना एक प्लेयर ऑलरेडी गवा चुकी है, डिसएडवांटेज पर आ चुकी है। लेकिन एगॉन एक्साइट इसी गूंज को सुनते सुनते यहां तक पहुंचे थे, लेकिन अब वो यहां से आगे बढ़ना चाहेंगे, अपनी रोटेशन के ऊपर फोकस करना चाहेंगे। किल्स तो आने जाने वाली चीज है और वो आ ही जाएंगे, लेकिन रोटेशन करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा फैसला है एगॉन एक्साइट का। अननेसेसरी फाइट स्किल के पीछे वो नहीं दौड़ रहे, वो सिंपली अपनी रोटेशंस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। एंड सर्कल में आकर बस थोड़ा बहुत लड़खड़ा जरूर जाती है ये टीम, लेकिन आई बिलीव ये भी गलतियां सुधार। बिल्कुल जी, पर उम्मीद तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ कि अच्छा मेरा मार निकाला जाएगा इनकी तरफ से, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इस वक्त के लिए हमारे सामने रोटेशन में इस वक्त डीआरएस चलती हुई नज़र आ रही है। एक और टीम जिसने बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं आज के दिन। अगर हम उन टीमों की बात करें जिनका आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा तो उसमें डीआरएस का नाम रहेगा, LGD S2G का नाम जरूर रहेगा, बिकॉज LGD ने 2 चिकन्स निकाले। LGD ने तो बहुत अच्छे मैचेस निकाले। BRU बस दैट टीम जिसने 2 चिकन्स निकाले थे, और अब आप उनकी लीड देखें, वहाँ तक पहुँचना इम्पॉसिबल हो रहा है। लेकिन EMT, आप एक बात कर रहे थे आदि के इस तरह के मेटा के हिसाब से भी टीम स्ट्रगल किस तरह से कर रही है। सो द मेन रीजन व्हाई द टीम्स आर स्ट्रगलिंग, बिकॉज
इवन इन दिस मेटा इज दैट कि वो अर्ली फाइट्स में इंडल्ज हो रही हैं। अब आप यहाँ पर इन्फिनिटी और EMT को देखना, बहुत सारी टीम्स होती हैं, फाइट लेती हैं, अगर फाइट नहीं बन रही फॉल बैक कर जाती है, बट EMT इज दैट टीम जो कि डिसएडवांटेज होने के बावजूद वो फाइट्स लेना नहीं छोड़ते आती। बिल्कुल अलादीन, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया है कि अननेसेसरी फाइट्स, इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि अननेसेसरी फाइट्स लेने की क्या ज़रूरत है, ड्रॉप क्लैशेस लेने की क्या ज़रूरत है जब आपके लिए सर्कल चेज़ करना इतना आसान बना दिया गया है। इसीलिए तो ड्रॉप क्लैशेस ख़त्म किए गए थे, इसीलिए तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ड्रॉप क्लैशेस ख़त्म हो, ताकि टीम्स के अंदर वो कोई बहाना ना रहे कि यार हमारे ड्रॉप के ऊपर तो ये टीम उतरती है, अब आपके पास लूट भी है, आपके पास एरियाज़ भी हैं, आप कहीं पर भी उतर जाओ, आप फिर भी सर्कल्स के अंदर आ सकते हो। लेकिन स्टिल अननेसेसरी फाइट्स हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ टैग्स का सिलसिला जारी है बॉक्स ट्रिज्मी की तरफ से। टीम एगोनिक्स i8 के प्लेयर्स को उन्होंने स्पॉट डाउन किया, लेकिन अभी के लिए कुछ खास आउटिंग जनरेट वो नहीं कर पाएंगे अपने लिए। बॉक्स गेमिंग के बाकी भी प्लेयर्स इसी वेयर हाउस के अंदर मौजूद हैं और एगोनिक्स i8 एक रिज का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। आई थिंक सो मिरामार के अंदर हार्ड कंपाउंड से ज़्यादा बेहतर रिज है। अगर आपका 4 मैन स्टैंडिंग स्क्वाड है, आपको चाहिए कि आप किसी रिज को होल्ड करें, ना कि किसी कंपाउंड को होल्ड करें। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी मिरामार में कि सारे के सारे कंपाउंड्स लोअर जो है प्लेन पर मौजूद हैं। रिजेस के करीब भी जो कंपाउंड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लोअर्ड नज़र आते हैं। हालांकि बज़ाहिर इस मैप के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हैं, लेकिन वो मखसूस जगह पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर मौजूद नहीं है। लेकिन फ़िलहाल के लिए रिजेस ज़्यादा यूज़फुल साबित होती हैं, ज़्यादा कारामद साबित होती हैं। एक अच्छी फाइट मजीद बनती हुई टीम बॉक्स गेमिंग के प्लेयर BTR के आमने सामने आते हुए, नेट्स का इस्तेमाल जारी है BTR के प्लेयर की तरफ से। जन फॉस्टर हाई ग्राउंड को होल्ड भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। आई थिंक सो BTR के प्लेयर थोड़ा सा फ्लैंक एंगल भी अडॉप्ट कर रहे हैं बॉक्स गेमिंग के अगेंस्ट रैप अराउंड करने की। इस रिज पे बेहतरीन तरीके से कोशिश भी की जा सकती है। अगर एक प्लेयर पीछे चला जाता है बॉक्स गेमिंग के तो बहुत अच्छे तरीके से नॉक्स भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एक फुल स्टॉप लगाने की, एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है टीम BTR की तरफ से बॉक्स गेमिंग के लिए। लेकिन बैक एंड पे जो प्लेयर फ्लैंक लेकर गए थे उनको भी स्पॉट किया गया। यहां पर एक और फाइट बनती हुई, एगोनिक्स i8 के IQ आमने सामने आते हुए टीम S2G के काफी हद तक लोन HP रहेंगे, नॉक भी होने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रोन हो जाएंगे। बैक एंड से कैवलरी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। गाड़ियों की गूंज सुनाई दी आते हुए टीम AGX i8 के प्लेयर अपने प्लेयर के रेस्क्यू के लिए बैक एंड के ऊपर टीम एगोनिक्स i8 का स्क्वाड आ चुका है। डैमेज करेंगे वंस अगेन IQ को। बैक एंड पर ब्लेड भी घुटनों पर आ चुके हैं। टीम S2G के प्लेयर आहिस्ता आहिस्ता अब अपना किल भी कंफर्म करना चाहेंगे। ब्लेड को किस तरह से रिवाइवल दिया जाता है ये देखना अभी भी बाकी है, लेकिन BTR के लिक्विड बॉक्स के बेंचू को स्पॉट डाउन करने में कामयाब रहे। बिल्कुल IQ के सामने आकर प्रोन होते हैं। IQ स्पॉट डाउन कर पाए हैं या नहीं कर पाए ये भी अभी देखना बाकी है, लेकिन रेज एक डिफरेंट एंगल के ऊपर स्पॉट डाउन करते हैं। निग्मा गैलेक्सी के प्लेयर्स को रेड डॉट के साथ स्प्रे दिया जाता है, कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत डैमेज जरूर दिया, हेड कनेक्ट करेंगे, नॉक भी करेंगे, लेकिन दूसरी जानिब बॉक्स गेमिंग के प्लेयर रशिंग करते हुए टीम BTR के ऊपर BTR के प्लेयर सामने आते हैं, स्पॉट डाउन करते हैं। दोनों ही प्लेयर को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया जाता है और बॉक्स गेमिंग 16 पर 2 किल्स लेकर जाने के बाद बाहर हो जाती है। एगोनिक्स i8 अपने 2 प्लेयर्स को गवा चुकी है इस वैली में। बिल्कुल जी, एगोनिक्स i8 अपने 2 प्लेयर्स को गवा देती है सारी की सारी फाइट के अंदर, लेकिन यहाँ पर किल्स की बात करें तो 3 किल्स इनके पास मौजूद हैं अभी के लिए, जो कि काफ़ी तो नहीं रहेंगे। ब्लेड और IQ जैसे वाइटल फ्रैगर्स को गवाया जाता है, काफ़ी दुखी ज़रूर है ये मंजर, लेकिन इसी के साथ साथ एगोनिक्स i8 फ़िलहाल थोड़ा सा इनफैक्ट किल्स भी नहीं है उनके पास। आई थॉट 3 किल्स मौजूद हैं, मुझे 0 जब वो 3 लग रहा था। ये मेरी इस वक्त जो नज़र भी कमज़ोर मुझे लग रहा है, हो चुके इसके लिए मैं मासूद खा हूँ ज़रूर। लेकिन बात करते हैं इन्फिनिटी की, जिनकी फाइट चल रही है आरएट के साथ। आपकी आंखों में मैं ड्रॉप्स डालूंगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है दोनों साइड्स पे जो क्रेडिट से ट्रेड किए जा रहे हैं इन्फिनिटी के प्लेयर्स इस वक्त डाउन रिच पे मौजूद हैं, हाइट पे मौजूद हैं आरएट के प्लेयर्स। और आरएट को इस फाइट में फ़ायदा तो ज़रूर है, लेकिन आरएट का अगर आप मैन डिसएडवांटेज देखें तो एक पर उनका नॉक हो चुका है और बाकी प्लेयर्स उनके डिफरेंट एंगल पे मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल इन्फिनिटी ओपन में मौजूद फाइट लेने की कोशिश करते हुए सबके बाहर भी हैं। उनके बैक साइड पे एक और टीम भी मौजूद है। टीम इन्फिनिटी यहाँ से आई थिंक इस फाइट को अबैंडन करना चाहेगी, आधी ज़्यादा देर इस फाइट में इंडल्ज नहीं होना चाहेगी ये टीम। बिल्कुल, और ज़्यादा देर इस फाइट में रहना भी नहीं चाहिए। काफ़ी ख़तरनाक ये एरिया साबित हुआ है। एगोनिक्स i8 के 2 प्लेयर्स भी यहीं पर एलिमिनेट हुए हैं, और क्योंकि इस एरिया का जो टेरेन है स्पेसिफिकली वो बड़ा वियर्ड है। आप अगर नीचे मौजूद हो तो ऊपर आने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आप ऊपर मौजूद हो तो आपसे भी ऊपर एक और रिज मौजूद है, वहाँ पर भी कोई ना कोई टीम हो सकती है, और यही कुछ होने जा रहा है टीम r8 के साथ, क्योंकि इनके बैक रिज पर प्लेयर्स आ गए थे लेकिन अब वहाँ से रिट्रीट बैक कर चुके हैं। दैट्स अ गुड मूव। लेकिन S2G इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि रिजेस पे रहकर
काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। वो हार्ड कंपाउंड्स को प्रेफर करते हैं, अच्छा फैसला उन्होंने किया, लेकिन एनजीएक्स के रऊफ काफ़ी ज़्यादा लड़खड़ा चुकी है। एनजीएक्स को कुछ ना कुछ अब आउट ऑफ द बॉक्स करना है, उनको इस क्लस्टर का शुमार होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हमूदी जो कि हार्ड कंपाउंड्स में है, टीम S2G के बाकी प्लेयर फोकस्ड हैं उनकी तरफ और उनका भी किल उठाने की कोशिश की जाएगी। फ्री किसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा डिस्पर्स होंगे, अपनी टीम से सेपरेशन इख्तियार करेंगे कि कहीं वो S2G के हाथों ना चढ़ जाए और रिज के ऊपर जाकर खेलना पसंद करेंगे। लेकिन DRS वर्सेस मैड की फाइट में मैड के 2 प्लेयर्स नॉक, DRS का 1 प्लेयर नॉक, डेल्टा लो ऑन HP है, BRU भी बैक एंड पे आ चुकी है, स्लैम इन दिया जा चुका है मैड के ऊपर BRU के स्काई ओनली की तरफ से। BRU के माय नेम 4 भी आ चुके हैं आगे की तरफ और मैड बुल्स को अब शिकार करना पड़ेगा BRU के इन दोनों ही प्लेयर्स का। यूटिलिटीज का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिल सकता है, लेकिन BRU के प्लेयर भी नेट निकालते हैं, नेट थ्रो किया जाता है मैड बुल्स के प्लेयर्स की तरफ से, नेट कनेक्ट भी करता है, घुटनों पर भी लेकर आता है, एक और प्लेयर को भी नॉक करेंगे BRU के। टाइगर सामने की तरफ आते हुए नॉक निकालने की कोशिश की जाएगी, मैड इफेक्ट सामने निकल चुके हैं, आउट इन द ओपन ही इज, और टाइगर के बिल्कुल आमने सामने आते हुए दोनों तरफ से नेट निकाल लिया जा चुका है। कुक करते हैं नेट को, देखते हैं किसका नेट पहले क्लिक करता है, किसका नेट नॉक जनरेट करता है। दोनों तरफ से नेट थ्रो किया गया, मैड इफेक्ट का नेट कनेक्ट करेगा लेकिन नॉक नहीं निकाल पाएंगे। एगॉन XI8 अनफॉर्चुनेटली मैच से एलिमिनेट हो जाती है। मैड इफेक्ट ने गलती की, ओवर एग्रेसिव होते हैं और उसका नुकसान टीम LGD MVM के प्लेयर बैक एंड से नॉक करते हुए, लेकिन बगी से पुश किया, प्लेयर को नॉक नहीं किया। केंगजू कैसे बगी से नॉक नहीं होते, उड़कर पीछे आ जाते हैं और खुमियाजा भुगतना पड़ा, प्लेयर को एलिमिनेट करते हैं। टीम भी इस मैच से एलिमिनेट होने ही वाली है, लेकिन ब्रू अपने आखिरी प्लेयर के साथ सर्वाइव करती हुई 5 किल्स आ चुके हैं उनके पास। बिल्कुल, ब्रू का खेल आज अलग ही लेवल पर दिख रहा है हमें। आज के दिन ब्रू तीसरा चिकन डिनर लेना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स गवा देती है, वरना मुझे लग रहा था कि ये चिकन भी इन्हीं का हो सकता है। लेकिन फिलहाल सर्कल की बात कहते हैं, क्या ये एक रिडेम्पशन मैच होगा INF के लिए या नहीं, इस सवाल का जवाब सर्कल देता है और सर्कल कहता है कि शायद, बिकॉज INF को सर्कल में कहीं ना कहीं जगह तो मिली है, लेकिन जिस पर जगह मिल रही है फॉर नाउ INF यहाँ से खेल तो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम उनको नेक्स्ट फेजेस में जाकर आएगा। BTR एक प्लेयर उनका भी जिंदा है सारी फाइट के अंदर, निगमा गैलेक्सी भी 2 प्लेयर्स के साथ सर्वाइव करते हुए, लेकिन निगमा गैलेक्सी की स्पेसिफिकली बात करें तो डर कर खेल रहे हैं ये प्लेयर्स, इंतजार कर रहे हैं कि इनको मौका मिले, इनको फ्री किल्स मिले। किल्स को ढूंढने नहीं निकल पा रही ये टीम। अगर आपको फर्स्ट के मैचेस याद हो तब ये टीम ढूंढ कर एलिमिनेट कर रही थी टीम्स को, लेकिन अभी निगमा गैलेक्सी एक सर्वाइवल शॉट्स अपने पुल ऑफ करती हुई नजर आई कि उनकी तरफ से पहले खुद को बचाया जा रहा है, उसके बाद वो सोच रहे हैं कि वो ओपोनेंट टीम्स को एलिमिनेट करने का सोच रहे हैं। लेकिन फॉर राइवल एंड अदर टीम जिसको हम स्ट्रगल करता हुआ देख रहे हैं, 90 पॉइंट्स इन द बैकपैक विद 1 एलिमिनेशन इन दिस स्पेसिफिक मैच, अभी तक जिंदा नजर तो आ रहे हैं, लेकिन ब्रू 5 किल्स के साथ उनका भी आखिरी प्लेयर रहेगा। चिकन डिनर की अगर बात की जाए तो प्रोबेबली LGT इज गोना बी दैट टीम जो कि नहीं छोड़ने वाली सबको, लेकिन S2G भी तो जिंदा है, सो कहना बहुत मुश्किल है आदि कि चिकन कौन लेकर जाएगा अभी। बिल्कुल अलादीन, कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। टीम S2G को मैं खासकर दाद दूंगा, जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर फाइट्स को टैकल किया है, जिस तरह से अपने आप को सर्वाइव करवाया है, वो बहुत ज़्यादा काबिल दीद था। लेकिन 4 राइवल्स अभी के लिए टीम S2G के अगेंस्ट एक अच्छी जगह के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। NGX के प्लेयर को अपनी जान के लाले पड़ते हुए फ्री कभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ऊपर हैं, लेकिन NGX के हमूदी का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। M249 का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन प्री फायर्स का सिलसिला टीम S2G के प्लेयर ने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है और हमसी के बैकपैक में ये किल भी चला जाएगा एक मजीद टीम NGX के प्लेयर का। NGX डाउन टू 1 मैन सर्वाइवल पर आ चुकी है। बिल्कुल, NGX की जो आखिरी कुछ उम्मीदें थी उनको भी तोड़ा जा रहा है फिलहाल के लिए, एंड अब अकेले प्लेयर ही NGX से जिंदा है जिनके ऊपर सारी बाकी जिम्मेदारी आ रही है। लेकिन 4 राइवल इस वक्त 4 मैन इंटैक्ट है, अब उनकी फाइट है सर्कल के अंदर, जा तो सकते हैं बासानी, लेकिन नेक्स्ट सर्कल में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। छठे सर्कल का खेल हम देख रहे हैं, S2G वर्सेस 4 राइवल्स की फाइट बनती हुई। S2G जब भी उनको लगता है कि फाइट ली जा सकती है तो ये टीम और उस चीज़ को जो वो अमली जामा पहनाती हुई नजर आती है। एंड लुक एट हाउ क्या खूबसूरत एंगल बनाते हुए एक बेहतरीन स्प्रे देते हैं, क्योंकि अपनी तमाम गोलियां दागने में कामयाब हो जाते हैं और एक नॉक उनको मिल जाएगा। S2G अब मेक श्योर करेगी कि अब 3 मजीद नॉक्स निकाल के 4 किल्स वो मजीद कंफर्म करें, लेकिन उसके लिए उनको लप्पी को डाउन करना पड़ेगा। लप्पी जहाँ पर मौजूद है वो यहाँ से बासानी कवर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने टीममेट्स को, और रिवाइवल की जो एक कॉल जो कि दी गई है उसको भी शायद भरपूर तरीके से एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए।
लेकिन INF वर्सेस टाइटंस की फाइट बन रही है आदि। डिफेंस साइड के ऊपर INF वर्सेस टाइटन भी चल रहा है। INF यहाँ नॉक खाते हुए और ट्रेड नॉक्स भी देते हुए नजर आती है, लेकिन टाइटंस के आखिरी प्लेयर रह जाएंगे, उनको भी लॉबी भेजा जाता है और इस मैच में INF को मजीद किल्स मिलते हुए 4 किल्स ये टीम लेकर जा चुकी है और इसी के साथ मैच से बाहर होती हुई हमें टीम टाइटंस नजर आती है आदि। बिल्कुल, और मैच से बाहर तो जा चुके हैं टीम टाइटंस ने। आगाज़ तो बहुत अच्छा किया था आज के दिन का, लेकिन इख्तिताम नहीं कर पा रहे वो अच्छे तरीके से। काफ़ी टीम्स हैं ऐसी जो इख्तिताम आज के दिन का अच्छे तरीके से हायर नोट के ऊपर नहीं कर पा रही। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए, क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। जो टीम एक साइड से रोटेशन अच्छी करती है वो कहीं और जाकर फंस जाती है। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही हैं। टीम S2G मैं दाद दूंगा यार इस टीम को। आई एम इम्प्रेस्ड फाइनली। मुझे वाकई ही इम्प्रेस कर दिया इस टीम ने। ये जिस तरह से उस रिज से निकले हैं अपने चारों के चारों प्लेयर्स को सर्वाइव करवा कर, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था S2G से कि इतने मुश्किल सिचुएशन में रहते हुए जहाँ पर 4 टीम्स इनके बिल्कुल करीब मौजूद थी, वहाँ से कैसे निकले हैं ये चीज़ हम लोग ज़रूर देखेंगे इस मैच के बाद जब ये मैच ख़त्म होगा पोस्ट गेम सेगमेंट्स के अंदर। लेकिन S2G के प्लेयर अभी 4 राइवल्स के प्लेयर के ऊपर अपना एक किल, एक नॉक एक्सचेंज कर चुके हैं। 4 राइवल्स को अब रिटालिएट करना पड़ेगा, फॉल बैक भी करना पड़ेगा उनको साथ ही साथ, क्योंकि 2 प्लेयर्स उनके गिर चुके हैं। 4 राइवल्स के आपी और उन्हीं के साथ साथ उनके प्लेयर अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन R8 के प्रेस्टीज को स्पॉट डाउन करने में कामयाब टीम S2G के प्लेयर्स। यार ये टीम हर ही टीम के लिए मुश्किलात बना रही है, हर ही टीम को एलिमिनेट करना ये चाहते हैं। 5 किल्स हैं अभी तक के लिए इनके पास और चौथे पायदान के ऊपर मौजूद है टीम LGD कौन करीब 3 से 4 किल्स के बाद ये नीचे उतार लेंगे LGD भी, लेकिन अभी के लिए 4 मैन स्ट्रांग है और मुमकिन तौर पर आगे जाकर हमें मे भी शायद S2G वर्सेस LGD बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन इन्फिनिटी के नूजी EM टेक के एमन को स्पॉट डाउन करना चाहते हैं। स्पॉट डाउन तो उन्होंने किया लेकिन किल नहीं कंफर्म कर पा रहे। इन्फिनिटी भी 4 मैन स्ट्रांग है, 104 पॉइंट्स उनके पास अभी भी मौजूद है। लेकिन S2G इज द गेम, S2G इज द बिग फिश राइट नाउ इन दिस होल लॉबी। आज के दिन की बेहतरीन टीम है ये। ब्रू के प्लेयर्स ने इस मैच के अंदर खासी नहीं दिखाई कारकर्दगी। पिछले 2 मैचेस का चिकन डिनर के साथ इनके पास एक मार्जिन जरूर था अलादीन कि एक आधा मैच बुरा जाएगा भी तो इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ही ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करने वाली ये टीम्स जाते जाते भी कुछ किल पॉइंट्स निकालने की कोशिश में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, हमारे सामने LGD को हम देख रहे हैं, दे आर सर्वाइविंग विद 4 प्लेयर्स और 5 किल्स उनके पास अभी भी मौजूद हैं। 5 एलिमिनेशंस के साथ डोमिनेटिंग स्प्री पर जाती हुई ये टीम हमें नज़र आ रही है। हर मैच अच्छा खेला जा रहा है इस टीम की तरफ से। एंड फॉर नाउ जो सेकेंड स्पॉट के कंटेस्टेंट हैं उसमें टीम LGD का नाम सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन S2G को देखें आप, चारों पर्सन के बिजनेस आए, चिकन डिनर निकालना वो भी चाहते हैं। INF इज रेडी, इन्फिनिटी इज रेडी टू मेक अ कमबैक और INF भी किल्स निकालने की कोशिश करती है, लेकिन INF की तरफ से ग्रेनेड फेंके जाते हैं एंड विदिन सम सेकंड्स 3 प्लेयर्स इन्फिनिटी के डाउन किए जाते हैं। लुक एट टीम INF इन्फिनिटी को मैच से बाहर किया जाता है। लॉ यहाँ 3 किल्स कंफर्म कर जाते हैं आदि। बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिमिनेट किया है। 3 किल्स एक ही प्लेयर के बैकपैक में गए हैं। ये शो करता है कि कितनी ज़्यादा ओवरपावर्ड नज़र आ रहे हैं प्लेयर और उनके साथ साथ उनकी टीम भी। लेकिन INF के फेडरल वो EMT के ऊपर काफ़ी देर से अपनी आंखें जमाए हुए थे। फाइनली उनको उनका किल भी मिल जाता है। अभी तो नॉक मिला है, किल लेना अभी भी बाकी है। लेकिन INF के एक और प्लेयर कियोस्क ये किल कंफर्म करने में कामयाब रहते हैं। S2G को नीचे उतारना है, S2G से वो जगह किसी ना किसी तरह खाली करवानी है। आप S2G को देखो किस तरह से उन्होंने होल्ड किया हुआ है। वो लग रहे हैं किंग्स हैं इस गेम के, इस मेरा मार के। जिस तरह से उन्होंने खेला है, जिस तरह से उन्होंने टैकल किया है, और ये फाइट में देखना चाहूंगा बज़ाहिर LGD वर्सेस S2G। इसी का मुझे इंतजार था। #3 पर रहती हुई टीम #4 पर रहती हुई टीम के आमने सामने आ चुकी है और यही दोनों टीम्स हैं जो कि 4 मैन स्टैंडिंग है। INF भी अभी तक सर्वाइव कर रही है। कमबैक मैच हो सकता है आज के दिन का INF के लिए, क्योंकि आज के दिन इस तरह का मैच अभी तक INF ने निकाला नहीं है इस तरह से। 188 पॉइंट्स तो उनके पास है। अगर चिकन डिनर वो ले लेते हैं, ब्रू को क्लियरली वो टेक ओवर करते हुए नजर आएंगे और फिर से वही सिलसिला, वही लूप जारी रहेगा #1 #2 का, जहां पर चेंजेस हमें बनते हुए काफी दिनों से इस इनफैक्ट मैं कहूंगा काफी मैचेस से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन EMT के एमन
बहुत जोश के साथ, बहुत जज्बे के साथ सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश बहुत की जा रही है उनकी तरफ से, काविशें बहुत की जा रही हैं किसी ना किसी तरह मैं टॉप 5 के अंदर अपनी टीम को ले आऊं। देखना है अभी भी बाकी कि क्या वो लेकर आ पाएंगे या नहीं लेकर आ पाएंगे, लेकिन जो फाइट हमें बनती दिखाई दे रही थी वहां से डिसएंगेज करती हुई टीम एलजीडी अब थोड़ा सा फॉल बैक कर लेगी। टीम S2G को नहीं छेड़ा जाएगा। S2G अभी भी हिल पर मौजूद है। S2G बल्कि हिल से बाहर हो चुकी है, जोन से बाहर हो चुकी है। अब उनको हिल के नीचे आना है और अब असल किल स्टीलिंग टीम एलजीडी S2G के ऊपर कर सकती है, लेकिन S2G को बैक एंड से ब्रू के प्लेयर्स काफी मुश्किलात में लेकर आते हुए 10 एलिमिनेशंस टीम इन्फ्लुएंस इस मैच में कर ले गई है। एक डोमिनेटिंग मैच निकाल कर लेकर जाने की कोशिश की जा रही है इन्फ्लुएंस की तरफ से। S2G के प्लेयर को स्पॉट डाउन करते हैं, हेड कनेक्ट होता है, हमसी जी का किल भी कंफर्म कर लिया जाएगा। आखिरी फेजेस के अंदर हमारा ये मैच जाता हुआ 11 किल्स पर जाती हुई, किल स्ट्रीक पर जाती हुई टीम इन्फ्लुएंस केम इन और S2G जो कि प्रॉमिसिंग थे। यही मैंने कहा था कि जब उनको हिल से नीचे आना पड़ेगा तो वो अपने किल्स बांटते हुए नजर आएंगे, लेकिन BTR गेट्स एलिमिनेटेड और आखिरी 5 टीम्स अब सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है। EMT टेक भी इस मैच से एलिमिनेट हो जाएगी। EM टेक को बाहर करने के बाद INF के पास 12 किल्स आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हुआ है, बॉडी लैंग्वेज उनकी काफी बेहतर हुई है। S2G के साइलेंस को स्पॉट डाउन किया, LGD के प्लेयर्स ने किल लिया और अब S2G नहीं बच पाएगी ज्यादा देर तक। ब्रू के प्लेयर स्पॉट डाउन करने की कोशिश करें, लेकिन कैल्सी कवर में नहीं जाना चाहते, वो नॉक निकालना ही चाहते हैं LGD के प्लेयर के ऊपर। CC को, चेंगसी को स्पॉट डाउन किया, नॉक भी किया, लेकिन कियोस्क बैकएंड से अपना नाम लिखना चाहते हैं सारे चिकन डिनर के ऊपर। बहुत बेहतरीन मिनी का इस्तेमाल, निकलने ही नहीं दिया और एक और किल सूख लेकर जाते हुए टीम S2G गेट्स एलिमिनेटेड। इन्फ्लुएंस के मिन बहुत करीब है चिकन डिनर के। जहां पर बिल्कुल जी इस वक्त के लिए अगर हम बात करें, अब यहाँ पर 3 टीम जिंदा है हमारे सामने, जहां पर इन्फेस्टमेंट के प्लेयर्स बहुत खूबसूरत खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वहीं पर फेडरल को नॉक किया जाता है मिनी 14 के चलते। BRU के आखिरी प्लेयर किंग्सो यहाँ मिनी 14 से एक नॉक निकालते हैं, लेकिन अभी फिलहाल INF को आगे जाना है और उनको LGD के प्लेयर को एलिमिनेट करना है और किंग्सो के ऊपर भी यहाँ पर क्रॉस उनके बने देंगे, लेकिन वहीं पर लिल बॉय डाउन करते हुए प्लेयर को नजर आएंगे। लास्ट प्लेयर सर्वाइव करते हुए LGD के, लेकिन रिवाइव की कोशिश LGD के प्लेयर की तरफ से की जा रही है, मगर उनकी बॉडी स्पॉट की जाती है डिफरेंट एंगल से, यहाँ पर डैमेज देने की कोशिश की जा रही है। और वहीं पर किंग्सो को देखिए आप, किंग्सो जिस एंगल पे मौजूद है यहाँ से वो कुछ नॉक्स निकाल सकते हैं, बट वो इंतजार कर रहे हैं, प्रॉब्ली उनके ऊपर पुश किया जा रहा है। सो ही इज गोना मेक श्योर कि वो जो क्लोज प्लेयर से पहले उनको डाउन करें, तो पहले उनको डैमेज देने की कोशिश की जाएगी, डैमेज देने की काफी कोशिश की, लेकिन डैमेज देते दोनों बट नॉक नहीं निकाल पाएंगे। इंस्टेंटली पुश आता है उनके ऊपर और वो टेक डाउन किए जाते हैं। वहीं पर LGD के 2 प्लेयर जिंदा रहेंगे, आखिरी प्लेयर के ऊपर क्रॉसेस बनते हुए आगे पुश करते हैं लिल बॉय एंड INF गेट्स दैट सेकंड इन। फाइनली एक कमबैक मैच INF के लिए आतावादी। जी बिल्कुल लादिन, ऐसा वैसा कमबैक मैच आई थिंक सो। अब Ash 1 के ऊपर वापस से विराजमान हो गई है, वो जो लॉस्ट थ्रोन था वो उनको वापस से मिल चुका है और अपनी किंगशिप वापस से संभालते हुए नजर आएंगे इस पूरी लॉबी के ऊपर। INF के प्लेयर्स ने ज़्यादा अपनी सेलिब्रेशन को एग्जैजरेट नहीं किया, उनको पता है कि अभी भी एक और दिन और एक मैच अभी भी बाकी है। INF 7 एलिमिनेशंस इनके बेहतरीन खिलाड़ी INF के कियोस्क ने ली हैं और 873 का डैमेज रजिस्टर कर पाए हैं इस मैच में। बिल्कुल, एलिमिनेशंस काफ़ी बेहतरीन, डैमेज काफ़ी बेहतरीन और चिकन डिनर उससे भी ज़्यादा बेहतरीन। और INF अपनी जो डोमिनेशन है उसको कंटिन्यू करता है और ये बताते हैं कि वो सिर्फ कुछ ही दिन परफॉर्म करने नहीं आया था, जिस तरह से निगमा गैलेक्सी ने किया, एक दिन परफॉर्म करके अब वो टीम कमबैक कर ही नहीं पा रही। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल की, तो बहुत बेहतरीन ट्रैवल डिस्टेंस रहेगा। आदि इनका बिलीव 100 किलोमीटर इन्होंने जब वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, अगर मेरी मैच सही है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं आदि। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूटिलिटी यूजेज की, तो मिरामर पे इतना यूटिलिटी यूजेज नहीं किया गया इनकी तरफ से, सिर्फ 4 ही स्मोक्स किए जाते हैं। बिल्कुल, और आई थिंक उनको टाइम ही नहीं दिया गया। बुरीराम ई स्पोर्ट्स, खैर INF को, हाँ INF ने भी 4 किए हैं, मैं बुरीराम को देख रहा था, उन्होंने 5 किए हैं। INF को ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने सिंपल अपना एक स्पॉट होल्ड किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड भी किया। एंड पर आकर हमने स्लैमन्स भी देखे उनकी तरफ से जो किए गए। LGD को बहुत बेहतरीन तरीके से एलिमिनेट कर पाते हैं। लेकिन खैर मैच के बेहतरीन लम्हात वंस अगेन आपके सामने आ चुके हैं। आज के दिन का 5वां ये मैच था, आखिरी गेम रह चुकी है, आखिरी आधा घंटा रह चुका है इन टीम के पास। आधे घंटे के अंदर अंदर कुछ भी हो सकता है और एक चिकन डिनर बहुत सी टीम्स को चाहिए, बहुत सी टीम्स की फहरिस्त है, लाइन लगी हुई है, एक क्यू बना हुआ है टीम्स का ओवरऑल लीडर बोर्ड के ऊपर, जिनको इस आखिरी मैच का चिकन डिनर हर हालत में चाहिए।
लेकिन ये हर हालत में मिल नहीं सकता, ये आपको अपने जोर बाजू पर लेना है और जोर बाजू पर लेती हुई टीम्स हमें नज़र भी आ रही हैं, जैसे INF ने लिया इस मैच का चिकन डिनर, लेकिन LGD ऑन द अदर हैंड दे वर लुकिंग गुड टू इन दिस मैच। मुझे लग रहा था पहले कि शायद LGD इस मैच का चिकन डिनर ले जाए क्योंकि S2G एलिमिनेट हो गई, लेकिन उसके बाद INF को मैं दाद दूंगा, उनका जो स्प्रेड था, उनकी जो फॉर्मेशन थी, एक प्लेयर जो रिज पर था उसने जिस तरह से 2 प्लेयर्स गिराए और आखिरी फाइनल टच दिया बैक एंड से बैक स्टैप कर वो बहुत बेहतरीन था। 33 पॉइंट्स अभी तक के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं जिस टीम ने चिकन डिनर किया है, 18 एलिमिनेशंस किए हैं। ये PMGC ही है अलादीन क्या? बिल्कुल जी, ये PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप। ये PMGC है या ये पत्तों की ग्लोबल चैंपियनशिप है? मुझे तो PMGC ही लग रहा थी, आपको पत्तों की कुछ ज़्यादा याद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो पत्तों की और आदि का रिलेशन है। ख़वातीन उस्ताद आप खुद ही बताएं ऐसा क्या है कि आदि हर 2 मिनट बाद पत्तों की का नाम लेते हैं। लेकिन चलें बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, जो कि हमारे सामने स्क्रीन से मौजूद है, जिनमें ऑन टॉप हमें नज़र आ रही है LGT गेमिंग, जिनके साथ साथ मतलब सेकंड स्पॉट पे हमें नज़र आ रही है LGT गेमिंग। उनके साथ साथ अगर हम बात करें थर्ड स्पॉट पे S2G मौजूद है। उसके बाद बुरी राम यूनाइटेड स्पोर्ट्स, बिगेट डेलियंस का एवरेज मैच रहता है, ये मैड बुल्स का भी एवरेज मैच रहेगा। लेकिन बुरे मैच की बात करें तो वो टीम क्वेस्टो I8 और DRS का रहता है। I8 अर्ली एग्जिट लेकर जाती है और DRS कहती है कि ऐसे कैसे, आप हमारे भाई हैं, हम साथ ही जाएंगे, हम भी हैं 5 सवारों में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही अलादीन, और ये ज़रूर उन्होंने कहा ज़रूर होगा और उसको साबित भी किया उन्होंने, साथ ही एलिमिनेट होकर। आखिरी मैच अलादीन, क्या कहेंगे आखिरी मैच के बारे में, ख़ास तौर पर AGX I8 के बारे में मुझे बताइए कि क्या समझते हैं, क्या होगा? हाय, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि जो होना है वो बस हो ही जाए। लेकिन आखिरी मैच पर जाने से पहले ख़वातीन औज़ात हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे प्राउड स्पॉन्सर का, एक्सपीरिया, सोनी एक्सपीरिया स्मार्टफोन ऑफिशियल स्पॉन्सर है इस PMGC के। और उनके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पुलमैन कोलालमपुर बंगसर होटल का, जिन्होंने ये जो सारा बेहतरीन सेटअप है ये ऑर्गेनाइज़ किया, ये प्रोवाइड किया प्लेयर्स को। लेकिन ख़वातीन औज़ात ओवरऑल रैंकिंग्स हमारे सामने आती हुई। ओवरऑल रैंकिंग में नीचे से शुरू करेंगे। H8 पर एगॉन XI8 133 पॉइंट्स, टाइटन गेमिंग भी 133 पॉइंट्स, BTR 139 पॉइंट्स। सो ये तीनों टीम्स लगभग 30s के अंदर ही मौजूद हैं, 130s के अंदर ही मौजूद हैं। फिर 152 पॉइंट्स के साथ DRS गेमिंग है। S2G Esports 174 पॉइंट्स के साथ बराजमान है चौथे पायदान पर, और तीसरे पायदान पर जो टीम है उनके पॉइंट्स मैं नहीं देख पाया। लेकिन आगे बढ़ते हैं। निग्मा गैलेक्सी #9 पर अटक चुकी है। निग्मा गैलेक्सी आज के पूरे दिन का आगाज़ उन्होंने तो फर्स्ट पेज से किया था, लेकिन सेकंड पेज पर जब से वो आए हैं #9 से इनको कोई नहीं नीचे उतार पाया अलादीन। बिल्कुल आदि #9 से को नीचे उतार नहीं पाया, लेकिन स्ट्रगल तो किया जा रहा है इनकी तरफ से, ये बात तो वाज़ेह है, ये बात तो बिल्कुल बखूबी वाज़ेह है। लेकिन आदि, डू यू वांट टू सी अ मैजिक? जी चेक दिस। क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसी मैजिकल बॉटल है ये? मैजिकल बॉटल है, सही बात है, इसीलिए गायब रहती है हमेशा। और अगर किसी ब्रांडिंग नजर आ जाती तो मैं भी गायब हो जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खैर ख़वातीन हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी आप लोगों ने जाना नहीं है, अभी एक मैच अभी भी बाकी है, लेकिन अगले मैच से पहले स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करें और I8 को यार सपोर्ट करो, यार उनको सपोर्ट करो। मैं चैट पढ़ रहा हूँ, ऑब्वियसली कुछ ऐसे कमेंट्स भी हैं, डीमोटिवेटिंग होता है यार। आप ये देखोगे निग्मा गैलेक्सी जो पहले दिन #3 पर मौजूद थी वो #9 पर है, उससे बेहतर है कि नहीं हमारी टीम? अभी के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि उससे बेहतर है कि नहीं हमारी टीम? अगर हम #3 को छू के वापस आ गए होते, कितना दुख होता, वो दुख आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन स्टिल हमारी टीम ने कंसिस्टेंसी तो दिखाई है, सेकंड पेज पर नहीं गए। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ ख़वातीन साथ जाएंगे इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, वहां से वापस आते हैं। We'll be right back. Of our day 3, we are joined here with the Infinity, and we welcome on board their coach here alongside for his interview. So could you please introduce yourself to the rest of the world? ช่วยแนะนำตัวเองให้กับทุกคนหน่อยค่ะ ครับชื่อเนียครับ Infinia ครับเป็นโค้ชครับ Hello everyone, his name is Nia and he is the coach of the Infinity. Thank you for joining us for this interview, Nia. And of course, I have a couple of questions for you and the team, where Infinity has come into this event with 3 back-to-back first place finishes in PMPL Thailand, PUBG Mobile Regional Clash, and recently
the championship of Southeast Asia. So there were a lot of high expectations for the team in general. So what do you think of the matches that you guys have been struggling with, and how have you spent your time between the past couple of days to prepare for this tournament? ก็คือว่าตอนนี้ทีมได้รับรางวัลชนะถึง3ครั้งทั้ง PMPL ของประเทศไทยแล้วก็โปรลีกของ C แล้วก็ PMRC ตอนนี้เนี่ยคือทางทีมประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะแล้วก็ในวันที่ 1-3 เนี่ยเรามีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็เล่นแย่กันเองมากกว่าครับเป็นความผิดพลาดของทีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามแก้กันอยู่ครับ they know themselves that they are playing not that good but they will improve And of course, we do see good improvements for Yeah. today, and you guys are still fighting for the tournament. So how have you guys been dealing with the high expectation your fans and yourself are setting for the team? แล้วก็มีวิธีการที่จะแบบว่าต่อสู้กับปัญหาของคนที่ตั้งความคาดหวังสูงกับแฟนๆของเรายังไงบ้างคะก็พยายามทำเต็มที่อยู่ครับก็พยายามแก้อยู่ครับพยายามดูย้อนหลังพยายามแบบทบทวนตัวเองให้เยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำไปด้วยครับThey will try the best and now they are fixing what they miss in the games but anyway he will do the best Yeah, and that's really good to hear. So I really want to ask you this, where there's a lot of great competition here from all the teams that are in Group Red. So what teams have caught you off guard with their strength in PMGC, and could you tell us why? ตอนนี้เราก็มีแบบคนเล่นนะคะเก่งๆเยอะเลยแล้วเราก็คิดว่าทีมไหนที่แบบเป็นตัวเต็งแล้วก็คิดว่าทำไมคิดว่ายังเป็นตัวเองครับที่เป็นตัวเต็งเพราะว่าที่เราแพ้ก็คือแพ้ตัวเราเองอยู่ครับ He said the biggest struggling is themselves and they will fixing it I see. And of course, I really want to know what is the current focus of the team? Is it still on the top 3 placement to the grand finals, or are you guys hoping to get into the survival stage by maintaining a 4th to 11th position? ตอนนี้คาดหวังว่าจะอยู่ในอันดับ 1-3 หรือว่า 4-11 ค่ะ1-3 ครับHe still have the high expectation to be the third place That's great to hear Yeah. because we see today PSG LGD have been able to climb all the way up with those chicken dinners, and I hope that you guys could still make it with a couple more games to go. So is there any words that you want to say to fans all around the world and of course fans back in Thailand? อยากจะพูดอะไรถึงแฟนๆทั่วโลกแล้วก็แฟนๆที่ไทยบ้างคะก็ฝากให้กำลังใจพวกผมครับเพราะผมพยายามจะกลับมาฟอร์มตัวเองให้ได้ครับHe would like all of the global fans and Thai fans should be supporting them. They will do their best to this game. All right, thank you very much. And of course, we'll be continuing on with our final game of the evening. So make sure you guys keep your eyes locked on your screen as we will see who will be the one to get the final chicken dinner of Day 3 in the PUBG Mobile Global Championship League. वेलकम बैक खवातीन और साथ खुशामदीद करेंगे फिर से आप सभी लोगों को आज के दिन के अगले मैचेस के साथ लेकिन let's straight jump towards the top performer of the day of the match of the last match और टॉप परफॉर्मेंस की बात करें 7 एलिमिनेशंस लेकर के INF के प्लेयर और उन्हीं के साथ साथ INF के फेडरल की तरफ से 5 एलिमिनेशंस निकाले गए यहाँ थी बिल्कुल और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं टीम S2G के साइलिस 19 4 एलिमिनेशंस उन्होंने निकाली इस पिछले मैच में 31% उनकी टीम कंट्रीब्यूशन थी सेकंड हाईएस्ट रहेगी इन सारे की प्लेयर्स में से INF के लिल बॉय 4 एलिमिनेशंस और 771 का डैमेज टीम कंट्रीब्यूशन उनकी 30% रहती है और 22% टीम कंट्रीब्यूशन फेडरल की रहती है सो ये एक अच्छा इन्होंने एक दी है परसेंटेज एंड के ऊपर जिससे हमें पता चलता है कि कितनी कंट्रीब्यूशन की है हर एक प्लेयर ने अपनी टीम के लिए पिछले मैच में हेड टू हेड कंपैरिजन आएगा INF के प्लेयर का और ब्रू के किंग्सो के साथ एलिमिनेशंस 7 रही क्योस के पास और 3 एलिमिनेशंस किंग्सो के बैकपैक में रही इस पिछले मैच में हालांकि डैमेज ज़्यादा किंग्सो ने रजिस्टर किया 1028 का लेकिन उसके बरक्स किल सिर्फ 3 ही लेकर जा पाया लादिन बिल्कुल डैमेज ज़्यादा रजिस्टर कर पाते हैं किल्स नहीं निकाल पाते हैं अनफॉर्चुनेटली किल्स निकालने का मौका नहीं दिया जाता इनको लेकिन नेक्स्ट मैचेस की बात करते हैं लास्ट मैच इज़ गोना बी ऑन द मैप ऑफ एरेंगल और एरेंगल की तैयारी तो सब टीम्स ने की हुई है लेकिन आदि आप एक बात कह रहे थे कि जो टीम
थर्ड लास्ट मैच यानी कि जो टीम सेकंड एरेंगल अच्छा खेलती है लास्ट एरेंगल भी उन्हीं का अच्छा होता है। इस हिसाब से तो आप देखें कि ब्रू ने 2 चिकन्स निकाले थे और सेकंड एरेंगल में उनका चिकन था। सो क्या आपको लगता है कि इस बार भी ब्रू ही चिकन लेगी? बिकॉज अभी तक PMGC में एक दिन में 3 चिकन डिनर्स किसी टीम ने नहीं निकाले। आई थिंक सो चिकन ना भी लें लेकिन टॉप 3 के अंदर होंगे अलादीन। मेरा वो बात करने का मकसद यही था कि टॉप 3 आपके लिए खुल जाएगा, आपको इतना मोमेंटम मिल जाएगा, आपको इतना एक ग्राउंड मिल जाएगा, प्ले ग्राउंड मिल जाएगा कि आप टॉप 3 तक आ सकें। लेकिन ब्रू का ये मैच बहुत ही बुरा गया है, यू नो इस चीज़ को भी हमने नहीं भूलना बिल्कुल कि ब्रू का ये मैच इतना अच्छा नहीं गया। उनके काफ़ी जल्दी एलिमिनेशन निकल कर सामने आई है और उनके 3 प्लेयर्स तो शुरू में ही एलिमिनेट हो गए थे। एक प्लेयर ने बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव करने की भी कोशिश की, लेकिन सिंस ये जो मोमेंटम डाउनग्रेड उनका हुआ है, इसके बाद अगले मैच में क्या होता है ब्रू का ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन देखते हैं, ऑब्वियसली सर्कल के ऊपर डिपेंडेंट है सारा कुछ कि सर्कल कहाँ पर एक शिफ्ट लेकर जाता है। तो लेकिन खवातीन और आपसे फिर से एक बार दरख्वास्त करेंगे कि PUBG मोबाइल के ऑफिशियल पेजेस चैनल्स को जब वो जाकर फॉलो जरूर कीजिए। बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि वोटिंग कैसे करनी है, तो आदि इनको ज़रा तरीका बता दें एक बार वोटिंग करने का, जितने भी लोग चैट में मौजूद हैं। दोस्तों वोटिंग का एक होता है टाइम पीरियड होता है, क्योंकि ऑडियंस वोट्स आपको सिर्फ मैच में एक ही दफ़ा दिखाए जाते हैं, वो भी शुरू के 5 मिनट के अंदर अंदर ही दिखाए जाते हैं। सो आपने करना ये है कि इंग्लिश स्ट्रीम के ऊपर जाना है मैच शुरू होने से पहले, और वहाँ पर जाकर जो मेन स्ट्रीम होती है हमेशा उसी के ऊपर वोटिंग की जाती है। ऐसे जो स्टेजेस होते हैं ग्लोबल चैम्पियनशिप के या रीजनल लेवल के, सो आप जाइए इंग्लिश स्ट्रीम के ऊपर, वहाँ पर आप वोट कर सकते हैं। वहाँ पर सारा जो तरीका है कि क्या आपने लिखना है, किस तरह से आपने लिखना है, वो सारा मेंशन होगा वहाँ पर, चार्ट में पिंड होगा। बाकी भी लोग कर रहे होंगे तो आप उन्हीं को देख के छापा भी मार सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं को देखकर छापा मारना, लेकिन ये नहीं कि उन्हीं को देखकर आप अगर, क्योंकि ज़्यादा लोग वैसे तो नेपाल के हैं, तो आप भी वहाँ जाकर DRS लिखाएं। ऑब्वियसली आपको जाकर वहाँ पर जो है वो I8 लिखना है और I8 को जब आपने वोट देना है। तो देखते हैं फिर कि क्या हमारा जो जमे गफ़ीर है यहाँ से जाता है, जमे सग़ीर, सॉरी गफ़ीर तो नहीं, गफ़ीर तो नेपाल में लगा, बिकॉज आई वाज वाचिंग कि 20,000 तक की इनकी वॉचिंग आ रही थी एंड हमने तो अभी तक 10,000 भी क्रॉस नहीं किया आती। सो कितने ज़्यादा उम्मीद है आपका 10,000 क्रॉस होगा और कितने ज़्यादा उदास हैं आप, बिकॉज एक टाइम था जब PMPL हम साउथ एशिया चैम्पियनशिप कर रहे होते थे और वहाँ 12-12, 15-15 हज़ार की वॉचिंग जाती थी। बिल्कुल अलादीन, उम्मीद तो है, मुझे उम्मीद तो है इस रीजन से ऑब्वियसली, लेकिन खैर थोड़ा सा दिल भी अफसरदा होता है जब हमारी वॉचिंग नीचे आती है। मुझे लग रहा था कि इस PMGC में हम सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे, बट नहीं, आई वाज रॉन्ग, आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग। अभी भी है PMGC, आई थिंक सो I8 विल बी क्वालिफाइंग, ऑब्वियसली दे विल बी क्वालिफाइंग। मेरी दुआ है कि यहीं से सीधा वो टॉप 3 में रहकर जाएं। लेकिन मैं एक आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि यार हेट ना करो। ओके आदि, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड। अगर I8 यहाँ से क्वालिफाई नहीं करती, या फिर इस चीज़ को हम छोड़ दें स्ट्रीम के लिए आज के मैचेस के बाद, क्या कहते हैं? आज के मैचेस के बाद हम अलादीन वाइटी पे स्ट्रीम करते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर I8 क्वालिफाई नहीं कर रही तो उसका फ़ायदा क्वालिफाई करने से ज़्यादा कैसे I8 को। काफ़ी लोगों को शायद ये सवाल सुन के समझ आ गई होगी इसका जवाब क्या हो सकता है। आदि मुझे मीचने कुन्नों वाली स्माइल दे रहे हैं आप, मुझे लग रहा है आपको भी पता लग गया कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन हम बात करेंगे, हम उस पर डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल लास्ट मैच की बात करते हैं एंड टीम्स तैयार हो चुके हैं आदि। बिल्कुल, तो आइए चलते हैं, ज़्यादा इंतज़ार आप लोगों का नहीं करवाएंगे। टीम्स तैयार हो चुकी हैं और पिछले मैच का चिकन डिनर इन्फ्लुएंस केमिन ने बहुत ही बेहतरीन एदाद के साथ हासिल किया। हाईएस्ट टोटल पॉइंट्स उन्होंने हासिल किया, खर्च किए इस पिछले मैच में से। अब तक किसी भी टीम ने PMGC में 33 पॉइंट्स के साथ चिकन डिनर नहीं किया। खैर ये जो बीच में बाज आई थी आप लोगों के लिए, इसके लिए आई एम सॉरी ख़वातीन हज़रात। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं और बाकी भी टीम्स तैयार हो रही हैं। ये आपने मैसेज दिया कि आपका मैदा बिल्कुल सही है, ये आपने मैसेज दिया कि आपका मैदा सही काम कर रहा है। मेरा अभी ठीक हुआ है एक्चुअली। आज आप लोगों को फील हो रहा होगा कि उस तरह से मैं इन्फॉर्म नहीं आ पा रहा, लेकिन खैर ख़वातीन हज़रात बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल जी, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट मैच की। BTR के जक्सी आउट हो चुके हैं, लक्सी इन हो चुके हैं। बहुत कम हम देखते हैं कि लक्सी जक्सी का डुओ साथ में ना खेले, पर अब शायद लक्सी और जक्सी ये बात समझ गए कि उनको अपनी टीम के लिए टीम प्ले करना है उनको, और वो इस हिसाब से जब वो प्लेयर्स को चेंज कर रहे हैं प्रोबेबली। और ऐसा भी हो सकता है कि वो वेरिएशंस ट्राई कर रहे हो। लिक्विड को जब लाया गया था लास्ट मैच के अंदर, और अभी जब वो एक और बार प्लेयर चेंज करते हुए, लेकिन लास्ट मैच जो कि खेला जाएगा ऑन द मैप ऑफ एरेंगल इज गोना बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू आदि। और लास्ट मैच की अगर हम बात करें तो ग्रुप रेड का ये 18वां मैच है और सेकेंड डे का आज के दिन का आखिरी मैच। बिल्कुल अलादीन, और इसके बाद इससे
के मैचेस बकाया बाकी हैं और टॉप 3 टॉप #1 तो मेरे ख्याल से आज के दिन ही फाइनल हो सकता है, देखते हैं होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन खैर बाकी जो टॉप 3 हैं, टॉप 2 जो स्पॉट्स हैं वो खुले रहेंगे कल के दिन भी। और कल के दिन जो भसड़ मचने वाली है पहले पेज के ऊपर, हर ही टीम कोशिश करेगी, कुछ टीम्स लड़खड़ाएंगी करके कल के दिन इस सारी चीज़ को चेज़ अप करते हुए। लेकिन खैर प्लेन पाथ ख़वातीन व हज़रात बिल्कुल ईस्टर्न साइड के ऊपर मौजूद है इस मैप के, और शुरू हो रहा है नॉर्दर्न साइड से, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, और ख़त्म हो रहा है साउदर्न साइड पर जाकर बिल्कुल मिलिट्री बेस के ऊपर। इस प्लेन पाथ को मद्देनज़र रखते हुए सर्कल मेरे ख्याल से वेस्टर्न साइड पे बनने वाला है। चलें देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन कितनी सही साबित होती है और कितनी ज़्यादा गलत साबित होती है। मुझे अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि क्या मेटा बना है, नए मेटा के हिसाब से सर्कल जो वो प्रायोरिटाइज किस चीज़ को कर रहा है। बट बिकॉज मैंने 2-3 बार ट्राई किया आदि PMGC में आके सर्कल प्रेडिक्ट करने का, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार बेटा, दिस इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद प्रॉब्ली। लेकिन यहाँ पर सर्कल गाटका और पोचिंकी साइड को जब वो एक शिफ्ट देकर जाता हुआ, और अगर ये सर्कल पोचिंकी की जो हिल्स हैं, यानी कि पोचिंकी हिल 3 हम उसे कहते हैं, अगर ये सर्कल वहाँ ख़त्म होता है या 2 वाली साइड पे ख़त्म होता है, तो तब आई वुड से कि मैं ज़्यादा हैरान नहीं होऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्कल वहीं ख़त्म होना चाहिए। लेकिन बात करते हैं INF की, लास्ट मैच बेहतरीन खेल खेला गया और अपनी लीड जो उसे कवर करते हुए नज़र आते हैं, BSU की लीड से कवर करते हुए नज़र आते हैं, और अब 7 ही पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया आती। बिल्कुल, लेकिन अलादीन एक चीज़ है कि रेपिटेटिवनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है सर्कल के अंदर। गाटका के सर्कल्स हमने पहले भी देखे हैं और वो ख़त्म ज़्यादातर इसी साइड पे हुए हैं, गाटका साइड पे हुए हैं। या आपको वो कंपाउंड्स याद हैं जहाँ पर रहते हुए बॉक्स ने चिकन डिनर किया था मेरे ख्याल से? यस आई रिमेंबर दोस्त कॉम्पाउंड। पोचिंकी के जो कह लें कि पोचिंकी से गाटका के दरमियान सेंट्रलाइज एरिया पे जो कॉम्पाउंड है, जो एक स्क्वाड हाउस है, वहाँ की आप बात कर रहे हैं। स्क्वाड हाउस नहीं कहेंगे, ऐसे वेयर हाउस ही कहेंगे, जो कि डबल स्टोरी कॉम्पाउंड, जो रिज के बिल्कुल नीचे कंपाउंड, डबल स्टोरी कॉम्पाउंड। यस तो वहाँ पर उसके पीछे जो हिल है, मुझे लग रहा है कि वहाँ सर्कल फिनिश हो सकता थी। यस एग्जैक्टली। और ये सारी बात करने का मकसद मेरा ये था कि उस मैच के अंदर i8 की रोटेशन बड़ी कमाल थी, बहुत ही टाइमली रोटेट किया था टीम i8 ने, और इस मैच के अंदर भी वैसे ही कुछ एक बना दिया जा चुके हैं, सूरत हाल बनाई गई है सर्कल की तरफ से। सो अगर अर्ली रोटेट करती है i8 और फ़ायदा उठाती है सर्कल के शिफ्ट का, क्योंकि ज़्यादातर लॉबी जो खेल रही है वो ईस्टर्न साइड पे खेल रही है। मैप के मिड से शुरू होती है, ईस्टर्न साइड के ऊपर जैसे जैसे आप जाएँ तो लॉबी का स्प्रेड उस तरफ ज़्यादा है, टीम्स वहीं पर लूट कर रही होती हैं। चंद एक टीम्स हैं जो कि वेस्टर्न साइड को प्रेफर करती हैं, लेकिन ये जो मेटा है इसकी वजह से थोड़ा बहुत टीम्स वेस्टर्न साइड के ऊपर आना अब शुरू हो गई हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या ये मेटा आने वाले इवेंट्स में भी यूज़ किया जाएगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर इस मेटा पर प्रैक्टिस करनी है, जोन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टीम्स मुश्किलात में फंस भी रही हैं, हालांकि आसान है ये वाला मेटा पिछले मेटा से काफ़ी आसान है, इसमें रैंडमनेस कम है, और जिस मेटा के अंदर रैंडमनेस कम हो उसको आप चेज़ कर सकते हो। लेकिन खैर फिर भी टीम्स मुश्किलात से 2-4 हो रही हैं, उसका यही हल है कि जब ये प्रैक्टिस करेंगे इस PMGC के बाद, अगर तो ये मेटा आया नॉर्मली क्लासिक गेम्स में, क्लासिक में तो नहीं आएगा लेकिन कॉम्पिटिटिव में आया, तो फिर शायद सूरत हाल अगले PMGC में मज़ीद कुछ बेहतर होती हुई हमें नज़र आएगी। लेकिन अभी भी खैर PMGC का सफ़र बहुत ज़्यादा बाकी है, अभी हमने मज़ीद 2 ग्रुप्स को भी देखना है, और वहाँ पर तो नेक्स्ट लेवल एक्शन है। जो नेक्स्ट ग्रुप आ रहा है वो बहुत ही तगड़ा ग्रुप है, सबसे ज़्यादा तगड़ा वो ग्रुप है। अगर इस ग्रुप में इतना कंपटीशन है, हालांकि ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, तो उस ग्रुप में कितना कंपटीशन होने वाला है, क्या सूरत हाल बनेगी, ये तो दीदनी लायक होने वाली है। लेकिन LGD अभी के लिए सर्कल को मद्देनज़र रखते हुए वो अपने ड्रॉप लोकेशन तक आ चुके हैं, यहीं पर ये लोग ओरिजिनली लूट करते हैं, और इसके बाद सर्कल के अंदर एक अच्छी जगह भी बना पाएंगे अपने लिए। बिल्कुल जी, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कुछ निम्न रोटेशंस चल रही हैं हल्की फुल्की, और कुछ टीम्स कोशिश कर रही हैं कि वो अपने लूट स्पॉट्स की तरफ जाएं, और कुछ टीम्स की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो थोड़ा सा सर्कल के अंदर जाकर कोशिश करें लूट करने की। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपका ड्रॉप स्पॉट काफ़ी दूर होता है और आपको फ्लाइट पाथ कॉम्प्लीमेंट नहीं करता उस तरह से, आपको फ्लाइट पाथ से ड्रॉप स्पॉट तक जाने के लिए जो है कि लंबा रास्ता लेना पड़ता है, तो फिर आप यही सोचते हैं कि लेट्स ट्वीक अ बेट ट्वीक योर लूट पाथ, क्या कहते हैं उसे, लूट
एरिया अबेट और थोड़ा सा यहाँ पे जब डिफरेंट साइड पर जाकर वहाँ से लूट कर लेते हैं, लेकिन अभी मेरे ख्याल से 8वें-9वें मिनट तक 10वें मिनट तक कोई फाइट होगी नहीं। लास्ट मैच है, इस मैच में मैं बिल्कुल भी कोई भी नाम नहीं लूँगा कि सेकंड ने किसने निकालना। मैं हर तरह की जो सिमिलर जो क्या बोलते हैं आदि, वो जो क्या बोलेंगे पेशेंट गोइयां वाला नहीं, पेशेंट यार मैं कहने लगा था कि आप कुछ और बोले लगे थे, मैंने आपको रोक लिया। लेकिन वो सुन के, लेकिन आपके मुँह पानी जरूर आ जाता, ये बात माने आप। नहीं, मैंने खाना खा लिया पहले ही मैंने। हाँ, तो खाना खाने के बाद आप वैसे भी हंसने के लिए कुछ ना कुछ पक्की जो चूस लेते हैं। लेकिन चले ख़वातीन और हज़रात, बात करते हैं लास्ट मैच की, जो कि इस वक्त हमारे सामने चल रहा है। INF कम बैक तो दिखा दिया, पर मैं चाहता हूँ कि INF और BRU इस मैच में जल्दी एलिमिनेट हो जाए। आती सेम अलादीन, मैं यही बात कहने वाला था। इसके बाद मैं देख रहा था लीडर बोर्ड को जो कि साइड पर मौजूद है, और मैं देख रहा था यार 228 पॉइंट्स लेकर चली गई हैं टीम्स, और अभी कुछ टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने 100 पॉइंट्स भी नहीं किए, कुछ टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी पिछले मैच के बाद 100 का जो है वो क्रॉस किया मार्कर। सो लगभग 130 पॉइंट्स की लीड है इन्फिनिटी के अगेंस्ट टीम BRU की। सो खैर मैं भी यही चाहता हूँ कि ब्रू और इन्फिनिटी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको इस मैच में एलिमिनेशन का, लेकिन बाकी लॉबी के अंदर एक उम्मीद की किरण जो है वो जाग जाएगी। आदि इमेजिन ब्रू वर्सेस INF हो जाए, और एक टीम दूसरी टीम के 4 बंदे मारते और एक 3 बंदे मारते, और आखिर में एक बंदे को एक अगोनिक साइड आके मारते। बिल्कुल, और फिर उसके अगले मैच में ये दोनों ही टीम्स एगोन एक्साइड को टारगेट कर रही होंगी। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देना चाहते। सो एगोन नहीं, बल्कि उससे कोई और मार दे यार। मैं चाहता था 1 किल पॉइंट भी मिल जाए मेरी इमेजिनेशन से टीम एगोन एक्साइड को, लेकिन चलें इसलिए S2G की बात करते हैं जो कि रोटेशन कर रहे हैं। और S2G क्या ज़बरदस्त खेल खेलती है भाई। मैड बुल्स S2G एक ही जगह से आई हुई 2 टीम्स हैं, 2 अलग नाम है, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए आप। मैड बुल्स कहाँ मौजूद है, S2G को देखिए आप, वो एक मैच दूर है सिर्फ टॉप 3 से, लेकिन साइलस उनकी बगी फंस जाती है। वो बगी से उतर के बगी को गन दिखा कर डराते हैं कि बाहर निकल, नहीं तो मैं फायर खोल देना, और बगी डर के बाहर निकल आती है। रिव्यूज़ बताएं। बिल्कुल ये मुझे कुछ फील आ रही है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की इनमें से, लेकिन खैर टीम INF के प्लेयर उन्होंने नॉक निकाले हैं। 2 प्लेयर्स को गिरा दिया जा चुका है टीम TQ के, और गाड़ी से उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अलादीन। बिल्कुल जी, यहाँ इस टीम की तरफ से क्या कहते हैं, डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस पहुंचाई जा रही है। दरवाजे पर जाकर जो है वो गाड़ी से होते दस्तक देते हैं, जो भी बाहर निकलता है उसको कहा जाता है कि उसको फ़ौरन से एलिमिनेट किया जाता है। लेकिन DRS इस वक्त हमारे सामने मौजूद है, सामने से टीम टाइटन्स रोटेट कर रही है, एंड एगोनिक साइड व्हीकल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से 4 प्लेयर्स को अलग अलग गाड़ी में से वो बिठाया गया, और मिलिट्री बेस से व्हीकल्स इकट्ठे करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स आपको मिलते ही नहीं, आपको मेन आइलैंड पर आकर गाड़ियाँ लेनी पड़ती हैं। आई बिलीव I8 ने भी यही किया, लेकिन जिन कॉम्पाउंड्स पर मौजूद है यहाँ I8 के प्लेयर्स तो यहाँ पर अच्छा होल्ड बना लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन एरियाज़ पर गाड़ियाँ नहीं बचती आपकी, व्हीकल्स नहीं बचते आपके। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं व्हीकल्स, लेकिन अच्छा लगा मुझे कि इनिशियल्स में रोटेट कर लिया। अगर थोड़ा सा भी लेट होते तो आपको टीम्स आ रही हैं नज़र आती हुई कि जो इस सारे स्पॉट को होल्ड करना चाहती थी। टीम बात की जाए इन्फिनिटी, DRS, टाइटन, दे आर वन ऑफ देम जो कि अब रोटेट कर रहे हैं। सो अगर I8 5 से 6 सेकेंड्स भी लेट हो जाती यहाँ पर तो फिर शायद वो ये स्पॉट ना होल्ड कर पाते। अभी भी सर्कल के वेस्टर्न साइड के ऊपर काफ़ी खासी जगह खाली है, वैकेंसीज़ मौजूद हैं सर्कल के अंदर, इतनी जगह है अभी कि टीम्स अपने आप को रीएडजस्ट कर सकें सर्कल के अंदर। लेकिन निग्मा गैलेक्सी, इनको मैं देखना चाहता हूँ, आखिरी मैच है, दे कैन कम बैक टू द फर्स्ट पेज, लेकिन इस आखिरी मैच के अंदर उनको बहुत ही ज़बरदस्त किल्स के साथ एक अच्छा चिकन चाहिए होगा। बिल्कुल जी, उनको बहुत ज़बरदस्त किल्स, एटलीस्ट 15 से 20 किल्स निकालने पड़ेंगे, तब भी वो जाकर शायद I8 के बराबर ही आ पाएँ, बिकॉज I8 तब तक काफ़ी पॉइंट्स ले जाएगी। लेकिन निग्मा गैलेक्सी की हमूदी को हम देख रहे हैं, अच्छा ट्रेसिंग की जाती है इनकी तरफ से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं होते किसी भी तरह की आउटपुट निकालने में। मगर एक चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर रही है, और वो ये है कि टीम्स अवॉइड कर रही हैं लास्ट मैच में फाइट्स। हालांकि लास्ट मैच में आपको पता है क्या रही, आदि कुछ हम कह लो कि गैर संजीदा रशेस भी देखते हैं कुछ टीम्स की तरफ से, बिना सोचे समझे स्लैमेंस भी दिए जाते हैं, बट अभी तक 10 मिनट हो चुके हैं और किसी भी इसी टीम ने ऐसा नहीं किया। लेकिन RD वो यहाँ पर BTR के ऊपर नॉक्स निकालते हुए किल फील्ड में नजर आती है। जेन फॉस्टर को एलिमिनेट किया जाता है। जेन फॉस्टर BTR की जब भी फाइट होती है सबसे पहले जो प्लेयर एलिमिनेट होते हैं वो जेन फॉस्टर ही होते हैं, या तो मुझे ऐसा लग रहा है आदि, या फिर वाकई ऐसा है।
वाकई ही ऐसा है अलादीन, आपको ऐसा लग नहीं रहा, वो वाकई ही ऐसा है जैसा कि आपने मेंशन किया। लेकिन BRU के प्लेयर्स जिस तरह से स्लामिन इन्होंने किया है, LGD के एक प्लेयर को तो इन्होंने नॉक किया, दूसरे प्लेयर BRU के काफ़ी ज़्यादा लोन HP हैं, लेकिन LGD यहाँ पर ओवर एग्रेसिव नहीं होना। लेकिन खैर आ चुकी है कैवलरी, पीछे से बैकअप देने के लिए प्लेयर्स आ चुके हैं, नेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्री नेट भी थ्रो करते हैं लेकिन रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। टीम LGD ऑन द अदर हैंड अपना एक प्लेयर गवा चुकी है, दूसरा प्लेयर नॉकडाउन है। BRU भी अपना एक प्लेयर गवा चुकी है, लेकिन MVM अकेले ही आ जाते हैं। यही अगर रश YG के साथ किया जाता तो शायद मेरे ख्याल से 1 से 2 प्लेयर्स को ये गिरा पाते, लेकिन LGD के लिए मामलात BRU ने काफ़ी हद तक काफ़ी खास से ख़राब कर दिए हैं। BRU बीइंग ऑन द फर्स्ट स्पॉट, वो अपने नीचे जितनी भी टीम्स मौजूद हैं उन सब का पत्ता साफ कर रहे हैं, खासकर टॉप 5 के अंदर जितनी टीम्स हैं वो सबको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। LGD उस फहरिस्त में पहली टीम रही जो कि एलिमिनेट हुई इस मैच में। अब अगला शिकार BRU का कौन सी टीम होगी ये देखना भी बाकी है। लेकिन मैड बुल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी दे आर 3 मैन स्ट्रॉन्ग, एक प्लेयर अपना गवा ही चुके हैं, इफेक्ट इस मैच से एलिमिनेट हो चुके हैं। EM टेक बैक एंड पर है, EM टेक भी बिल्कुल इनके साथ ही है लीडर बोर्ड के ऊपर मौजूद। और इनकी एक चीज़ है कि इनिशियल्स में फ़ाइट बहुत जल्दी ली जाती है, इन दोनों ही टीम्स की तरफ से बहुत जल्दी फाइट लेते हैं, फाइट लेने में बहुत जल्दी करते हैं। फाइट के अंदर जो कहते हैं ना एक चीज़ होती है आइस ब्रेकर, वो सबसे पहले इंगेज ही इनकी तरफ से की जाती है कि फ़ाइट का आगाज़, जंग का आगाज़ ऐलान ही इनकी तरफ से किया जाता है कि अब हम आ गए हैं फ़ाइट लेने, अब हमसे फ़ाइट लो, और उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल सर्कल को आपने देखा, सर्कल सेंट्रलाइज्ड एक और शिफ्ट लेकर गया है मज़ीद, और एगॉनिक्स I8 सर्कल के साउथ ईस्टर्न साइड के ऊपर मौजूद है, सर्कल के एज पर हैं, बाहर हैं थोड़ा सा, सर्कल के अंदर तो आ पाएंगे। लेकिन मज़ीद अगर अगला शिफ्ट सेंट्रलाइज होता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगला शिफ्ट अगर हार्ड शिफ्ट होता है फिर थोड़ी बहुत शायद मुश्किलात का सामना करना पड़े उन सारी ही टीम्स को जो एजिस के ऊपर मौजूद है। बिल्कुल, लेकिन अभी हमारे सामने कुछ फाइट्स हुई ज़रूर, लेकिन किल फीड को देखें वो रुक चुकी है। बिकॉज टीम्स पहली फाइट में जब भी जाती हैं तो उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि इंस्टेंट जो है वो इंगेज ना किया जाए। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, नॉक निकालने की कोशिश की गई। अगर कोई इस्लामिन की ज़रूरत है, जैसे कि टीम LGD के ऊपर टीम BRU ने किया, इस तरह के हालात है तो इस्लामिन दिए जाए, लेकिन उसमें भी आप रिस्क तभी ले सकते हैं जब आप टेबल में टॉप पे मौजूद हो। बिकॉज आप देखें BRU ने 3 किल्स तो निकाल लिए, बट वो अपना एक प्लेयर गवा चुके हैं। और अगर LGD के बाकी प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद होते, एक प्लेयर जो LGD के बाकी YZZ जो थे वो अगर वहाँ पे मौजूद होते तो शायद ये 2 से ज़ायद किल्स का भी नुकसान टीम BRU को, पॉइंट्स का भी नुकसान यहाँ पे BRU को, प्लेयर्स का भी नुकसान BRU को यहाँ पे दे सकती थी। लेकिन चले, BRU स्टैंडिंग विद 3 मैन अप, लेकिन वहीं पर I8 को हम देख रहे हैं, तो हमारे सामने मौजूद देंगे। I8 वर्सेस मैड बुल भी हो सकता है, लेकिन I8 की जो रोटेशन है काफ़ी बेहतरीन है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनको सर्कल में जाना पड़ेगा, बिकॉज जहाँ पे वो इस वक्त मौजूद है एजेस पर तो हैं, लेकिन सर्कल के सेंट्रलाइज शिफ्ट उनको मजबूर करेंगे इस एज को छोड़कर फिर से सेंटर में जाने के लिए। बिल्कुल अलादीन, यही बात है कि जो भी टीम्स मौजूद हैं जिस पे सर्कल के, उनको अब मूव करना पड़ेगा सर्कल के अंदर आगे जाकर। BTR भी कोशिश कर रही है कि फर्दर थोड़ा सा डीप जाया जाए सर्कल के अंदर। टीम R8 के एक आधे प्लेयर वहाँ मौजूद थे और उन्होंने DP से टैग्स भी दे रहे हैं। BTR के प्लेयर बच जाते हैं अभी के लिए। BTR के प्लेयर्स हमने थोड़े जब इस मैच से पहले उनके कैम्स देखे थे तो उनके तासुरात काफ़ी हैरानकुन मुझे लगे कि वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी इस सारी परफॉर्मेंस को लेकर। इनिशियल्स में इस मैच में भी BTR ने अपने IGL को गवा दिया, जिन्होंने रिसेंटली इसी साल ज्वाइन किया था 2022 में, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ उनका नाम मिजरी है, मिजरी 666। नए IGL है, नए में इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी इसी साल उन्होंने ज्वाइन किया है 2022 में। जेन फॉस्टर तो चले खेलते हुए आ रहे हैं, लिक्विड और जक्सी को तो हम जानते ही हैं, लक्सी को हम जानते ही हैं। आप मेंशन भी कर रहे थे कि जक्सी नहीं खेल रहे इस दफ़ा, सो लिक्विड को लाया गया है उनकी जगह। सो 2 प्लेयर्स के साथ साथ BTR एग्रेशन तो उस तरह से नहीं दिखा सकती जिस तरह ये इन्होंने पिछले मैच में एग्रेशंस दिखाए हैं। आज के दिन के आगाज़ के मैचेस के अंदर बहुत अच्छा इन्होंने खेला है, अच्छी कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है। सो BTR जाते जाते अपनी कश्ती तो उन्होंने अपनी डुबा दी है, लेकिन अब मज़ीद इसको नहीं डुबाना चाहिए। मेरे ख्याल से फ़ाइट से अब जितना दूर ये रह सकते हैं उतना इनको रहना चाहिए। ज़्यादा क्रॉसेस के अंदर अगर ना आए तो बेहतर है। सर्कल शिफ्ट लेकर गया है टीम एगॉनिक्स I8, साउदर्न एज से रोटेट कर वेस्टर्न साइड के ऊपर आई थी। आई थिंक सो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि शायद हार्ड शिफ्ट जाएगा वेस्टर्न साइड के ऊपर, हॉस्पिटल साइड के ऊपर, लेकिन सर्कल फिर से एक सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट लेकर जाता है। फ़ायदा पहुंचा है, हर ही टीम को फ़ायदा पहुंचा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार ख़ास इसी टीम को इसका फ़ायदा पहुंचा है, हर टीम को फ़ायदा पहुंचता है सेंट्रलाइज्ड शिफ्ट का।
लेकिन इन्फिनिटी के प्लेयर्स के किल्स पिक ऑफ किए जा सकते हैं। एगोनिक्स i8 उज़म भी रवानगी इख्तियार कर रहे हैं। ब्लेड बिल्कुल सामने मौजूद है, रिज पर रुकते हैं, ब्लेड गाड़ी से उतरते हैं, M416 के क्रॉस एयर से खोले जाते हैं। रेड डॉट का इस्तेमाल करते हुए इन्फिनिटी के 1 से 2 प्लेयर्स को स्पॉट डाउन किया, टैग भी किया, लेकिन बैक एंड से टीम टाइटन के प्लेयर नॉक करते हैं टीम एगोनिक्स i8 के प्लेयर्स को। इन्फिनिटी हत्ते चढ़ जाती है टीम मैड के और मंकी 2 प्लेयर्स को गिराते हैं। इन्फिनिटी के अभी भी 2 प्लेयर स्मोक्स का इस्तेमाल कर वर्चुअल कवर डिप्लॉय करना चाहते हैं और सरवाइव करवाने की कोशिश की जाएगी अपने उन प्लेयर्स को जो कि नॉक हो चुके हैं। लेकिन मैड बुल्स बैक एंड से भी उनको कुछ थर्ड पार्टी फायर्स का सामना करना पड़ रहा है। एगोनिक्स i8 भी जूझती हुई एक फाइट के अंदर। बिल्कुल से एगोनिक्स i8 भी फाइट में जूझ रही है बिकॉज उनको रोटेशन के लिए फाइट लेना ज़रूरी थी, लेकिन टाइटन के साथ इस वक्त उनको इस फाइट में अगर हम बात करें तो नॉक्स का सामना करना अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा ज़रूर है। 2 नॉक्स उनके हो चुके हैं और दोनों किल्स से कंफर्म किए जाते हैं, लेकिन वहीं पर वो भी टाइटन के ऊपर एक नॉक निकालेंगे। टाइटन्स जहाँ पर रोटेशन करके सर्कल के करीब आ चुके हैं। एगोनिक्स i8 इस वक्त डिप में मौजूद हैं, गोस्ट के ऊपर क्रॉसर बनाने की कोशिश कर सकते हैं इस वक्त टाइटन के P6, लेकिन वहीं पर टीम एगोनिक्स i8 के गोस्ट EMT के मुंह में चले जाते हैं, मौत के मुंह में चले जाते हैं। मैं कहना चाह रहा था EMT के करीब चले जाएंगे और मौत के मुंह में चले जाएंगे, लेकिन मैंने EMT के मुंह में भेज दिया उनको और गोस्ट इस वक्त वापस आते हुए IQ को एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। लेकिन P6 इस मेक श्योर कि वो ये किल कंफर्म करें क्योंकि हाइट का एडवांटेज उनको काफ़ी बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है। बिल्कुल, और मजीद फाइट आगे बढ़ती हुई टीम INF के प्लेयर ने 2 से 3 प्लेयर गिरा दिए हैं। टीम S2G के साइलेस आखिरी प्लेयर थे और वो भी जाते जाते कोशिश उन्होंने ज़रूर की, जाते जाते उन्होंने एक अच्छा सा नारा भी लगाया होगा, आखिरी प्लेयर थे, लेकिन खैर INF ने अच्छे तरीके से बाखूबी के साथ उस रिज का कंट्रोल संभाल लिया है, जैसे लीडर बोर्ड का कंट्रोल वो संभालने जा रहे हैं थोड़ी देर में। सेकंड स्पॉट पर अभी मौजूद है, सिर्फ 7 ही पॉइंट्स का डिफरेंस है। फर्स्ट स्पॉट पर वो वापस चले जाएंगे। ब्रू को मैं देखना चाहता हूँ, ब्रू किस जगह पर मौजूद है। हम थोड़ी देर पहले यही जिक्र कर रहे थे कि ब्रू और INF की हम फाइट देखना चाहते हैं, तो ब्रू काफ़ी देर से ओके दैट वो हैं पीछे करके ब्रू मौजूद हैं और मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर देगी। काश मैं कुछ और मांग लेता अपनी ज़िंदगी में, लेकिन NGX के हमूदी काफ़ी एक अरसे बाद मैंने देखा है कि उन्होंने कोई नॉक निकाला है, किल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। 4 राइवल्स वर्सेस LGD एक दफ़ा फिर से इस मैच में चलता हुआ। बिल्कुल जी, 4 आवर्स उससे LGD पर फिर से मैच में चलता हुआ, लेकिन EMT के क्रॉसेस और DRS पर बने हुए हैं। DRS फॉर्चुनेटली दे हैव 3 men इंटैक्ट, लेकिन एक तरफ ना गवाया गया उनकी तरफ से। लेकिन वहीं पर IQ आखिरी प्लेयर के ऊपर मोलोटॉव्स, ग्रेनेड्स, स्मोक्स सब कुछ फेंका जाएगा। IQ जाते जाते एक नॉक तो निकाल जाते हैं, लेकिन टीम टाइटन्स एक और किल कंफर्म करते हुए i8 के ऊपर 4 किल्स कंफर्म करते हुए टीम i8 विदाउट गेटिंग अ सिंगल पॉइंट इस मैच से चली जाती है। और टीम मीनवाइल INF की बात करें, हाइट पर मौजूद हैं और हाइट का एडवांटेज बहुत बेहतरीन तरीके से कैश कर सकते हैं, किल्स उठा सकते हैं। सर्वाइवल भी उनका काफ़ी देर तक मुमकिन रहेगा, लेकिन उसके लिए सर्कल का यहाँ आना ज़रूरी रहेगा। लेकिन सर्कल यहाँ नहीं आता। PTR INF दे हैव टू मूव इनसाइड द सर्कल। वहीं पर R8 जो कि डिप में मौजूद है, उनको भी सर्कल में जाना पड़ेगा। लेकिन ये फाइट अगर प्रोलॉन्ग होती है किसी भी टीम के लिए ये चीज़ ठीक नहीं रहेगी, बिकॉज 4 राइवल इज वेटिंग फॉर यू गाइस टू कम इनसाइड द सर्कल। 4 राइवल्स वहाँ पर आप किल से किल करेगी जरूर। लेकिन फिलहाल EMT की बात करें, फॉर्चुनेटली एक वाहिद अच्छा मैच उनके लिए भी निकल रहा है आज के दिन, जहाँ TQ का पहला मैच गया था, लास्ट मैच EMT के लिए बेहतर निकलता हुआ। बिल्कुल, और EMT को खैर अभी भी काफ़ी लंबा एक सफ़र बाकी है इस मैच का। सिर्फ अभी हमें 18 ही मिनट हुए हैं, 10 मिनट का लगभग गेम प्ले अभी भी बाकी है। और EM टेक के साथ साथ 11 टीम्स और भी मौजूद हैं सारी लॉबी के अंदर, तो इस चीज़ को हमें मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, इस चीज़ को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन INF ऑन द अदर हैंड 9 किल्स की स्ट्रीक पर वो जा चुके हैं। क्या फिर से 33 किल्स चिकन डिनर आ रहा है? 33 किल्स नहीं, 33 पॉइंट्स चिकन डिनर आ रहा है। और किल्स पिछले मैच में इन्होंने 18 किए थे। 18 किल्स करना कोई आम बात और कोई आसान बात नहीं रहती। लेकिन TQ वही बात है कि अपने 2 प्लेयर्स के ऊपर आ रही है कैरी होती हुई, और ये 2 प्लेयर्स रियास हैं और एक इनके साथ अयाला मौजूद रहते हैं। इन दोनों के अलावा अगर ये दोनों इनिशियल्स में एलिमिनेट हो जाएं या कभी भी एलिमिनेट हो जाए तो ये टीम सर्वाइव ही नहीं कर पाती। लेकिन टाइटन गेमिंग के प्लेयर फंसते हुए ड्यूरिंग द रोटेशन सरप्राइज उनको किया गया। टीम EM टेक के एमन की तरफ से 2 प्लेयर्स को गिराने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन तीसरे प्लेयर का सामना वो नहीं कर पाएंगे। टीक की तरफ से उनका किल कंफर्म किया जाएगा। TC यहां पर आएंगे, स्लैम इन दिया जाएगा TC की तरफ से और द फाइनल ब्लो लैंड करेंगे और टीम टाइटन्स को इस मैच से बाहर कर दिया है। हालांकि 5 किल्स लिए थे टाइटन ने, आगाज अच्छा किया था, लेकिन रोटेशंस पर आकर फंस जाते हैं। और EMT जिनकी अभी हम बात भी कर रहे थे, 6 किल्स 3 से 6 किल्स वो लेकर जा चुके हैं।
बिल्कुल जी, इस वक्त के लिए किल्स की अगर बात करें तो EMT के पास 6 किल्स मौजूद हैं, 3 से 6 नहीं आती बल्कि 6 ही किल्स मौजूद हैं और 6 से 9 करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पूरी लॉबी में अगर हाईएस्ट किल्स की बात करें तो लुक एट द नंबर ऑफ किल्स ऑफ INF आदि। INF के किल्स देखें आप, 10 किल्स वो अभी कर चुके हैं जब 10 टीम्स और 31-32 प्लेयर्स जिंदा हैं आदि। INF इस मैच में 20 किल्स करने वाली है। अल्लाह खैर ही करे अलादीन। मैं अब और क्या ही कह सकता हूँ इस बात के ऊपर। अगर आए बैक टू बैक 18 किल्स या 15 किल्स भी चलें अगर वो इस मैच में कर लेते हैं तो ये मोमेंटम कल के दिन बड़ा भारी पड़ने वाला है ब्रू के ऊपर, LGD के ऊपर, S2G के ऊपर, क्योंकि यही कुछ टीम्स हैं जो कि कॉन्टेस्ट कर रही हैं अभी के लिए फर्स्ट स्पॉट को। सो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। फ़िलहाल 2 एलिमिनेशंस लेने के बाद #10 के ऊपर एक और मज़ीद टीम इस मैच से एलिमिनेट होती हुई, और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे। 9 टीम्स आखिरी सर्वाइव कर रही हैं और इन 9 टीम्स में से एक ही टीम ने चिकन डिनर लेकर जाना है। INF के लॉ ब्रू के किंग्सों को एलिमिनेट करते हुए फाइनली वो फाइट, वो दोनों टीम्स एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं जो कि लीडर बोर्ड के ऊपर #1 और #2 पर मौजूद हैं। ब्रू के टाइगर और इनके साथ साथ एक ही प्लेयर स्काई ओनली अब सर्वाइव कर रहे हैं। ये बड़ी मशहूर रिज है, ये बहुत ही मशहूर रिज है। बहुत देर तक यहाँ पर टीम्स को मैंने सर्वाइव करते हुए देखा है इस छोटी सी रोड साइड ब्रिज के ऊपर, लेकिन आगे रिज है जो इसके सामने, जहां पर मुमकिन तौर पर INF अगर होती तो टीम ब्रू इस मैच से एलिमिनेट हो सकती थी। लेकिन मैड्स के बिल्कुल पीछे एक और टीम मौजूद है EM टेक के नाम से, जो कि कोशिश जरूर करें सर्कल के अंदर अपने जगह बनाने की, लेकिन सर्कल सेंट्रलाइज्ड एक हार्डशिप नहीं कहूंगा, हार्डशिप और सेंट्रलाइज दोनों का एक मिक्सचर है ये, और सर्कल DRS को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। ऑडियंस की जो प्रेडिक्शन हम देखते हुए आ रहे थे पिछले 2 मैचेस से, कहीं वो सच साबित हो रही है अलादीन। बिल्कुल जी, प्रेडिक्शन सही साबित हो जरूर रही है, लेकिन फिलहाल ब्रू 2 प्लेयर्स अपने गवा चुकी है, 4 एलिमिनेशंस उनके पास मौजूद हैं। INF 11 एलिमिनेशंस अपने बैकपैक में लेके जा चुके हैं। इन्फिनिटी कम बैक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब मैं ये बात कहता हूँ इन्फिनिटी फौरन धत तरीके फौरन एलिमिनेट हो जाती है। लेकिन इस बार इन्फिनिटी के मला वो कहते हैं कि नहीं, इस बार हम किल्स कंफर्म करने के लिए किल्स कंफर्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, वहीं पर INF के प्लेयर डाउन होते हुए निग्मा गैलेक्सी के हाथों। निग्मा गैलेक्सी ये मैच अच्छा निकालना चाहते हैं और अभी तक निग्मा गैलेक्सी एक भी फाइट आज के दिन नहीं जीती, पर क्या वो जीते हैं फाइट ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स निकाले हुए हैं। और आज के दिन के मैचेस में ये देखना भी ज़रूरी है। लेकिन फरहान निग्मा गैलेक्सी होते DRS के ऊपर स्प्रे से नजर आएंगे। DRS के प्लेयर्स ओपन में मौजूद है, बट अब उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि यहाँ से भी उनको डैमेज पड़ सकता है। अब वो दोनों साइड से केयरफुल रहेंगे। लेकिन सर्कल की बात करें, वो DRS के पास मौजूद है और DRS को ये चीज़ टॉप 3 में ला सकती है आदि। DRS मेरे ख्याल से हाँ आ सकती है टॉप 3 के अंदर। DRS अभी 5वें पायदान पर हैं और #4 #3 पर रहने वाली दोनों ही टीम्स एलिमिनेट हो गए। लेकिन लॉ ये क्या किया आई थिंक सो उनके प्लेयर ने जैसे गाड़ी से उनको पुश बैक किया है, उसका काफ़ी फ़ायदा उनको पहुंचा और उन्होंने सीधा 180 डिग्री मारा है वहाँ पर अपनी AR का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन NGX के हमूदी DRS के प्लेयर को नॉक करते हुए खुद भी उनके एक और प्लेयर मजीद नॉक हो जाएंगे। NGX का ये रुत काफ़ी देर बाद मुझे देखने को मिला है, जहाँ पर वो स्लैम्स इन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सारे सिलसिले के अंदर वो अपने 2 प्लेयर्स को गवा चुके हैं। डेल्टा मौजूद है, स्पॉट डाउन करते हैं। लॉर्ड को इस तरह से नहीं आना चाहिए था, ब्लास्ट होता है और टीम निग्मा गैलेक्सी इस मैच से फिर से एक ही झटके के अंदर बाहर कर दी जाती है। DRS जो कि प्रॉमिसिंग लग रहे थे चिकन डिनर के लिए, उनके 2 प्लेयर्स घुटनों पर आ चुके हैं। एक प्लेयर अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। इन्फिनिटी के प्लेयर जिनको ये मैच अच्छे तरीके से चाहिए, 105 पॉइंट्स उनके पास अभी मौजूद है। इस मैच के 15 पॉइंट्स उनको लेकर ही जाने हैं अपने लिए अगर वो पहले पेज के ऊपर आना चाहते हैं। निग्मा गैलेक्सी को टेक ओवर कर लिया जाएगा इन्फिनिटी की तरफ से इस मैच के बाद, अगर वो थोड़ी देर और मजीद सर्वाइवल को यकीनी बनाते हैं। लेकिन INF के प्लेयर आगे जाते हैं। 12 किल्स कर चुकी है ये टीम, 12 किल्स कर चुकी है ये टीम। कितने किल्स के साथ इनको चिकन डिनर चाहिए? दिल नहीं भरा, पेट नहीं भरा अभी तक इतने किल्स कर, लेकिन इन्फिनिटी के प्लेयर्स को नाको चने चुपाने में कामयाब रहे हैं अभी तक के लिए। इन्फिनिटी के एक मजीद प्लेयर नॉक होते हुए व्हीकल बस की जद में आते हैं। मैट के स्किल्स अभी भी जिंदा है। मैट बुल्स के तीनों खिलाड़ी, चिकन डिनर एक मैच ये बन सकता है उनके लिए। लेकिन 4 राइवल्स के हैप्पी अपनी रेड डॉट से ही बाकमाल स्प्रे देते हुए और तीनों के तीनों प्लेयर्स को एलिमिनेट किया। इन्फ्लुएंस केम इन, गेट्स एलिमिनेटेड ऑलमोस्ट, आखिरी प्लेयर है उनके सर्वाइव करते हुए। 12 एलिमिनेशन इन्होंने किए थे, चिकन डिनर में नहीं कन्वर्ट कर पाए। अच्छी चीज हुई है बाकी लॉबी के लिए, एक अच्छा फेयर कंपटीशन कल के दिन भी हमें देखने को मिलेगा अलादीन। बिल्कुल जी, जहां 12 एलिमिनेशंस उन्होंने निकाले हैं, ये चीज उनको फिर से पहले पायदान पर ले जाएगी। लेकिन 5 एलिमिनेशंस के साथ 4 अराइवल्स अपने लिए
एक बार फिर से अच्छा मैच निकालते हुए, लेकिन इन्फिनिटी सर्वाइव कर रहे हैं उनके प्लेयर्स, लेकिन वहीं पर मेरा ये कहना ही था कि मलक को डाउन किया जाएगा और इन्फिनिटी गेट्स आउट ऑफ द मैच। टीम मैट बुल्स ये किल्स कंफर्म करती हुई नजर आई हमें और मैट बुल्स के लिए बेहतरीन मैच रहेगा, लेकिन 4 Rebels वर्सेस टीम DRS की इस फाइट में कौन सर्वाइव करता है। अभी अगर आप चिकन डिनर के दावेदारों की बात करें तो उनमें 4 Rebels, बॉक्स गेमिंग एंड मैट बुल्स हैं ज़रूर, लेकिन EMT और DRS वो भी यहाँ पर काफ़ी बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैन एडवांटेज नहीं है इनके पास और बॉक्स का सामना करना EMT के लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल रहेगा। हाइट पर मौजूद बेंसू एक डिफेंडिंग एंगल पर मौजूद है, वहीं पर अगर बात करें सॉस की तरफ से ग्रेनेड फेंका जाएगा, यहाँ टीम EMT के प्लेयर्स को जगह तब्दील करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन बॉक्स वो नहीं चाह रहे कि सामने वाली टीम गलती करे, वो खुद से इस्लामेंस देना चाह रहे हैं। यही चीज़ बॉक्स को बाकी लॉबी से डिफरेंट रखती है कि वो बहुत ज़्यादा निडर होकर खेल रहे हैं, ओके निडर होकर खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल सेक्सी टीम EMT के हमारे सामने मौजूद हैं। बॉक्स चार्ज इन कर सके आदि इनके ऊपर। बॉक्स को ये मूव भारी भी पड़ सकता है क्योंकि ये यहाँ पर रश इन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। EMT के प्लेयर को नॉकडाउन किया गया। EMT के चिकन अब आखिरी प्लेयर हैं, जितने मर्जी अब वो नेट स्पैम कर रहे हैं लेकिन सामना नहीं कर पाएंगे बॉक्स के प्लेयर्स का। काफ़ी लो HP हो चुके हैं और बॉक्स गेमिंग अब एक ही साथ रश इन करने वाली है और EM टेक एलिमिनेटेड। #5 8 एलिमिनेशंस मौजूद थे, लेकिन मेन एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं रहा इख्तितामी सर्कल में आकर, लेकिन अब फाइट बन चुकी है बड़ी मछलियों की, जिनके 2 से 3 से 4 प्लेयर सर्वाइव करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन व्हाट जस्ट हैपेंड डेल्टा आई थिंक से कोई ख्वाब देख रहे थे, लेट कर कुछ सोच रहे थे अपनी जिंदगी के बारे में, लेकिन नहीं सोचने दिया गया। 4 Rebels के प्लेयर ने एलिमिनेट किया उनको वहां से। अब बॉक्स गेमिंग की फाइट बनती हुई कि 4v4 फाइट के अंदर इंडल्ज हो चुकी है टीम 4 Rebels। वो की ओपी स्प्रे डाउन किया उन्होंने, एक प्लेयर को गिराने में भी कामयाबी इख्तियार की है, लेकिन सर्कल को मैं देखना चाहता हूं सर्कल किस जानिब करवट लेकर जाता है। सर्कल का ये ब्रेक डांस चलता हुआ हमें दिखाई देगा। अब सिर्फ 2 ही सर्कल्स रह चुके हैं और उसके बाद ये सर्कल ये प्ले जोन खत्म हो जाएगा और अभी भी 3 टीम सर्वाइव कर रही है। 4 मैन स्टैंडिंग, 4 Rivals, 4 मैन स्टैंडिंग, बॉक्स गेमिंग और मैट बुल्स का स्क्वाड सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा। मैं मेपटेक्स कहने लगा था उनको, लेकिन खैर 4 Rivals कोशिश कर रहे हैं हायर ग्राउंड के ऊपर रहते हुए टीम बॉक्स को एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है ये टीम बॉक्स उनके लिए। लेकिन मैट बुल्स गलती कर रही है, पिंच डाउन हो चुके हैं अब वो टीम 4 Rivals और बॉक्स के दरमियान, लेकिन बॉक्स भी रिटालिएशन भरपूर तरीके से दिखा रही है। अपनी बॉडी लैंग्वेज उन्होंने बहुत अच्छी रखी हुई है, कोई भी गलती है सच नहीं दोहराई जा रही उनकी तरफ से। आउट ऑफ द कवर 1 सेकंड के लिए भी वो नहीं निकल पा रहे, लेकिन बॉक्स के सांजो को काफी ज्यादा हद तक केयरफुल रहना पड़ेगा। मैट बुल्स बैकएंड से घेरा तंग करती हुई टीम बॉक्स के ऊपर, बेंसू काफी एक अलग स्पॉट के ऊपर मौजूद है, पीछे रहते हुए सारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बैक स्टैप से क्लियर अपनी टीम को रखना चाहते हैं, लेकिन बॉक्स गेमिंग के प्लेयर अब आगे की तरफ आते हैं। अब बात आ चुकी है चिकन डिनर के ऊपर, अब बात आ चुकी है एक फैसले के ऊपर। एक कदम एक फैसला आपको भारी पड़ने वाला है, लेकिन 4 Rivals के प्लेयर अपनी व्हीकल का कवर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मोक्स के अंदर अपनी व्हीकल पार्क की हुई है उन्होंने, वो देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली किस जगह के ऊपर टीम बॉक्स के प्लेयर मौजूद है। लेकिन इन दोनों की झड़प में मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही टीम्स इस चीज से नाआशना है कि मैट बुल्स इनका इंतजार कर रही है। मैट बुल्स जैसा उनका नाम है वैसे ही उनके काम है, और हमने इनका पागलपन पहले भी देखा है। इनका पागलपन हमने पिछले मैच में सैनहॉक में देखा जब इन्होंने स्लैम इन किया और टाइटन को एक ही झटके में एलिमिनेट किया। लेकिन बॉक्स अब काफी ध्यान से खेलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 4 Rivals के प्लेयर्स पे एम्बुरू 7 की तरफ से स्प्रे किया जाता है। एक ही फॉर्मेशन के अंदर टीम बॉक्स का स्क्वाड मौजूद रहने वाला है। 4 Rivals के प्लेयर बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की जानिब, अपनी व्हीकल्स को आहिस्ता आहिस्ता पुश फॉरवर्ड किया जा रहा है और उनका ज्यादा से ज्यादा प्ले एरिया खींचने की कोशिश की जा रही है। बॉक्स के बेंसू नेट्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। स्मोक्स भी डिप्लॉयमेंट उनकी तरफ से कर ली जा चुकी है, लेकिन मैट बुल्स वो ध्यान से देख रहे हैं। वो बिल्कुल तूफान से आने से पहले की खामोशी बने हुए हैं और वो तूफान किसी भी टाइम आ सकता है। लेकिन मैट बुल्स के ज़ेरिश नॉक करते हुए 4 Rivals के एक प्लेयर को 4 Rivals को अब बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। उनको अंदाजा हो चुका है कि एक डिफरेंट एंगल के ऊपर बैकस्टैप भी पड़ सकता है। बिल्कुल जी, बैक स्टैब उनको पड़ सकता है, लेकिन बॉक्स के प्लेयर्स अब थ्रोन डाउन होकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। सर्कल आखिरी है, ये आखिरी है यानी कि फिनिश, इसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन
बॉक्स के ब्रेक MVP मैट बॉल के ब्रेक को डाउन करते हुए नजर आएंगे। मंकी भी यहाँ पर ब्रेक MVP को डाउन करते हुए बॉक्स यहाँ 2 डिफरेंट साइड से डैमेज खाते हुए 3 प्लेयर्स बॉक्स के रह जाएंगे। मैट बॉल्स अपना एक प्लेयर डाउन करवाते हुए ट्रिस्मी डैमेज खा रहे हैं। बॉक्स का एक और प्लेयर डाउन होता हुआ बॉक्स के आखिरी प्लेयर रह जाते हैं। इसी के साथ साथ आखिरी 2 प्लेयर्स रह जाते हैं। टीम मैट बॉल्स और 4 आवर्स मिलकर पहले बॉक्स का काम तमाम करेंगे, लेकिन वहीं पर स्वास 4 आवर्स की एंट्री को डिनाई करते हैं। एक प्लेयर डाउन करेंगे, डैमेज निकल करते हुए फिर से दूसरे प्लेयर को नॉक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बेंसू गेट्स आउट ऑफ द मैच। अब आखिरी प्लेयर सॉस के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी जो कि डैमेज देना चाह रहे थे फॉरएवर के प्लेयर को, लेकिन आज से आगे बढ़ेंगे। ही गेट्स स्पॉटेड आउट देयर और उनको भी डाउन किया जाता है। ट्रिस्मी लो एचपी मौजूद है। टीम बॉक्स गेमिंग अब 1v3v2 सिचुएशन में आ जाएगी, जहां मैट बॉल्स अपने टीममेट करवा दे चुके हैं। 4v1 सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन ट्रिस्मी यहां उनको डैमेज पड़ता हुआ जाते जाते ट्रिस्मी को सिर्फ एक ही नॉक निकालना, लेकिन मैट बॉल्स भी गलती करते हुए मैट बॉल्स एक साइड से आएंगे। जिलिच यहां पर नॉक निकालेंगे। 4 आवर्स के 2 प्लेयर्स आउट होते हुए लेपी ईपू 2 प्लेयर्स रह जाएंगे। लेपी और पिंबूरू यहां पर रह जाते हैं। मैट बॉल्स यहां अब 3v2 हालात में आ जाते हैं। 4 आवर्स अगर एक और प्लेयर अपना नॉक करवाते हैं तो सारा चिकन डिनर की जो प्रोबेबिलिटी है वो टीम मैट बॉल्स के पास आ जाएगी। लेकिन लुक एट दिस, लुक एट पिंबूरू बिल्कुल सामने प्लेयर मौजूद रहेगा। पिंबूरू की पोजीशन का अंदाजा नहीं है मैट बॉल्स को। मैट बॉल्स के बजाय आखिरी प्लेयर रह जाता है। इट्स अ 1v1 नाउ। मैट बॉल्स वर्सेस 4 आवर के इस फाइट में एंड मंकी ऑलमोस्ट काफी लो एचपी करेंगे। पीक देने की कोशिश पर ही गेट्स स्पॉटेड। मंकी के पीछे ब्राउन डाउन है, हील लगानी पड़ेगी यानी जीलिंग हिमसेल्फ, लेकिन 4 आवर के लेपी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। टीम मैट बॉल्स के मेरे आगे ओह माय गॉड, Oh my God! What was that? What was that fight? 4 rivals. What have you done, यार? वो स्मोक के अंदर से प्लेयर के सामने से निकलकर पीछे आ जाते हैं लाइक इन स्प्लिट सेकंड और वो देख भी नहीं पाता और उसी सिलसिले में 2 प्लेयर्स को गिराया गया। 4 राइवल्स। ये मैच वाकई ही लग रहा था पता कि यार ग्लोबल चैंपियनशिप का मैच था और कैसे खून मैं कहता हूं कि खून पसीना एक किया गया अलादीन इस मैच के अंदर। इन दोनों टीम्स ने जिस तरह से एक दूसरे का सामना किया है और अभी भी उनके चेहरों के तासुरात आप देखें कितने लॉस्ट वो दिखाई दे रहे हैं। जिस लुक एट देम, उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं किया इस जीत को। हालांकि अगर मैं होता मैं दीवारें तोड़ के चला गया होता अभी, लेकिन दे वर लॉस्ट। माथे पे पसीने आए हुए हैं कि कितना इंटेंस ये मैच था, ये फाइट थी, लेकिन 4 राइवल्स क्या किया यार, खूबसूरत, बहुत बेहतरीन। लेकिन दाद देंगे मैट बॉल्स को भी। एक लम्हे के लिए मैट बॉल्स ने भी नाकों चने चबाया इनको। मैट बॉल्स के प्लेयर्स ने जो किया है, लास्ट 1 HP प्लेयर था, उसके सामने आके प्लेयर्स बुलेट्स खुद खा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्लेयर सर्वाइव कर जाए, बस बच जाए। एंड वो चीज़ देखकर मुझे समझ नहीं कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। लेकिन टीम्स टू वॉच की बात करें, 4 आवर्स के पास 31 स्मोक्स इस मैच में थे जिन्होंने इस्तेमाल किए और उसके अलावा 15 ग्रेनेड्स उनकी तरफ से फेंके गए इस मैच में आती। Aladdin, I have no words. I have no words to explain कि ये मैच कितना बेहतरीन था, कितना जोश से भरपूर ये मैच रहा है। खूबसूरत यार, वाकई तीसरे दिन का इख्तिताम हुआ है, देखने को मिला, नज़र आया कि यार वाकई तीसरा दिन था, आखिरी दिन रह चुका है इसके बाद। और एक हायर नोट पे ये जो टीम्स ने, इन दोनों टीम्स ने खास तौर पर इस मैच को ख़त्म किया, कल के दिन का मोमेंटम सेट कर दिया है। वो जो एक्साइटमेंट है PUBG मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप के आखिरी दिन की, ग्रुप रेड के ग्रुप स्टेज की ग्रुप रेड की आखिरी दिन की, वो बढ़ चुकी है। वो वाकई ही इन दोनों टीम्स की वजह से बढ़ चुकी है। खूबसूरत तरीके से 4 राइवल्स के प्लेयर तीसरे प्लेयर के ऊपर 1v3 करने जा रहे थे और अगर वो हो जाता तो वो 1v3 बेहतरीन बाकमाल होता। जस्ट लुक एट द एग्रेशन, टेबल को मार रहे हैं लड़के, टेबल तोड़ने की कोशिश की गई है उनकी तरफ से। लेकिन खैर मैच रैंकिंग की तरफ जाएंगे, 29 पॉइंट्स इन्होंने लिए हैं और 15 रैंक पॉइंट्स और 14 एलिमिनेशन पॉइंट्स, 29 पॉइंट्स। बेहतरीन बाकमाल, मैं क्या कहूँ ना, कुछ भी ना कहें आप। लेकिन ख़वातीनों के साथ एक बेहतरीन मैच खेला गया है यहाँ पर। मैट बॉल्स की तरफ से भी, 4 आवर्स की तरफ से भी 14 एलिमिनेशंस लेकर गए हैं यहाँ पर। इसी के साथ साथ अगर बात करें इन्फेस्टमेंट की और इमटेक की, उनकी तरफ से 14 पॉइंट्स निकाले गए। बॉक्स गेमिंग के पास यहाँ पर 13 पॉइंट्स मौजूद थे। टीम टाइटन यहाँ 6 पॉइंट्स लेकर जाती है, DRS विद 11 पॉइंट्स है। लेकिन बाकी टीम्स का ये अच्छा मैच नहीं रहता। एंड एगॉनिक साइड आदि 0 पॉइंट्स लेकर जाती है इस मैच में।
जी आदि, बिल्कुल आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। जी मैं इसको ज़रा वो करना भूल गया था, अनम्यूट करना भूल गया था। खैर मैं आपकी बात ही कर रहा था कि गोनेक्स आई8 के आखिरी मैचेस इतने अच्छे नहीं गए आज के दिन के, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी सैडनेस तो महसूस होती ही होती है, लेकिन अफसरदा नहीं होना यार, डीमोटिवेट नहीं होना, नाउमीद ख़ुद को नहीं करना, यही सबसे बड़ी चीज़ है यार। आई एम रियली हैप्पी, यू नो वाई, क्योंकि निग्मा गैलेक्सी PMGC ग्रैंड फाइनल्स में हाश 3 पर थी पिछले साल, और निग्मा गैलेक्सी इस स्टेज पर यहाँ पर आकर एगोनिक्स आई8 से खासा काफी नीचे है। एक्सपीरियंस देखें, PMWI खेल चुके हैं, PMGC खेल चुके हैं, उसके अलावा सैकड़ों लैन इवेंट्स खेल चुके हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि उन्होंने मेरे ख्याल से इस साल जितने भी इवेंट्स खेले होंगे सबके सब लैन ही खेले होंगे, राइट? क्योंकि निग्मा गैलेक्सी जिस तरह का लैन का प्रेशर है और सारी चीज़ें हैं, वो तो मेरे ख्याल से, मैं तो लग रहा था जिस तरह के उन्होंने पहले दिन परफॉर्मेंस दिखाई, वो ऐसी ही परफॉर्मेंस हर रोज़ दिखाएंगे जिस तरह से इन्फ्लुएंस केमिन दिखा रही है, बाकी टीम्स दिखा रही हैं। लेकिन स्टिल नाउ आई बिलीव इन माई टीम, आई बिलीव इन देम मोर देन एवर कि यार दे आर केपेबल। दैट इज वाई इतनी टीम्स उनसे नीचे मौजूद हैं। क्या हो गया अगर 2 से 3 मैचेस में नहीं परफॉर्म कर पाए, ऑब्वियसली, लेकिन खैर प्लेयर्स टू वॉच की तरफ जाते हैं अलादीन। बिल्कुल प्लेयर्स टू वॉच की तरफ जाते हैं, जहां पर मौजूद हैं माय नेम P, और उनकी तरफ से 36 एलिमिनेशंस निकाली गई हैं। और इसके साथ साथ डैमेज की बात करें तो 7158 का डैमेज केल्सी ने दिया, और असिस्ट की बात करें तो INF के प्लेयर 14 असिस्ट आती। ये प्लेयर बिल्कुल खुश नहीं होगा, इसके 14 किल स्टील हुए। मेरे ख्याल से मैं होता तो मैं दीवारें तोड़ देता। बिल्कुल दीवारें तोड़ देनी थी आपने, लेकिन खैर इन्फ्लुएंस केमिन हाश 1 के ऊपर अपने दिन का इख्तिताम करती हुई, वो जो थ्रोन था जो इन्होंने गवा दिया था कल के दिन, वो अब वापस ले लिया जा चुका है। और वंस अगेन फिर से हाश 1 हाश 2 की जंग छिड़ती हुई, हाश 3 तो ऑब्वियसली ओपन ही है निचली टीम्स के लिए, लेकिन अलादीन जस्ट सी के एगोनिक्स आई8 133 पॉइंट्स और 139 पे BTR है, लेकिन उसके बाद एक खासा जंप है। बिल्कुल आदि, उसके बाद एक खासा जंप है। सो मुझे लग रहा है कि एगोनिक्स आई8 को एटलीस्ट कल के दिन के शुरू के जो 3 मैचेस उनमें से 2 चक्कर निकालने पड़ेंगे इस जंप तक पहुंचने के लिए, बिकॉज वरना बाकी टीम्स ऐसा लाइक मौका नहीं देंगी उनको कम बैक करने का। 4 आवर्स की बात करेंगे, 9 स्पॉट में मौजूद है 10th पे गैलेक्सी रेसर्स, सॉरी निग्मा गैलेक्सी मौजूद है 11 पे द इन्फिनिटी। उसके साथ साथ बॉक्स गेमिंग को देखें 10 पॉइंट्स मौजूद। आप एक और चीज़ देखेंगे, बॉक्स गेमिंग, मैट बुल्स, EM टेक टीम को टीम आर इट कल के दिन अगर ये अच्छा नहीं खेलते, दे आर डन फॉर दिस PMGC। और बॉक्स गेमिंग और मैट बुल्स तो कम बैक जरूर दिखाएंगे। सो ऊपर की जो टीम्स है मुश्किलात उन पर बनने वाली है आदि कल। बिल्कुल अलादीन, और आज के दिन भी मुश्किलात हमने बनती हुई देखी हैं कि एक टाइम के ऊपर टीम S2G काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई थी। खैर उन्होंने कम बैक तो किया, लेकिन ख़वातीनो हज़रात फाइनल्स की जंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यार देखो, एक बात को समझो कि सिर्फ 3 ही टीम्स ने यहाँ से आगे जाना है, 4 टीम्स नहीं जा सकती, 5 नहीं जा सकती, और कोई नहीं जा सकता। चाहे आपकी टीम कोई ना कोई जितनी मर्जी फेवरेट हो, 3 ही जा सकती। हाँ, हम उम्मीद ज़रूर रखते हैं, हम दुआ ज़रूर कर सकते हैं, और हम करते भी हैं, दिल से करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही टीम्स ने यहाँ से आगे जाना। जी पर अगर इसी के साथ जाएंगे इंटरव्यू की तरफ, इंटरव्यू से वापस आते हैं, तब तक के लिए इंटरव्यू सुनिए एंड वी विल बी राइट बैक। There's only one more day left for tomorrow. 6 more rounds to be played out here in the PUBG Mobile Global Championship League. In Group Red, we've already seen some of the finest teams claim those chicken dinners, and today we have ourselves a top contender to challenge Influence Kemin at #1. So please welcome Buriram United Esports. Could you please introduce yourself to the world? ช่วยแนะนำตัวเองให้กับทุกคนหน่อยค่ะ ผมชื่อ Tiger X ครับ Hello everyone, his name is Tiger X from the Buriram. So for Tiger X, in yesterday's interview, your teammates did mention that Influence Kemin is your biggest opponent at the moment. So in today's game, indeed, you guys have been fighting very hard to claim that #1 spot. So far, with that sort of performance, do you believe that by tomorrow, you guys will take that #1 spot away from them? คือในตอนสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วอะค่ะที่บอกว่าทีม INF เนี่ยเป็นคู่แข่งตัวสำคัญในทีมคราวนี้คุณก็คือต้องแบบแข่งกันเพื่อจะคว้าอันดับที่1มาตลอดเราก็จะแบบรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าเราจะต้องแข่งให้อยู่ในอันดับที่1ไปตลอดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไม่ต้องแข่งให้ได้ที่1ก็ได้แค่ได้เข้ารอบไฟนอลก็พอครับActually, he feel like just only not the first place, but it's okay to be the grand final round. Oh, I love that sort of confidence. And
you know, the grand finals will be happening in Jakarta, and by now, both you as well as the INF team are very likely to make it to the grand finals already. So is there a third team that you are hoping to see in the grand finals as well from Group Red? คือตอนนี้เหมือนทั้งทีม BRU และ IMF เนี่ยจะได้เข้าไปทางรอบแกรนด์ไฟนอลแน่นอนอยู่แล้วเราก็มีการแบบคาดการณ์ว่าทีมที่3เนี่ยจะเป็นทีมไหนคะทีมที่3 LGD ครับลุงคิดว่าไงhe guess like maybe LGD I see. I really do like those choices out there. And also, before, of course, we end this interview, is there any words you want to say to influence Kevin and also PSG LGD? อยากจะพูดอะไรถึงกับอีกทีมหนึ่งบ้างไหมคะLGD ไว้เจอกันครับ He said see you on game All right, so we definitely will see them tomorrow with those 6 more rounds to be played out. So with that being said, we have concluded day 3, and tomorrow will be the very final day of Group Red to be performing. Some teams will have to say goodbye, and 3 of the teams will make it to Jakarta, Indonesia for the grand finals. We'll see who will make it to the survival stage as well. But for now, we take ourselves a great rest, and we thank all you guys for tuning in. So we'll see you guys tomorrow, same time, same place here in the 2022 PUBG Mobile Global Championship League. Bye. Bye. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, खुश आमदीद करेंगे सभी लोगों को एक बार फिर से पबजी मोबाइल ग्लोबल चैंपियनशिप के किस सेगमेंट में आदि एंडिंग सेगमेंट में सब खत्म हो चुका है, तबाही हो चुकी है, बर्बादी हो चुकी है और अब बस अब घर जाने का वक्त है, अब बस घर जाने का वक्त है। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से शुक्रिया अदा करेंगे हमारे स्पॉन्सर का सोनिक एक्सपीरिया का, उसके साथ साथ पोलमैन बांगसार कोलालमपुर के जो होटल पार्टनर हैं हमारे, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन जी बिल्कुल, 1-2 बातें मैंने भी करनी, आप कर लें, जब आप कर लेंगे फिर मुझे बता दिए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने आज के दिन ज्वाइन किया और हमारी तरफ से माजरत है। आई नो आज हम उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह से हम करते हैं, और उसकी वजूहात हैं, काफ़ी ज़्यादा वजूहात हैं। मैं बताऊंगा आपको बाद में मैं इस बंदा किधर आई है। जी इस मैच के बाद लाइव आ जाते हैं, ठीक है, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन खैर, मैं दिल से माजरत खा हूँ अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर देखिए, हमारी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अक्कासी हम कर पाएँ उस सारे माहौल की जो चल रहा है और जिस तरह का एग्रेशन चल रहा है। लेकिन कभी कभी हम भी बैठ जाते हैं, हम भी बैठ जाते हैं, कभी कभी हमारी भी गाड़ी जो है वो रुक जाती है। लेकिन खैर, आई रियली होप कि यार आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। लेकिन इंशाल्लाह कल का जो आखिरी दिन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनफोल्ड होगा, एंड वी बोथ राइट हेयर, आप लोगों की सर्विस में हम लोग कोशिश ज़रूर करेंगे कि अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से उसको हम आप लोगों तक पहुंचाएं। बिल्कुल जी, आई होप आप लोगों ने कास्टिंग एंजॉय की। अगर कास्टिंग आपने एंजॉय की है, मैं देख रहा हूँ चैट, आप लोग कह रहे हैं कि कान फट गए, बहुत मजा आया, कास्टिंग ओपी, बीसी प्योर कास्टर्स मतलब बहुत क्यूट प्योर कास्टर, सॉरी आई जस्ट रेड इट, सॉरी मैं कमेंट पढ़ने लग गया था। अगर आपको बाकी कास्टिंग ये रिकॉर्ड करो यार, अगर आपको बाकी कास्टिंग पसंद आ रही है, सो ऑल यू हैव टू डू इज कम हियर, ज्वाइन करें, यहाँ पे आए, बातें करते हैं। अलादीन वाईटी आपको स्ट्रीम मिलेगी, इसके बाद वहाँ पर आप आ सकते हैं। उसके अलावा तो क्रिएट अलादीन पे आप आकर जो है वो इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हैं। आदि को फॉलो करना चाहते हैं तो आदि.asl पे जाके इनको भी फॉलो करें, पहले मुझे करें फिर इनको करें, हम इंशाल्लाह आपको वहाँ पे अच्छा प्यारा फीडबैक देंगे। लेकिन मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे PMGC के कल के दिन के मैच के साथ। तो मेरे बहुत सारा ख्याल, तो मेरे याद आदि कुछ कहना चाहते हैं आप? खुदा हाफिज़।